संसद श्री E.T. मोहम्मद बशीर, यस सर क्वेश्चन नंबर 143 मंत्री जी, श्री E.T. मोहम्मद बशीर, यस सर क्वेश्चन नंबर Honorable मंत्री Minister, जी, in his statement has said on 21st May 2025. Honorable Minister, coaches were, in his statement have said, and with regard to augmentation, on 21st May 2025, strictly in accordance to coaches were subject to traffic with regard justification, operation feasibility, and in accordance to resources, etc. Subject to traffic justification. What I am asking is feasibility. A minister like you who is having a vision must have a social viability also. What I am asking is a minister like him who is having a vision railway line must have a social viability also, sir. That's a age-old one, sir. Really line. A lot of potentials are railway line. We have to give a special consideration, sir. My question. That's a age-old one, sir. I used to ask a lot of sir. This most important thing is. We have to give a special consideration. My question. Now I used to ask you. Sir, this most important train is coming from Nellore and that is from stopping at Kochupally, which is not at Trivandrum. 10 kilometers this side. This train, that train is coming from Nellore and that is stopping at Kochi Medical Institution, which is not national status. 10 kilometers. One regional cancer center. Sir, that train carries a lot of patients. That also is a national level. There are two medical institutions that of these patients. National status. They have to get down one regional cancer center and then other thing is patients. That also is a national level institution and other passengers. They are patients like anything. They have minister may be knowing that he is a kind man also. And then what I am asking is patients, all the ladies and kids and other passengers. They extend that like it. That is my first. Minister may be knowing that he is a kind man also. What I am asking is memo service. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. That is my first thing. Second, one more thing I would like to say. See, that is the memo service. Memo service. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member has asked the question about Nellore-Kottayam Express, about augmentation of general class coaches in this train. Honorable Speaker, sir, given reply. Honorable member has asked the question also point out on Nellore-Kottayam Express that honorable augmentation of Narendra Modi ji's Sarkar general class coaches in this committed to the welfare of middle classes and low income. I would like to also point out, honorable Speaker, sir, over the last few years, administration Narendra Modi ji's have been taken, which are basically for the welfare of the low income families, middle classes and low income families. The number of general class coaches which are basically availed by the low income families have been taken, has substantially increased for the welfare of the low income families. Today, I will give some examples here. Total 82,000 coaches, general about 70 class coaches which are basically availed by the low income families coaches, has substantially increased in the last few years. 69 lakh seats. Out of the total 82,000 coaches, non-AC and general class seats. Coaches are general class program and non-AC coaches. 17,000 general coaches. 17,000 general and non-AC. 78% seats are basically non-AC and general class express. We have taken up a program of manufacturing 17,000 general coaches. प्रधानमंत्री जी का 17,000 general and non-AC coaches. We have also started Amrit Bharat Express जो माननीय अध्यक्ष जी मैं सभी माननीय सांसदों की जानकारी के लिए करती है बताना चाहूंगा इसमें प्रधानमंत्री जी का जनरल क्लास कोच है जो विजन है 8 स्लीपर क्लास कोच है एक्सप्रेस ट्रेन में ऐसी ट्रेन जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन होती है उसके फीचर में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है सेमी ऑटोमेटिक कपलर इसमें जिसमें 11 जनरल क्लास कोच चलने के दौरान 8 स्लीपर क्लास कोच है प्रैक्टिकली ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम जो वर्ल्ड की बेस्ट एकदम मॉडल उसके फीचर्स इसमें है नए डिजाइन के टॉयलेट सेमी ऑटोमेटिक कोचेस सीसीटीवी कैमरा जर्क नहीं आए चलने के दौरान रूम में क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर एर्गोनॉमिकली डिजाइन लैडर ब्रेकिंग सिस्टम हो फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न सी टाइप नए तरह चार्जिंग यूनिट के टॉयलेट एलईडी फिटिंग सीसीटीवी कोचेस सीसीटीवी कैमरा टॉक बैक सिस्टम लगेज रूम में फुल्ली सील्ड गैंग एर्गोनॉमिक डिजाइन नरेंद्र मोदी चढ़ना आसान हो स्पष्ट कमिटमेंट है और सी टाइप के मोबाइल लो यूनिट के लिए माननीय सांसद महोदय ने जो राजरानी एक्सप्रेस का इमरजेंसी का कहा है उसकी मैं फुल्ली सील्ड गैंग को संज्ञान में लिया है
और जो इन्होंने कहा कि क्या उसका नरेंद्र मोदी जी का त्रिवेंद्रम हो सकता है, मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लेकर मैं आप माननीय सांसद महोदय ने जो राजरानी एक्सप्रेस का कोचुवेली का कहा है उसकी मैंने इसको संज्ञान में लिया है और जो इन्होंने कहा कि क्या उसका एक्सटेंशन त्रिवेंद्रम हो सकता है, त्रिवेंद्रम हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी लेकर मैं आपसे वापस चर्चा। Electrification is now over, sir. Everything is ready now. Kindly examine. I don't know why the delay. Kindly examine Trivandrum and take a final decision on the memo service, which we have requested. Number one, memo service. Another thing is, sir, with regard to a lot of work was done in that. A lot of. It's a historical route. I told you over, sir. Everything is ready now. It's a I don't know why the destination, sir. Kindly examine both sides. It is very take a final decision on the memo service, which we have requested. Number one. For another thing is, sir, with regard to tourist kind of for that also there is a historical route. I told some bogies, not only like that. It's a all these things can be considered destination, sir. Both sides minister very and it's to examine whether these two things also may be considered for. Sir, honorable member has raised a very important point. For that I would also like to some schemes or some bogies, something like that. All these things can be considered. Increase the capacity of railway network in Kerala. And to examine whether Congress, these two which things ruled this also may country for kindly be 60 considered. years. Sir, honorable member has raised a very important point. What was the work which was done in Kerala? Trying to increase the capacity of railway network Sir, in Kerala. introduction of new trains Congress, basically which ruled requires this country increased for 60 capacity of years. railway tracks. What was Introduction of what new was the trains requires increased capacity of railway tracks. what was the work which was done in Kerala? Railway network What was the work which was done the in entire Kerala? railway network Sir, in introduction Kerala, of new trains our government under basically Prime Minister requires Narendra increased Modi ji's capacity leadership of railway tracks. introduction of taken new up trains DPR requires preparation increased of capacity of very railway important tracks. entire railway Today, network the entire from railway Shornur to network Mangalore, third and fourth in line DPR is the going entire on. railway network in Shornur to Kerala, Ernakulam, our third government line under Prime DPR is Minister going on. Narendra Modi ji's Shornur to leadership Coimbatore, 99 kilometers, third and has fourth taken line up DPR being preparation prepared. of Ernakulam Very to important Kayankulam, entire railway 115 network kilometer from third line Shornur to DPR is Mangalore, being third and prepared. fourth line DPR Kayankulam is to going on. Trivandrum, Shornur to 105 Ernakulam, kilometer third line DPR is going prepared. Trivandrum to Nagarcoil, 99 kilometers, 71 third and kilometer fourth third line DPR is being prepared. This is the commitment of Prime Minister Narendra Modi ji to the railway network of Kerala. Kayankulam to Trivandrum, This 160 kilometers, the third third line DPR is being prepared. Kerala today Trivandrum to under NDA Nagarcoil, government 71 more than the kilometer work third which line was done DPR in is being last prepared. This is the commitment of Prime Minister Shri Narendra years. Modi ji to Once we the have this railway network capacity- of Kerala. Compare this with the 60 years, the work which is done in Kerala today under NDA government is more than the work which was done in last 60 years. And once we have So this is the capacity, fundamental point we which can has to be introduce more understood by all trains. the honourable members. So this Shri is the fundamental Darshan Singh point which Chaudhary. has to be understood by all the honourable members. Shri Darshan Singh Chaudhary. अध्यक्ष महोदय जी, कोरोना काल में बहुत अधिक काम रेलवे के हुए, इसके लिए मैं आभार हूं, लेकिन उस समय जो ट्रेन हमारे शटल और भुसावल नागपुर पैसेंजर जैसी गाड़ियां बंद हो गई, मेरे माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेनों को शुरू करते हुए और जो नई मेमो ट्रेन चलाने की योजना है उसको हमारे नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जारी करते हुए जल्दी से जल्दी शुरू करें, जिससे हमारे मध्यम और गरीब वर्ग का कल्याण हो सके और छोटे स्टेशन सीहोरा सहित सबका कल्याण हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मध्य प्रदेश से आते हैं, ये प्रश्न केरला से संबंधित था, फिर भी मैंने आपके सुझावों को संज्ञान में लिया है और इसमें जानकारी देके मैं इनसे बात। श्री वामसी गौतम। सर ये पहली बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो बैठ। Sir, thank you, sir. I would like to raise Honorable Minister's attention to Mancherial district, sir. We had asked for a Vande Bharat Express for Mancherial area. As you know, we come from Singareni colonies that side, sir. Lot of us there have a huge contribution to the railway revenue. Almost 10,000 to 15,000 crores of railway revenue comes from Singareni, sir. We have been requesting for a Vande Bharat and a Kerala Express for a very long time, sir. Request you to kindly look into that. Lot of our commuters are suffering in Mancherial due to non-availability of connection there, sir. Thank you. माननीय सांसद
तेलंगाना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। सभी मान्यवर सांसद महोदय, जैसे अभी मान्यवर सांसद जी ने एक और वंदे भारत की डिमांड की है, देश भर से उसका डिमांड आता है और आपका डिमांड भी मैंने नोट किया है, मंचेरियल से संबंधित उसकी फिजिबिलिटी जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 श्रीमती प्रतिमा मंडल। Sir, question number 144. Speaker, sir, the answer is laid on the table of the House. Sir, the Department of States, headed by our Honorable Prime Minister, has only provided a sketchy statement about various schemes which are implemented through space technology across the country. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what are the key milestones achieved under Gaganayan mission, and how is the government ensuring that technological self-reliance and astronaut safety on this endeavor? Okay. Thank you. Honorable Speaker, sir, I am thankful to the honorable member. She's asked a question which gives me an opportunity to share with this august House that over the last 11 years or so, India has put before the world a unique model of space technology application, which is no longer confined only to the launching of rockets. And today, space technology is extensively being used in infrastructure projects, in development works, and most of all, as the honourable member rightly mentioned, to bring ease of living in the life of a common citizen. Today, space technology has entered every Indian household, and that was precisely the commitment and vision envisaged by our founding father Vikram Sarabhai, which is for the first time finding its vindication under Prime Minister Narendra Modi. Today, we have also, in the process, given world some of the global success models. Like, for example, Gati Shakti portal is there, which is a portal based on about 200 layers trying to integrate planning with infrastructure projects. It helps in planning, it helps in monitoring, saves time, it saves money. And this has now been also acknowledged across the world. Similarly, space technology being used extensively in communication, as all of us know, in healthcare, telemedicine, in flood and disaster management forecasts, in geo-manregas, in railways, in housing. Most of the Modi government's flagship programs like Amrit or Smart Cities are using this extensively in the defense warfare. And this also gives me an opportunity to share with this House a very heartening news that today precisely at 1740 hours Indian Standard Time, we would be launching the first ever ISRO-NASA collaboration satellite called NISAR, which is going to be a game changer as far as our disaster responses are concerned, disaster monitoring is concerned, also as far as our competencies to predict, to manage landslides, volcanoes, cyclones, etc. And this is going to be the first of its kind technological venture, and it will also have the capacity to penetrate through fogs, through heavy clouds, to also dense ice layers, and which would provide us much more ease, not only in the disaster management sector, but also in a host of other sectors like aviation sector, shipping transport, etc., etc. Honourable Member Supplementary. Sir, I would like to know from the Honourable Prime Minister that could you please elaborate on the steps being taken to promote the development of small and medium-scale space startup, including funding support, technology sharing, and incubation infrastructure. Thank you, sir. Thank you, Chairman. Thank you, Speaker, sir. I am glad that
the honourable member has asked that question, because that again gives us an opportunity to share with this august House that for the first time since independence, a very out-of-box decision was taken by the Prime Minister, which only he could take because he has the capacity to break the taboos of the past. The space technology was unleashed, and the media popularly reported that India's space has been unlocked. For the first time, the private sector was allowed to make entry into our space ventures and our space projects. And as the honourable member has said, in the last 3-4 years since we did so, because this process started in the year 2019, the new space reforms came in 2020. Then we had a space policy in place in 2023, and just in a small shorter span of time, about 3 or 4 years, the honourable member will be pleased to learn that there has been a quantum jump, not only in space startups, but also in the process of the space economy. For example, just about 3-4 years back, we were just one-digit space startup. Today, we have gone up to more than 300. Some of them are those of the global potential. Some of them have also turned into lucrative entrepreneurs. And our space economy has also taken a quantum leap. We were just a dismal space economy till about half a decade back. Today, we are $8 billion. And in the next 10 years, the projections indicate that we will go up 3-4 times, maybe to $45 billion, which in other words means that as India moves on from rank 10 to rank 4, and then we also plan ahead for the Viksit Bharat rank 1, space economy is going to play a very, very important component, critical role in that growth story. Shri Jagdimba Pal. अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ क्योंकि पिछले दिनों हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की कमेटी इसरो गई थी और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने विस्तार से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आप नहीं थे हमारे साथ, आप चर्चा मत करो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में आज हम चंद्रयान 3 पे आए हैं, उसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसको अनलॉक किया है और बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि न केवल स्पेस सेक्टर में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से, बल्कि मनरेगा हो, एग्रीकल्चर हो, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि फसल कार्यक्रम के तहत 11 फसलों के लिए उस फसल का एकड़वार और फसल की पैदावार और उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए जिस तरीके से और चमन योजना के अंतर्गत बागवानी में किया है, तो इन सारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर से किसानों को मिलने वाला है। और जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, इसके बाद ये जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किसानों को मिलेगा, इसको राज्यवार में किसानों को इसको फ़ायदा पहुँचाने क्या रोड मैप होगा, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से प्लीज माननीय सदस्य, मैं सदन में देख रहा हूँ कि कई वरिष्ठ माननीय सदस्य सीट पर बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, संसद की मर्यादा को बना के रखो। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने मुख्य तौर पर कृषि केंद्रित प्रश्न पूछा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न सेक्टर्स में स्पेस टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। और यदि आप कृषि क्षेत्र की बात करें एक्सक्लूसिवली, तो जैसा उन्होंने स्वयं व्याख्या की, हमारा एक बड़ा ही सफल प्रयोग रहा है जिसका नाम है चमन। चमन अर्थात कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इंफॉर्मेटिक्स, अर्थात इस स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात का अध्ययन करना कि वो जमीन किस प्रकार की कृषि के लिए अनुकूल है और किस प्रकार उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसी प्रकार, और अभी तक ये सफल प्रयोग हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 7 डिफरेंट क्रॉप्स। इसी तरह एक डेडिकेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कृषि क्षेत्र को लेकर के हमारा एक सफल प्रयोग रहा है, उसका नाम है फसल।
अर्थात रिमोट सेंसिंग डाटा फॉर जनरेट क्रॉप एरेज एंड फोरकास्टिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स, यानी पहले से ही, क्योंकि एक इकोसिस्टम निर्माणित करके जिसमें मौसम विभाग का भी योगदान है, और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी के कृषि केंद्रित प्रयोग है, चाहे वो फसल प्रयोग है, चाहे वो चमन प्रयोग है, ये मिल करके एक ऐसी इकोसिस्टम की रचना करते हैं जिसके अंतर्गत कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और जब प्रधानमंत्री जी ने रखा डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस के कॉन्सेप्ट से उसके प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. My question is on the human capital front. Could the government share specific data on the number of students and professionals trained under ISRO's Unnati, Respond or IARS outreach programs over the last 5 years, and how many of these are from Tier 2, Tier 3 cities or aspirational districts? Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, as the honorable member has placed, I think the question is prompted by the very fact that there has been a visible game change over the last 4 or 5 years, which were not so earlier. For example, our most notable teaching institute in space technology, which happens to be in Thiruvananthapuram, was one of the premier institutes, one of the world class. It had recorded, registered 100% placement, but most of our students had to go abroad for jobs or employment. It's no longer so, partly because of what I said in the earlier question, the startups, and partly also because the extension of the space programs in India has generated a lot of job opportunities domestically. So that is one thing. We are also trying to extend our teaching facilities to the other parts of the country which were earlier confined mostly to the South India. For example, to begin with, we have set up one such teaching center on the same lines as the Thiruvananthapuram in northeast in Agartala, in the campus of the NIIT in Tripura. Similarly, in north, we have started from the Central University of Jammu, where we have set up a similar institute which has been named Satish Dhawan Institute, also significantly because Satish Dhawan happened to belong to the state of Jammu and Kashmir, erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is a lesser known fact. So I think the students, the availability of students opportunities, the fellowships is also on the increase, the startup link-up is also on the increase, and we are also in the process of opening up not only new schemes as mentioned rightly by the Honourable Member, but also opening up new teaching centres. At the same time, we are also collaborating with the Ministry of Education, and several of the universities across India are now coming forward. And I think that one very important feature which I noticed in the last 2-3 years is that in the
aerospace engineering, they have a provision of a summer training in the 3rd year of engineering. Earlier on, we had a few students coming asking for an internship in ISRO. Now we are flooded with thousands and thousands of such applications, which means that suddenly, even in the engineering streams, the priority of aerospace in IIT JEE counseling has gone up tremendously, and all this has happened in the last 3-4 years because of all those factors which have been introduced, as I mentioned earlier. अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धि पर चर्चा होगी। तो माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 श्री गणेश सिंह जी। 145 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, देश में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं। अभी तक 2025 आज तक लगभग अक्षय ऊर्जा क्षमता 226.9 गीगावाट पहुंच चुकी। 2030 तक इसे 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मध्य प्रदेश में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से कुल 11,279.15 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयंत्र स्थापित हैं, इसकी जानकारी दी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर परियोजना एवं नर्मदापुरम में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण निर्माण जोन की स्थापना भी की जा रही है। उसका विस्तृत विवरण क्या है? मध्य प्रदेश में सौर पार्क 4,248 मेगावाट क्षमता के 8 सौर पार्क स्थापित हैं, जिनमें 2608 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही। मेरी मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में सौर ऊर्जा पार्क के लिए कई ऐसे स्थान रिक्त पड़े हैं जहां पेड़ भी नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है और पावर ग्रिड भी मौजूद है। क्या वहां पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने पर विचार करेंगे? सर गणेश सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इधर उठाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके अनुमति से मैं इसके उत्तर देने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी COP26 में जो अनाउंस किया था, कमिटमेंट दिया था दुनिया को जी, उसमें G20 कंट्रीज भी इंक्लूड थे। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया था कि बाय 2030 इंडिया's टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी आउट ऑफ जो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। दिस वाज कमिटमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय 2030। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट के बारे में सारे दुनिया अभी सराहना कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। 5 years ahead of the time हमने 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से, नॉन फॉसिल फ्यूल से अभी कर रहा है। आज के दिन में हमारा लगभग टोटल द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से 243 गीगावाट ऑलमोस्ट हो गया है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देश में 485 है। आउट ऑफ दैट 243 हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
India is the only G20 country whose climate actions are aligned with the goal of limiting global warming to 2%. This is the only country in G20 group which has achieved this great thing. So I congratulate Honorable Prime Minister, and this has happened well in advance. 5 years पहले 5 बरस पहले हुआ है. सारे दुनिया चकित होकर ये देख रहे हैं क्योंकि हमारा 2.42 था सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2014 में. आज के दिन में हमारा लगभग 130 गीगावाट है. ये भारत का जो स्केल एंड स्पीड है ये भी अप्रिशिएट करना है. जहां तक सवाल है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन में हो रहा है. जैसे माननीय सदस्य ने कहा, गणेश सिंह जी ने 11 गीगावाट से ज्यादा हो गया है. और 8 सोलर पार्क हमने अलॉट किया है. जो भी सोलर पार्क हम देते हैं स्टेट को देते हैं, स्टेट इंटर कहां करना है, कहां लैंड देते हैं, वहां हम करते हैं. ओंकारेश्वर का जो विषय है, ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट इज 518 मेगावाट का कैपेसिटी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर projects in the country. Program to the government of Meghalaya so that the public from that Meghalaya state will be eased from the burden of bill. इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट है, जहां तक पीएम कुसुम का सवाल है, पीएम कुसुम 1, पीएम कुसुम बी, अगर पीएम कुसुम बी में लेता है तो इंडिपेंडेंट सोलर प्लांट अगर लगाते हैं तो कोई बिल का सवाल ही नहीं है. तो ऐसे स्कीम अलग अलग स्कीम है. और अगर मान्य सदस्य मुझे लिखते हैं तो किस स्कीम में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, इसमें कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो लिखते हैं तो हम जरूर इसके जांच करके उनको रिप्लाई दे देंगे. क्वेश्चन नंबर 146 श्री संदीपन राव आसाराम भुमरे. नो. क्वेश्चन नंबर 146 बोलें. क्वेश्चन 146. अध्यक्ष महोदय, पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें. 146 बोल दिया ना. ओके. माननीय मंत्री जी. उत्तर सदन. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी माननीय रेल्वे मंत्री यांना विचारू इच्छितो की माझ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रेल्वे स्थानकावर एखादा मोठा अपघात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवल्यास प्रवाशांची जलद आणि सुरक्षितपणे निकासी करण्यासाठी कोणती विशिष्ट कार्यप्रणाली निश्चित केली गेली आहे का? जिल्ह्यातील प्रमुख रेल्वे स्थानकावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष महिला RPF कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि हेल्पलाईन प्रणाली कशी कार्यरत आहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी हेही विचारू इच्छितो की रेल्वे स्थानकावर आणि धावत्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांना तात्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी
प्राथमिक उपचार केंद्र किंवा प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध आहेत का? तसेच गंभीर वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती जवळच्या रुग्णालयाशी समन्वय साधण्यासाठी कोणती कार्यप्रणाली आहे? या सर्व सुरक्षा उपायासाठी सरकारने कोणते प्रभावी आणि विशेष निर्णय घेतले आहेत का? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न कवच का रखा था, लेकिन इनके सप्लीमेंट्री में और कई विषय हैं। फिर भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा यहाँ पर। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रेलवे में सेफ्टी पर फुल फोकस देके नंबर 1 प्रायोरिटी देके काम कर रही है और इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। 2014-15 में जहां 135 एक्सीडेंट्स थे, वो 2024-25 में कम होके 31 रह गए, यानी 77% रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर भी इसके बावजूद भी लगातार फोकस है कि रेलवे में कैसे सेफ्टी बढ़ाई जाए, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी लाए, किस तरह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़े, प्रैक्टिसेस बढ़े, इम्प्रूवमेंट आए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कवच के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विश्व में कई समृद्ध देशों ने जहां करीब 20 से 30 वर्षों में लगाए और हमसे आधे परिमाण के उनके रेलवे नेटवर्क्स थे, वहां पर भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिज़ाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रणाली आरंभ की। और पिछले साल 2024 के जुलाई में कवच का वर्जन 4.0 ये अप्रूव हुआ RDSO से, और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोटा से मथुरा के बीच में आपका निर्वाचन क्षेत्र माननीय अध्यक्ष जी, कोटा से मथुरा के बीच में कवच 4.0 का आज या कल के अंदर फुल कमीशनिंग, कॉमर्शियल कमीशनिंग होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में लागू करना वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि कवच प्रैक्टिकली एक तरह से एयरटेल या BSNL जैसी एक पूरी टेलीकॉम कंपनी स्थापित करने जैसा काम है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है। अब तक 5,856 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का केबल लग चुका है। टेलीकॉम टावर लगते हैं, अब तक 619 टेलीकॉम टावर लग चुके हैं। स्टेशन पे डेटा सेंटर लगता है, 708 स्टेशन पे डेटा सेंटर लग चुका है। लोकोमोटिव के अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम लगता है, 1107 लोकोमोटिव में लग चुका है। और ट्रैक के ऊपर लगता है, 4000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पे कवच लग चुका है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गुरजीत सिंह औजला, एडवोकेट चंद्रशेखर, राजेश रंजन, NK प्रेमचंदन, MK राघवन, KC वेणुगोपाल, शफी परिमल, के फर्नांडीज, ED मोहम्मद, एंटोनी बेनी बैनन, हनुमान बेनीवाल, मणिकम टेगोर, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद यादव, रकील हुसैन, OD कर्नल श्रेष्ठ। क्वेश्चन, प्रश्नकाल 0 ओवर में। बैठिए बैठिए, आप अपनी सीट पे नहीं जाएंगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा पप्पू जी। ये संसद के अंदर जो बेल में आएगा या बेल के बाहर बोलेगा उसको मौका नहीं मिलेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है। आज शून्यकाल चलेगा, मैंने आपको विषय बता दिया, शून्यकाल में अवसर देंगे।
सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की सूचीबद्ध कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे अंकित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, Madam, with permission, I write to lay the papers on the table of the House pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4 माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। माननीय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची पे क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री डॉक्टर L मुरुगन जी। Respected Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री रवनीत सिंह जी। Respected Ma'am, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 माननीय मंत्री श्रीमती नीमूबेन बामणिया जी। सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष श्री। आइटम नंबर 9 माननीय सदस्य डॉक्टर D पुरंदेश्वरी जी। कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के पहले और दूसरे प्रतिवेदन की हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी। Madam, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of the implementation of the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Energy on the demand for grants 2025-2026 pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 145th report of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants 2025-26 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thank you, Honorable Speaker. आइटम नंबर 12 माननीय मंत्री डॉक्टर P चंद्रशेखर जी। Madam, in pursuance of the direction 73A of the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay statements showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 2nd and 5th reports of Standing Committee on Communications and Information Technology on demands for grants 2024 to 2025 pertaining to Department of Post and Department of Telecommunications respectively on the table of the House. आइटम नंबर 13 माननीय मंत्री श्री रवनीत सिंह जी। Respected Ma'am, I raise to make a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Railways, presented to Lok Sabha on 10/3/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request the same may be taken as read. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्री सुकांत मजूमदार जी। With your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations, observations contained in the 253rd report of the department related
Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on demands for grants 2025-26 of Ministry of Development of North-Eastern Region, M. Donor. The present status of implementation is as per the statement which is laid on the table of the House. Thank you, ma'am. आइटम नंबर 15 माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत है कि ये सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री पी विल्सन के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अपने एक सदस्य को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के लिए नियुक्त करें और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। प्रश्न यह है, माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। Thank you, ma'am, Chairperson, for giving me this opportunity. I rise to draw the urgent attention of this august House. A deeply disturbing and shocking incident that occurred on July 25, 2025 at Durg railway station in Chhattisgarh. Madam, on that day, two Catholic nuns, Sister Vandana and Sister Preeti, belonging to the Assisi Church Sisters of Mary Immaculate, a Zero Malabar congregation based in Cherthala, Kerala, were attacked and falsely accused of religious conversion and human trafficking by Bajrang Dal. Shame. Madam, they belongs to my constituency. This institution belongs to my constituency. Madam, do you know what they have done? They are helping the cancer patients, that to be a terminating patients, and they do maximum palliative care services. They were helping hence a lot of deprived people. And therefore the people of that area like them very much. They have a service all over India. What happened at the railway station? They, along with other three, these two nurses, two nuns, along with other three women, went to railway station for going for Agra. Suddenly Bajrang Dal people jumped on it and they stopped, they manhandled, and they tried to make slogans and everything. Finally police came. We thought that police will come and rescue them, because last Christmas period, I am also remembering the last Christmas period, our Honorable Prime Minister went to CPCI headquarters and he given a big bhashan and he given full promises to protect minority rights and Christians' rights. In Kerala, madam, our BJP friends, they used to go to Christmas time with a cake. They used to go to Christmas cake. But now what is happening? Last 5 days, these two innocent nuns are in jail. Without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason you are keeping them in the jail. That minorities are there, that are also they are women. Sir, yesterday we sent our MPs, Saptagiri Shankar Ulaka, Premachandran, Benny Bahanan, and this Francis George. They went there, I think you have to allow them also. They will tell what experience that happened. Then the Chief Minister of Chhattisgarh, we wrote the Chief Minister of Chhattisgarh, we wrote the Home Minister of India. At least these nurses has to, this nuns has to be released. No action. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. What a shame activity, sir, madam. How can we allow it?
Therefore, I think this is a high time to act upon. If the government is not acting, the situation will go out of control, madam, because the situation in Kerala is also burning. Everywhere agitation is happening. All sisters are in public. This is not only a Christian issue. When, madam, 1 minute. When in Kerala, these people will attack Muslims. And they will try to make difference between Muslims and Christians. In other part of Kerala, they will attack Christians. Therefore, at least we need to tell this, at least. You are also women, madam. 2 nuns, those who are doing services, are in jail without any reason, without committed any crime. How can it be? The government has to intervene. We need a clear-cut answer. Government have to intervene and they have to release immediately. Thank you, madam. Madam Chairman, श्री केसी वेणुगोपाल एमपी माननीय सदस्य आप संक्षेप में रखिए इस विषय को प्लीज I am very shortly speaking, ma'am. Sir, Madam Chairperson, ശ്രീ കേസി വേണുഗോപാൽ എം പി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത, യാതൊരു തരത്തിലും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാത്ത 2 കന്യാസ്ത്രീമാരെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുക, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന കന്യാസ്ത്രീമാരെയാണ് അന്യായമായി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ കന്യാസ്ത്രീമാരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തണം. മാഡം, ഈ രാജ്യത്ത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല, ക്രൈസ്തവർക്ക് രക്ഷയില്ല, കന്യാസ്ത്രീമാർക്ക് ജനസേവനം നടത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. പാസ്റ്റർമാർ, മിഷണറിമാർ, വൈദികർ എല്ലായിടത്തും ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂಗಾರು ಋತು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಖರೀಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ದೇಶಗಳ ಕಲಹಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 8,13,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರ ಒಂದು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದಂತ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು DAPಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಿರಾ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 258 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಯೂರಿಯಾ ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DAP ಏನು 1,200 ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಏನು ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है जहां शराब के गांव-गांव खोले जा रहे हैं लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मनोहर शराब की दुकानें पास-पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जन नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 को के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर बायरेड्डी सबरी जी। Thank you, Speaker ma'am. Today, I would like to draw the attention of the House about the deliberate remarks made by our YSRCP leaders against the modesty and dignity of women leaders belonging to Telugu Desam Party in the state of Andhra Pradesh. As the father of nation, Mahatma Gandhi said, to call a woman as a weak sex is liable. It is man's injustice towards women. We might be very brute in terms of brute strength, we might be less brute. But in terms of moral strength, we are far better than men. Speaker ma'am, today these remarks have been made when the nation talks about 33% reservation, women reservation, when nation no more talks about women development, but women-led development, which is under our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu garu. As we can see, the first aims is given by a woman. Our languages which are put into the court has been by a woman, and our constitution is what it is today because of our great women, and so is the judiciary and executive. And the nation is led by a woman, and also every woman in this nation is playing a role in strengthening our democracy. Why do you think women perform better than men? This is because we care. We women are wise, outstanding, marvelous, educated, and we are nation builders. Speaker ma'am, we are not in politics just for the sake of a male chauvinist to speak about our character or judge our character. We are here to build the nation's character. And also,
This is our public life should never become a punishment to us. Speaker ma'am, today these remarks, not just verbal abuse, this verbal abuse, I can tell that it is equally offensive as sexual abuse. Today, I'm not speaking as a women representative, but as a daughter, as a sister, as a wife. I'm speaking here, and who cannot be silenced with their abuse, and who cannot be silenced at all in the future. Speaker ma'am, I would like to request to bring in a resolution, to pass a resolution today, and also bring in a law that would protect the modesty and dignity of women of our country, especially women in our in public services. Today, we are here in politics, ma'am. This is a very important topic, ma'am. And also, let us spread a word that abuse can no longer be tolerated. It cannot be normalized, and also the justice should not be delayed. Thank you, ma'am. We shouldn't take names and victim in this Thank you, Speaker, Madam. Madam, சமீபத்தில் நமது மாண்புமிகு தேச பிரதமர் அவர்கள் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு வந்து சோழாவின் பெருமைகளை உலக அரங்கில் பறைசாற்றுவேன் என்று மிகப்பெரிய வாக்குறுதியை கொடுத்திருக்கின்றார். குறிப்பாக ராஜேந்திர சோழனுடைய பெருமைகளை உலக அளவில் கொண்டு சேர்ப்பேன், அதற்கான எல்லா காரியங்களையும் நான் நிகழ்த்துவேன் என்று ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குறுதியை தமிழக மக்களுக்கு, தமிழ் மண்ணுக்கு அளித்திருக்கின்றார். அந்த அடிப்படையில் நான் இன்று இங்கு ஒரு கோரிக்கையோடு வந்திருக்கின்றேன். குறிப்பாக the great Cholas ruled the world and controlled the sea because they had a powerful navy. Their ships carried over 1,000 elephants and they reached far and wide on the east coast. They conquered most of the present-day Southeast Asia nations. The two ports from where they launched their naval expeditions are Pumbugar and Semanar Koil. Both ports are laying within Mayiladurai Parliament constituency. The Prime Minister, while lauding the great Cholas and Gangakonda Cholapuram on July 27th, announced that this government will do everything to propagate the fame of the Cholas. I request the government to announce offshore evacuation of Pumbugar and Chemanar coastal, as they are treasure trove of information on the Chola legacy. Chola's legacy is India's legacy too. If offshore evacuation is done on the scale of Kiladi, India's naval will be known to the world. I request the government to announce a special project, special team and special funds to do offshore evacuation along the coast of Pumbugar and Semanar Koil. Both are the ports of the great Cholas. Madam, today I have been given an opportunity during the 0 hour. My name was balloted, discuss about the farewell of Vice President of India. But I was denied to discuss about the topic. I don't know the best reason. Only Prime Minister only know. I am not ready. I am not. Raman Singh ji. माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से इस महती सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। आज कैंसर की बीमारी एक महामारी का रूप ले लिया है। ये महामारी आने वाले दिनों में सुनामी का रूप लेने जा रही है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैंसर के कई प्रकार के मामलों में वृद्धि देखी गई है। लगभग सभी आयु वर्ग के मामलों में होठ और ओरल कैविटी, सर्वाइकल कैंसर सहित बच्चों के भी कैंसर के मामले में उछाल दर्ज किया गया है और चिंता जताई गई है कि 2050 तक इस क्षेत्र में नए कैंसर के मामलों में और इसके कारण मौत में 85% की वृद्धि हो सकती है। देश में बदलती जीवन शैली, पर्यावरण का क्षरण और कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण 9 में से 1 पुरुष
और 8 में से 1 महिला को कैंसर होने का खतरा है। भारत में प्रतिदिन हजारों लोग इस बीमारी के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से इस जटिल और गंभीर बीमारी के लिए समझ, सतर्कता की आवश्यकता है। इसके प्रकार, कारण, लक्षण और रोकथाम की रणनीतियों के प्रति लोगों को अपने स्वास्थ्य में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। सभी कैंसर के लोगों को कैंसर के बारे में ज्ञान साझा करना, प्रभावित लोगों को समर्थन करना और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख नहीं 25 लाख तक के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। लखनऊ में जो कैंसर संस्थान है उसको एम्स जैसी सुविधा देनी चाहिए और प्रयागराज में जो कमला नेहरू संस्थान है उसको भी सरकारी मदद देनी। धन्यवाद। सदस्यों से मैं आग्रह करती हूँ अपनी बात को 2 मिनट के भीतर रखने की प्रयास करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मेरा महाराष्ट्र और खास करके मेरा सांगली जिला, यहाँ के किसान ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं। जो अंगूर की खेती है बड़े पैमाने में की जाती है और अंगूर से आगे जाके किशमिश बनता है। ये किशमिश का एक्सपोर्ट होता है और बहुत राज्यों में जाता है, इसलिए किसानों को इसमें ज्यादा अच्छी आमदनी मिलती है। दुर्भाग्य है मैडम कि किशमिश के रेट जो भाव है वो गिर रहे हैं। इसका कारण ये है कि चाइना के किशमिश, चाइना में अंगूर बना के उसमें जो किशमिश तैयार होता है वो किशमिश नेपाल के द्वारा इलीगली इंडिया में, भारत में स्मगल हो रहा है और स्मगल होने के कारण उसके रेट गिर रहे हैं और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार ने ये इलीगल इंपोर्ट बंद करना चाहिए। पहले किसानों को जो ये एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्टर को कुछ सब्सिडी दी जाती थी, जिस सब्सिडी के कारण यहाँ डिमांड सप्लाई भी मेंटेन रहता था, किसानों को अच्छी आमदनी मिलती थी। तो सरकार से यह है कि वापस वो सब्सिडी शुरू करे, एक्सपोर्ट के लिए किसानों को कुछ फायदा करवा के दे और इलीगल इंपोर्ट बंद कराए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धर्मवीर सिंह जी। मैं आपका ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी के अंदर बैठे किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला, जिसमें फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती है। हमारे प्रदेश में भी रिकमेंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय जब हरियाणा में चुनाव का दौरान था, आचार संहिता लागू हुई थी, तो 20 अगस्त 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइजर के नाम पर किया गया, जो उसमें अस्तित्व में नहीं थी और उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताई गई। और इससे हमारे भिवानी और दादरी के अंदर कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था वो क्षेमा कंपनी की नाम थी, जो कहीं दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी 2023 में, उस पैसे को लेकर चली गई। मेरा कृषि मंत्री से प्रार्थना है आपके माध्यम से कि वो किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। माननीय सभापति जी, धन्यवाद आपका। आपने लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पे हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आंवला लोकसभा से, आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसी लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन पास किया, इसी लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार
उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे, बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। आपका मैं आभारी हूं, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद झा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज हमारे बीच में प्रभारी मंत्री सरकार की तरफ से श्री अश्विनी वैष्णव जी बैठे हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे भी ये संबंधित रहेगा। मैं चाहूँगा कि उनका मेरी तरफ कुछ आकर्षण रहे। आज पहले प्रश्न पर एक बहुत अच्छा जवाब दिया था माननीय मंत्री जी ने कि किस प्रकार से साइबर क्राइम के ऊपर वह नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी लाखों टेलीफोन, काफ़ी सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है। लेकिन क्या इनको ब्लॉक करना हमारा उद्देश्य की पूर्ति करता है? स्पैम कॉल्स 146 करोड़ दशमलव 3 लोगों को हर रोज दर्जनों के हिसाब से मिलता है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स जो आधार कार्ड से लिंक सिम कार्ड देते हैं, वह अलग अलग कंपनियां, बड़ी कंपनियां जैसे अभिनंदन लोधा है, जैसे पीएनबी मेटलाइफ है, जैसे आईसीआई लोम्बार्ड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इन लोगों को दिए जाते हैं। इन लोगों के नंबर मैंने बार बार दिए हैं और ब्लॉक भी हुए हैं, उसके बावजूद भी नंबर आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या वह इन बड़ी कंपनियों को बंद करेगी, क्योंकि ये जड़ है। यदि इस जड़ को खत्म किया जाए तो यह कंपनी का आप एक नंबर ब्लॉक करें, दूसरा सिम कार्ड ब्लॉक करें, तीसरा करें, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, 3000 सिम कार्ड लेंगे, इनके पास पैसा है। तो मैं ऐसे में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिम कार्ड की जगह यह बड़ी बड़ी कंपनियां, अभिनंदन लोधा, पीएनबी मेटलाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस और ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं, उनको बंद करेंगी? जस्टिस केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्राइवेसी आर्टिकल 121 में मेरी प्राइवेसी है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन हो रहा है। और मैं यह सरकार से कहना चाहता हूं कि इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इंडस्ट्री बैक डाटा थेफ्ट एंड स्पैम न्यूसेंस, हाउ कैन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एआई ड्रिवन साइबर फ्रॉड्स आगे के समय के लिए? तो मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने इसकी संज्ञा ली होगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो लोग सोर्स हैं उनको बंद करेंगे। सिम कार्ड बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 1000, 2000, 10,000 तक ये ब्लॉक करते रहिए, नया नया लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर जी। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने हमारे क्षेत्र के कई गांवों को बुरी तरह प्रभावित किया है। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की मेहनत और आजीविका को गहरा आघात पहुंचा है। इसके अलावा दर्जनों मकान पूरी तरह से ढह गए हैं और कई परिवार आज खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। न बिजली है, न साफ पीने का पानी, न आने जाने की सुविधा। अतः सरकार से मांग करती हूं कि वह संबंधित विभागों को कहें कि प्रभावित गांव को तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए। धान की नष्ट फसलों के लिए किसानों को उचित और जल्दी मुआवजा प्रदान किया जाए। जिनके घर बर्बाद हुए हैं उन्हें पीएम आवास या आपदा राहत फंड के तहत सहायता दी जाए। राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े, दवा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। मेरे आपसे अनुरोध है कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरीश चंद मीना जी। धन्यवाद माननीय सदस्य सभापति महोदय। मैं आपकी इजाज़त से आज इस सदन का ध्यान ऐसी एक महामारी की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो हमारे देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति हमारे युवाओं को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। नशीली दवाओं, पदार्थों का सेवन
ये भयावह स्तर पर पहुंच गया है। मैडम, पिछले 5 सालों में भारत में 11,000 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ सीज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा इसके आदी हो चुके हैं। महोदय, ये जो मादक पदार्थ है गाँवों में शहरों में नहीं, अब हमारे कक्षों में भी पहुँचने लग गए हैं, स्कूलों में कॉलेजों में भी जा रहे हैं और इससे युवाओं का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं होकर अपराध की और नशे की ओर जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर, उसके पास में एक चूरू लोकसभा क्षेत्र है, उसमें ये बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, सरकार विशेष कार्यबल गठित करे और हमारे युवाओं को, हमारे देश को इस नशे की प्रवृत्ति से बचाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। धन्यवाद मैडम जी। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में जलंधर कंटोनमेंट एरिया की कुछ प्रॉब्लम्स जो पब्लिक फेस कर रही है और पब्लिक में जिसकी रिजेंटमेंट है वो सरकार के ध्यान में लगाना चाहता हूँ। एक मुस्लिम ईदगाह कंटोनमेंट एरिया में, मुस्लिम ईदगाह 1909 से मुसलमानों के कब्जे में है, उनको ये दान की गई थी, लेकिन अब उसका एक नोटिस जारी करके 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि इसको खाली करें। दूसरा, वहाँ की जो सिविल लोग रहते हैं कंटोनमेंट एरिया के अंदर, उनकी जो उनको अलॉटेड लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तीसरा, एक उसके चारों तरफ पेरीफेरी एक्ट बनना, रोड बनना है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूं कि ये जो ईदगाह है ये उनको 1909 से उनके कब्जे है, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ वो उनको दान की गई थी ये जगह। 1995 में इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की, लेकिन अब क्या आपत्ति है कि वहाँ नोटिस जारी करके उनको खाली कराया जा रहा है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी रिजेंटमेंट है, मिनोरिटी पे ये हमला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको उनको वापस दिया जाए और ये नोटिस है जो खारिज किया जाए। दूसरा, जो वहाँ के सिविलियन हैं उनको जो अलॉटेड लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन जो बंद कर दी है उसको खोला जाए। और बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। 13 गांव हैं जिनके लिए पंजाब सरकार ने प्रपोजल भेजी है कि कंटोनमेंट एरिया के चारों तरफ एक पेरीफेरी रोड बनाई जाए। वो अगर सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कंटोनमेंट एरिया को, फौजियों को भी फायदा है, क्योंकि उनसे अंदर से लोग होकर जाते हैं, फिर वो पेरीफेरी रोड से जाएंगे। हमारे एमएलए प्रगट सिंह जी भी मंत्री जी से मिलकर गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, ये तीनों बड़े संवेदनशील इशू हैं। मिनॉरिटी का इशू, मिनॉरिटी से उनका जो हक है नमाज पढ़ने का वो छीना जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको सिंसियरली कंसीडर किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री लुम्बाराम चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही दोनों जिले डायरेक्ट जोन घोषित है। यहाँ पे पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर कडारा बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय दिनांक 1 अक्टूबर 1967 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में माही जल बंटवारा समझौते में कांडला बांध का निर्माण हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कडारा बांध का पानी तब तक मिलेगा जब नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में नहीं आता है। चूंकि 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात खेड़ा के जिले में मिल रहा है, तो सतही समझौतों के अनुसार कडारा बांध और माही बांध के 2/3 राजस्थान के सिरोही जालोर के तय हो चुका है। तो समझौतों के अनुसार जालोर सिरोही को पानी उपलब्ध नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, कांडला बांध का ओवरफ्लो होकर पानी सुखलाम सुजाम नहर के द्वारा पानी समुद्र में जा रहा है। भागवत कमेटी गुड़गांव
द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख MTC पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सुखलाम सुफलाम नहर को सुदृढ़ कर नर्मदा कैनाल से जोड़कर जिसको जालोर सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया जाए। इस हेतु राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। आप इसके लिए जालोर सिरोही की जनता और किसानों के तरफ से मैं आपका तहे दिल से आभार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य डॉक्टर किरसान नामदेव जी। धन्यवाद महोदय। कैमरा महोदय, अब ये जून जुलाई में ये फसल लगाने का सीजन होता है और इस समय खाद की किसानों को जरूरत होती है, लेकिन इसी समय जिस समय फसल लगाई जाती है और खाद की जरूरत पड़ती है, उसी समय खाद की किल्लत निर्माण होती है। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये खाद निर्माण का एक यूनिट है। वो यूनिट को बताया गया है कि 70% खाद महाराष्ट्र में और 30% अदर स्टेट्स में दिया जाए, लेकिन ये रेशो मेंटेन होता नहीं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोगों को खाद मिलता नहीं। उसी तरह तेलंगाना में रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगकर है। कुछ तालुका हमारा एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको पास में आता है, तो उस यूनिट का खाद वो हमारे करीब के एरिया को मिलेगा तो वो बहुत सुविधाजनक होगा और जल्दी मिलेगा। ये खाद का सप्लाई समय पर होना चाहिए और इसके लिए ये जो भी सप्लायर्स कंपनियां हैं, इनको ऐसे निर्देश देने चाहिए। ये कंपनियां ये खाद के साथ में लिंकिंग करती है। आपने DAP लिया तो DAP के साथ नैनो यूरिया लेने के लिए मजबूर करती है, तो ये लिंकिंग बंद की जाए और जो भी सप्लाई अश्योर्ड किया महाराष्ट्र को 15,52,000 मैट्रिक टन का, वो अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ 5,20,000 मैट्रिक टन हुआ है। और DAP का जो सप्लाई अश्योर किया गया था 4,60,000 मैट्रिक टन, वो सिर्फ 1,26,000 मैट्रिक टन हुआ है। तो यह सप्लाई सुनिश्चित किया जाए और इस फसल लगाने के समय हमारे किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद। लेकिन जो भी रबी का और खरीफ का जो धान किसानों ने बेचा है MSP पर, उसका पैसा अभी तक मिला नहीं हो, पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। पेंच नेशनल पार्क वन में आजीविका प्रतिबंध उत्पन्न संकट जो उत्पन्न हुआ है मेरे संसदीय क्षेत्र में, मैं सरकार का ध्यान रामटेक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेंच नेशनल पार्क से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या का ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां की आजीविका ही जंगल के ऊपर निर्भर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब से पेंच नेशनल पार्क हुआ है, वहां पे आदिवासियों को आने जाने से रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। उनकी किसानी खेती ये जंगल से लगकर है, उसके वजह से हमेशा उन पे टाइगर अटैक होते हैं, उनकी जाने जाती है। और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक के पिछले 4 सालों में मैंने आंकड़े निकाला है कि पूरे देश में 700 से ज्यादा लोग मारे गए जा चुके हैं। 2023 तक के आंकड़े उपलब्ध है, 3 साल अभी तक के आंकड़े आए नहीं है। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 साल में 11 लोगों की मौतें हो चुकी है मैम। उसके बाद भी अभी तक के सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उनकी उपजीविका ही पूरी जंगल पे है, क्योंकि जंगल को सुरक्षित करने का
पूरा काम ही आदिवासी लोग करते हैं और उनको आदिवासियों को पूरा बाहर कर दिया है। कोई भी योजना में बैठता नहीं है उनका, ना तो पशुपालन के लिए कोई कॉरिडोर बनता है, ना उनके उपजीविका लिए कुछ करते हैं, हमेशा वो मौत से जूझते हैं। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी आपके माध्यम से सरकार से कि उनके लिए कुछ तो भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिनके अंदर उनकी जानें बच सके और उनको खेती करना और उनको उद्योग करने के लिए कुछ तो भी योजना तैयार की जाए। 11 साल से सरकार चल रही है लेकिन आदिवासी की तरफ ध्यान नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आदिवासी भी इस देश का नागरिक है, वो जंगली नहीं है, जानवर नहीं है, इंसान है। माननीय सदस्य श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया। मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस में कोरोना के समय 2 महत्वपूर्ण रेल बंद कर दी गई थी। एक बादीकुई से बरेली पैसेंजर और दूसरी देहरादून से सूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेसवे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन दोनों रेलों को पुनः चलाने की कृपा करें। साथ ही साथ दिल्ली से अलीगढ़ वाया लखनऊ को सुबह सुबह 2 महत्वपूर्ण रेल स्वर्ण शताब्दी और वंदे भारत अलीगढ़ होकर के गुजरती हैं। अलीगढ़ में तो इनका स्टॉपेज है लेकिन हाथरस जंक्शन पर इनका स्टॉपेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो बहुत लोगों को हाथरस से लखनऊ जाना पड़ता है। जनहित में उनमें से कम एक रेल को वहां रुकवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती स्मिता उदय बाग जी। मैं आज इस सदन से मेरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर रही गंभीर असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। पहली गाड़ी संख्या 19,005 सूरत भुसावल एक्सप्रेस जो पूर्व में उधना से रात 11:27 बजे प्रस्थान कर सुबह 8:45 बजे जलगांव पहुंचती थी, अब कोविड-19 के बाद सुबह 7 बजे पहुंच रही है। इस बदलाव से दोंडाचा और धरंगांव के विद्यार्थियों, सरकारी और निजी कर्मचारियों की अत्यधिक कठिनाई हो रही है। उन्हें रात 3 बजे उठकर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। यदि यह ट्रेन उधना से 1:03 बजे चले तो पुनः 8:45 बजे जलगांव पहुंचना संभव हो सके। दूसरी जो गाड़ी है 11:3 देवलाली भुसावल एक्सप्रेस जो पूर्व में चालीसगांव और पाचोरा में क्रमशः सुबह 7:40 और 8:30 बजे पहुंचती थी, अब इसमें 2 घंटे की देरी हो रही है। इस बदलाव से लगभग 5,000 दैनिक यात्री, कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, मरीज, किसान प्रभावित हो रहे हैं। वे अब मजबूरन निजी वाहन या असुरक्षित साधनों से यात्रा कर रहे हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक जोखिम बढ़ रही है। अतः मांग है कि उपरोक्त तो दोनों गाड़ियां समय सारिणी पूर्वक बहाल की जाए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर पर प्रभावित न हो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्रीमती सांभवी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मेरे लोकसभा के लिए इतने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान अपने लोकसभा समस्तीपुर लोकसभा की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। समस्तीपुर लोकसभा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ शिक्षा और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ उठाते थे और उसके लिए वो काम करते थे। मेरे समस्तीपुर लोकसभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जो कृषि के क्षेत्र में रिसर्च और एकेडमिक के माध्यम से देश भर में अपना एक नाम स्थापित करने का काम कर दिया है। पर वहीं पे जहाँ पे कृषि के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारी युवा साथी अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं या कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वैसे इंस्टीट्यूट्स मेरे लोकसभा में नहीं है। आज आपके माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स समस्तीपुर लोकसभा में खुले ताकि मिथिला के जो युवा साथी हैं उनको भी शिक्षा में एक सामान्य अधिकार मिले, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। एक ब्रेन ड्रेन की समस्या मेरे लोकसभा में हो जाती है, क्योंकि अगर उनको कानून की पढ़ाई करनी है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो उनको दिल्ली या पटना या बॉम्बे जैसे शहरों में जा करके करनी पड़ती है। तो ये समस्या का हल हो सकता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार आईआईटी या एनएलयू जैसे इंस्टीट्यूट्स को समस्तीपुर में खोलने का काम करे और युवाओं को भी सामान्य अवसर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगणों, पिछले काफ़ी दिनों से शून्यकाल नहीं हुआ था। मेरे पास शून्यकाल की काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं आज उन सभी लिस्टों में से बारी बारी से नाम पुकार रही हूँ। कृपया केवल अपनी बात एक एक मिनट में रखें। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह जी। नेक्स्ट। माननीय सदस्य श्री महेश कश्यप जी। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया। अभी अभी हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा बस्तर के विषय में बात रखा गया। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, बस्तर जल जंगल जमीन से भरा बस्तर को 60 साल तक काला पानी सजा के बना के रखा। वहाँ माओवाद दिया, गरीबी दिया, अशिक्षा दिया। उसी का फायदा उठा करके आज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य केयर में अलग अलग गतिविधियां चलाया जा रहा है। और जो हमारे जनजाति बहनें जो अबूझमाड़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, उस क्षेत्र में जो कि कोई भी असामान्य आदमी घुस नहीं सकता, वहाँ के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक शोषण कराना, तस्करी करना, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए। बस्तर में आइए, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और कई बार उनको गलत नाम से शादी करके उनके साथ धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, एक तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति बेटी बहनों को रक्षा करने के लिए स्पेशल कानून बने और ये लोग कम से कम उन लोग को संरक्षण न दे, ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। Thank you, madam, for allowing me to speak today. On behalf of the people of Wayanad, whom I represent in this House, I would like to inform the House that it has been 1 year since a terrible natural disaster struck them. Madam, hundreds of people lost their lives. 17 whole families were wiped out. More than 1,600 buildings, including homes, shops, businesses, were destroyed in the landslide and the floods that followed. Madam, hundreds of acres of land were also destroyed and of crop was destroyed. There are coffee plantations there, tea plantations. Most people's livelihoods depend on that, on cardamom, tea, coffee. There are people whose entire lives were destroyed, including auto drivers, jeep drivers, people who run homestays and do small businesses. It has been 1 year now, and I'm sorry to say that they have not been able to be rehabilitated properly. The main reason for this is the lack of support and funding from the center. Ma'am, for 1 year we have been requesting. I personally brought it up in the House many times. We went and met the Home Minister. We have been requesting for funds to be released for Wayanad. So some funds were released, but they were not enough. And they were given as a loan. This is unprecedented, ma'am. For people who have lost their entire lives, their entire livelihoods, they have no finances left. And we are expecting them to repay what the government owes to them to rebuild their lives. National disaster. Ma'am, we wanted it to be declared as a national disaster. That was not done. After much imploring, it was finally designated as a disaster of a severe nature. But none of this is enough, and proof of this is that those victims, their families are still struggling 1 year later. Ma'am, I would like to read to you a judgment by the Honorable High Court
in which Honorable Justice A.K. Jayashankaran Nambiar and Justice P.M. Manoj in the High Court of Kerala, ma'am, have observed that the centre has the power to waive these loans. It cannot take the position that it lacks the power to waive these loans. Ma'am, it is my earnest request, it is my heartfelt and earnest request on behalf of the people of Wayanad that the central government consider waiving these loans, which are small amount for the centre. Yes. Ma'am, only 90 crores of, it would accumulate to only 90 crores and of personal loans and agricultural cooperative bank loans to 36 crores, ma'am. It's nothing for the centre. It is my honest request on behalf of all those people that the government consider this as a humanitarian. माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पिछले 10 साल से या उसके ऊपर से लगातार एक बातें कह रहा हूं सर कि हमारा जो इलाका है संथाल परगना, इस सदन में सभी लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आदिवासी की संख्या हमारे संथाल परगना में 45% था 1951 की जनगणना के अनुसार। आज आदिवासी की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार केवल और केवल 27% है और अभी जो जनगणना स्टार्ट होगी उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 21 या 22% होगा। आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं और उस आदिवासी को विलुप्त करने में वहां की जो राज्य सरकार है वो आधार का सहारा ले रही है, जो आधार सिटीजनशिप का मामला नहीं है, आधार रेसिडेंट का प्रूफ देती है। उसके आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आ रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, जल जंगल जमीन पर वो कब्जा कर रहे हैं और इस कारण से एक दिन ऐसा आएगा, अभी जनगणना हो रही है, 2008 की जनगणना हमारे यहाँ नहीं हुई सर, झारखंड में 2008 की जनगणना इसलिए नहीं हुई कि आदिवासी की संख्या घटने के कारण 1 लोकसभा की सीट और 6 विधानसभा की सीट आदिवासी की समाप्त हो रही थी। और अभी जब जनगणना होगी फिर मुझे लगता है कि झारखंड में फिर से परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2 लोकसभा की आदिवासियों की सीट और कम से कम 12 विधानसभा की सीट घटेगी। और ये सभी को, पूरे देश के लिए एक समस्या है कि आदिवासियों की संख्या घटकर बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, जो हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि वहां एनआरसी लागू करिए और कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए, नेस्तनाबूद करिए और हमारे झारखंड और संथाल परगना को बचाइए। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमज़ोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आज़ादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इन्हें केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में
उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं। वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आरडी अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी। Ma'am, I rise today not as a member of this house, but as a colleague of those thousands of families in Delhi who have been rendered homeless overnight. Let us be clear, there was not just structures of brick and tin. They were demolished, and these homes filled with memories and livelihoods and children's dreams. Today, those children who have books in their hands have instead been holding bricks, standing in the rubble of what once was their shelter. Speaker ma'am, the law is not optional. The Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and DUSIB Act of 2010 and the Delhi High Court's judgment in Ajay Maken versus Union of India all clearly states no eviction without rehabilitation, no demolition without dignity. Yet, bulldozers moved in with no notices. Families were thrown out with no alternative housing. Even where court stays exist, like Jallianwala Bagh and Madrasi camps, homes were still destroyed in open violations of judicial orders. No water, no power, no shelter, just silencing and suffering. And amidst this silence, Speaker ma'am, one voice did rise. The leader of opposition, Rahul Gandhi, in this house, he visited the demolition sites. He walked through the broken lanes and met mothers sitting in the drain with infants in their arms and listened truly to their pain. He came with compassion and clarity, and he asked the one question we must all ask today. If we can send bulldozers so quickly, why can't we send help with the same urgency, ma'am? Before elections, the ruling party friends spent nights in the same bastis. They made promises, jahan juggi, wahan makan. But now, after the elections, it has become jahan juggi, wahan bulldozer. This is not governance. This is abandonment, madam. It is time for this house to take notice, because how we treat the poorest amongst us is not the side issue, but it is the very soul of this democracy itself. माननीय Thank you, सदस्य ma'am. श्री इंदिरा हंग सुब्बा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं सिक्किम के संदर्भ में एक ऐसा मुद्दा को यहाँ रखने जा रहा हूँ सभापति महोदय कि जो 2 दशक से अविलंबित है। लिम्बू और तामांग ऐसे 2 कम्युनिटीज़ जिसको 2003 साल में शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया गया, लेकिन 2 दशक के बाद आज भी इनका सीट रिजर्वेशन सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुआ है। 371 F के अंतर्गत सिक्किम के लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज़ का सीट रिजर्वेशन किया जा सकता है, और शेड्यूल ट्राइब होने के नाते आर्टिकल 332 भी मैंडेट करता है कि शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, इस 18th लोकसभा के शुरू से ही गोवा के संदर्भ में शेड्यूल ट्राइब को सीट रिजर्वेशन देने के लिए रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द असेंबली ऑफ गोवा, इसको ऑलरेडी हाउस में रखा गया है और इसको पास करना अभी जो बाकी है। लेकिन सिक्किम के शेड्यूल ट्राइब जो लिम्बू और तामांग है, इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में 2003 में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन आज तक रीएडजस्टमेंट का कोई बात नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि 371 F और 332 आर्टिकल के अंतर्गत भूटिया लेप्चा के सीट, संघ के सीट
और शेड्यूल्ड कास्ट के सीट को पुनः सुरक्षित रखते हुए लिम्बू और तामांग के लिए भी सीट रिजर्वेशन किया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंडमेंट करके लिम्बू और तामांग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्वेशन का धन्यवाद माननीय सदस्य। सीट रिजर्वेशन किया जाए ताकि जो डिलिमिटेशन अब होने वाला है इस डिलिमिटेशन में एटलीस्ट लिम्बू और तामांग को सीट दिया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्शंस हुए हैं सभापति महोदया कि लिम्बू और तामांग कम्युनिटीज बिना कोई सीट रिजर्वेशन के इलेक्शंस लड़े हैं और आज तक भी उनके कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करते हैं कि लिम्बू और तामांग के ये अविलंबित बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इश्यू को रिजॉल्व किया जाए और सीट रिजर्वेशन किया जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन मैम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सर्व साझीवालता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जैसा जहाँ मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहाँ जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है मैडम वहाँ। ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहाँ धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र बाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं, और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए, और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूँगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूं, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूं। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी नहीं, एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध
उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी। माननीय सभापति जी, अगर आप ये देखेंगी तो लिखा है बड़ा स्पष्ट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर एक्सीलेंसी दैट अराउंड 17:30 hours on the 3rd of December, Pakistan launched a massive air and ground attack on our country all along the western border. Their aircraft bombed Srinagar, Amritsar, Pathankot, Utrali, Ambala, Agra, Jodhpur and Avantipur. There has been heavy shelling on the borders, cities and townships of Ambala, Firozpur, Sulavanki, Khemkaran, Poonch, Medipur and Jaisalmer. Sir, Madam आगे लिखती है, it is also significant that within the minutes of launching of the attack, the Pakistani publicity media launched a malicious propaganda offensive accusing India of having attacked Western Pakistan earlier in the afternoon. Madam, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस समय मुझे मैं कोई छिपा नहीं रहा, मैं आपके सामने तथ्य को ला रहा हूं जो उस समय की सरकार ने चिट्ठी लिखी। मैडम, सवाल ये खड़ा होता है मुझे चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। मैडम, चिट्ठी पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। इन दिस आवर ऑफ डेंजर द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया सीक योर अंडरस्टैंडिंग एंड अर्ज यू टू परसुएड पाकिस्तान टू डिजिस्ट forthwith from the policy of wanton aggression and military adventurism which it has unfortunately embarked upon. May I request your excellency to exercise your undoubtful influence with the government of Pakistan to stop their aggressive activities against India. मैडम, ये कौन गिड़गिड़ा रहा था, कौन गुहार लगा रहा था, कौन मदद मांग रहा था? और मैं पूछना चाहता हूँ, उस समय दम दिखाया या भारत को बेदम करके दिखाया आपने? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के सामने दीनहीन भाषा में ये पत्र क्यों लिखा? और मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने के लिए आप क्यों गए थे? क्या आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं था? आपने कहा कि पाकिस्तान मैलेशियस प्रोपेगेंडा करता है। आज वही प्रोपेगेंडा आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये परिवार और पार्टी दंडवत और झुकने में माहिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं 50%, अरे 50% जीरो का भी जीरो ही होता है। आप में जीरो दम था, हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है और हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को उचित जवाब देकर दिखाया है। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी, श्रेयस पटेल जी, उस पर टिक कर लीजिए। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise with the deep concern to highlight two grave issues affecting maize and coconut farmers in my constituency, Hassan, Karnataka. Firstly, maize, our primary crop, has been severely affected by fast-spreading fungal disease called downy mildew disease. Out of 45,000 hectares sown in this season, over 12,000 hectares are already affected. The disease is both soil and airborne, Madam. Making it highly contagious. Despite local awareness efforts, farmers are unable to contain the spread. I urge the Union government to implement the observation given by the special team from ICAR, who surveyed the issues and approved compensation for affected farmers to prevent deep economic distress, Madam. Secondly, Madam, coconut farmers in Hassan, Karnataka, secondly largest coconut producing district is my district, are facing severe challenges. Cultivation over 1.18 lakhs hectares, mainly in Arsikere and Chandrapatna Taluk, is hit by large-scale pest biocontrol labs in Arsikere and Hode Narsipura, and announced a special support package through Coconut Development Board, Madam. Thank you so much, Madam. माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदया, मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि माननीय रेल मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। सभापति महोदया, रेलवे अधिनियम धारा 70 जो है वह भेदभाव रहित सेवा का नियम करता है। बिहार में चंपारण सबसे बड़ा जिला है और चंपारण में चनपटिया नगर एकमात्र नगर रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी प्रमुख ट्रेनें नहीं रुकती हैं, जबकि वहां पंचायत में भी चंपारण में एक ऐसा स्टेशन है जहां ट्रेन रुकती है। तो मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि
चंपारण में, बेतिया में, जहां SEZ पूरे बिहार में 2 SEZ लिए गए हैं, उसमें चनपटिया लिया गया है और बक्सर है। हमारे चनपटिया का जो स्टार्टअप जोन है उसके लिए DM को पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने DM से कराया कि कैसे आप स्टार्टअप जोन इतना सक्सेसफुल कर लिए। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चनपटिया में सप्त क्रांति एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, पूर्वांचल, अमरनाथ, राप्ती गंगा, पोरबंदर, यहाँ तक कि चंपारण सत्याग्रह भी नहीं रुकती है, जबकि राजकुमार शुक्ला जी की धरती चंपारण है, जो महात्मा गांधी को लेकर के चनपटिया लेकर के गए थे। तो राजकुमार शुक्ला जी की धरती पर भी चंपारण सत्याग्रह नहीं रुकती है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि चनपटिया में इन ट्रेनों का जरूर स्टॉपेज दें। यह एकमात्र नगर है जहां ये ट्रेन नहीं रुकती है। माननीय सदस्य श्री डीन कुरियाकोस जी। सर मैं सोचा स्कोर भी डीन कुरियाकोस। Thank you, Madam. Madam, the National Highway 85 is passing through my constituency from Kochi to Munnar. Madam, the last week, July 11th, Honorable High Court given a judgment. It is against the National Highway development. It was going on there. They banned the widening works which have been taken place there. Madam, the issue is the Forest Department unwantedly intervened in this case. They have no claim in this land. In this particular stretch, Nerimangalam to Valra area, the entire land, the ownership completely vested upon Revenue Department as well as PWD. But indirectly, Forest Department, they helped a private man to go to court, and the Honorable Court intervened and stopped the complete works. My request here, I urge upon this government to seek the intervention of Kerala government to change the affidavit filed by Chief Secretary of Kerala. It was a false affidavit. Due to that affidavit only, the High Court verdict came out against the National Highway Development. I seek the intervention of Government of India to change the affidavit filed by Kerala government. And also, Madam, NHAI advocates, that means the Standing Council of NHAI, they are not at all appearing the courts. They are attending the court procedure in time. That's why I am seeking the intervention of Honorable Minister Nitin Gadkari ji also. Thank you, sir. धन्यवाद मैडम, आपने मुझे अपने लोकसभा से संबंधित यातायात के मामलों पर बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं सबसे पहले एक अच्छे काम के लिए सरकार को और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद दूंगा कि मैंने इसी सदन में और उनके ऑफिस में जाकर अपने यहाँ बलिया मऊ के लिए 4 लेन की मांग की थी। उन्होंने तत्काल आदेश कर दिया। अधिकारियों के साथ मेरी बैठक भी करवा दी और इंस्पेक्शन भी करवा दिया और रोड का DPR बन गया है। हालांकि अब कोई और क्रेडिट लेने आ रहा है, क्रेडिट तो लोकसभा की जनता को जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग क्रेडिट कोई ले, उस सड़क को तत्काल शुरू कार्य करा दे क्योंकि लगातार दुर्घटना हो रही है। दूसरा मामला मैडम वाराणसी से गोरखपुर का है और हमें पत्र भी दिया गया। मैंने माननीय मंत्री जी से जांच करवाया था। जांच में पाया गया कि ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया है, एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। मुझे लिखित रूप से मंत्री जी के यहाँ से पत्र आया कि 30 मई तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। रोज दुर्घटना हो रही है। वहाँ सियरही, 1 मिनट मैडम, सियरही दोहरी घाट पर जो अंडर पास है पानी लग गया है। 10 किलोमीटर तक लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरोज के सामने जो पुल बना है पूरा नहीं हुआ, वहाँ जाने कितने लोग मर गए। वो अगर यातायात नहीं होगा तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। और मैं एक चीज और आखिरी बात बोलकर, दोनों रेल मंत्री जी लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सदन में वादा किया था और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। रेल मंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारे लोगों की। आपने वादा किया था, 1 साल हो गया। मैं पूरा भरोसा है कि जो आपने यहाँ वादा किया था वादा को पूरा करेंगे और हमारे घोषी लोकसभा को। माननीय सदस्य राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैडम, दार्जिलिंग भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन दार्जिलिंग तक जाने वाली सारी सड़कें जो है ट्रैफिक के कारण समस्या से ग्रस्त रहती है। और दार्जिलिंग को जो जोड़ता है मुख्य NH 55 सड़क जो ब्रिटिश काल में बना था, और आज बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोजाना NH 55 में लगभग 15,000 से ज़्यादा वाहन चलते हैं, जो उसकी क्षमता
से लगभग दोगुनी है और इसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ऑफिस में जाने वाले हमारे कर्मचारी और टूरिस्ट सीजन में खास करके जो है लोग फंसे रहते हैं, घंटों उनको सड़क में बिताना पड़ता है। इसलिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जोड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे की मांग मैं यहाँ रखता हूँ और ये जो है सड़क सिलीगुड़ी से जो दार्जिलिंग को जोड़ेगी वो बालासन होते हुए इसका वैकल्पिक मार्ग बन सकता है, जिसके कारण करसंग, मिरिक, सोनादा, रंगबुल, धोत्रे, सुखिया पोखरी और पोखरबिंग वैली जैसे ग्रामीण क्षेत्र को नेटवर्क, मैडम पूरा बोलने दीजिए नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा, नेटवर्क को जोड़ा जा सकेगा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गडकरी जी का भी आभारी हूं कि तीस्ता से जो है दवाई पानी होते हुए लेबुंग जाने तक के लिए उन्होंने डीपीआर की मंजूरी भी दी है। क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, हर जगह सड़क शायद कामयाब नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रोपवे कॉरिडोर बनाने की भी मांग रखता हूँ। घूम से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से बिजनबाड़ी और डेलो से कालिंपोंग और रेली से चित्रे। धन्यवाद माननीय सदस्य, 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। माननीय सदस्य श्री सच्चिदानंदन नंथम जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி பகுதியில் உள்ள மலைகளில் மாலிப்டினம் சுரங்கம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிய வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 400 சதுர கிலோமீட்டர் சுமார் 1 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மாலிப்டினம் எனும் அரிய வகை தனிமம் இருப்பதாக ஜிஎஸ்ஐ அறிக்கை கூறுகிறது. நெய்க்காரப்பட்டி, கரடிக்கூட்டம், சத்திரப்பட்டி ஆகிய வருவாய் கிராமங்களிலும் அதையொட்டி இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதிகளிலும் இடும்பன்மலை, ஐவர்மலை, இரவிமங்கலம் ஆகிய ஆன்மீக இதிகாச தொல்லியல் பகுதிகளையும் குறிவைத்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது. இப்பகுதியில் மாலிப்டினம் சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டால் ஆன்மீக தலங்கள் அழிக்கப்படும், இதிகாச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஐவர்மலை தகர்க்கப்படும், தொல்லியல் சின்னங்கள் தவிடுபொடி ஆக்கப்படும், வளம் கொழிக்கும் விவசாய பூமி தரிசு நிலமாக மாறும் ஆபத்து உள்ளது. தமிழர்களின் பண்டைய நாகரிகத்தை பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை கொண்ட கீழடி அகழாய்வு அறிக்கையை ஒன்றிய அரசு திருத்த முயற்சிக்கிறது. மதுரை அரிட்டாப்பட்டியில் டங்ஸ்டன் சுரங்கம் அமைக்க முற்பட்டது போல் பழனியிலும் மாலிப்டினம் சுரங்கம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு முயற்சித்து வருகிறது. மக்களுக்கு விரோதமான ஒன்றிய அரசின் இத்தகைய நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு பக்கம் முருகன் மாநாடு என்று நடத்தி கொண்டு மறுபக்கம் முருகன் கோவிலான பழனியை அழிக்க நினைக்கும் ஒன்றிய அரசின் தமிழர் விரோத அரசியலை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம். அதே போல கொடைக்கானல் மலையில் है नहीं क्या? दोबारा बोलिए ना, सुना। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। नेक्स्ट नहीं। माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार सार्वजनिक हित में संपत्तियों का निर्माण करती है, लेकिन कई बार उनका उपयोग ही नहीं होता। मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ के महानगर में शास्त्री नगर में स्थित एल ब्लॉक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सन 1988 में अपने कर्मचारियों के लिए 62 मकान बनाए थे, जिन्हें कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया। आज ये मकान जर्जर हालत में है, छतों पर पेड़ उग गए हैं, खिड़कियां, दरवाजे, फिटिंग सब चोरी हो चुके हैं। हर एक मकान की कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, जिससे कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 32 करोड़ रुपए होता है। रात के समय ये भूताहा माहौल बना देते हैं और अपराधों का अड्डा बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार डी ब्लॉक स्थित आवास विकास परिषद का कम्युनिटी सेंटर भी वर्षों से उपयोग में नहीं है और उसमें भी आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं। देश भर में ऐसी अनुपयोगी सरकारी संपत्तियां बड़ी संख्या में हैं। मेरा सुझाव है कि इन संपत्तियों को या तो एज इज वेयर इज बेसिस पर बेच दिया जाए या उन्हें मरम्मत कराकर रेंट पर दे दिया जाए या फिर समाज सेवी संस्थाओं यानी एनजीओज को सामाजिक कार्यों के लिए अलॉट कर दिया जाए। इससे संपत्तियां उपयोगी बनेंगी, सरकार को राजस्व मिलेगा और अपराध भी कम होते चले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। माननीय सदस्य श्री काथिर आनंद जी। माननीय सदस्य श्री खरगेन मुर्मू जी। ये भी नहीं है। धन्यवाद मैडम। नहीं माननीय सभापति महोदया, আমি বিগত 6 বছর ধরে বারবার এই পবিত্র সদনে ভয়ঙ্কর বন্যা ও
ভাঙন পরিস্থিতির বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আজও পুনরায় আপনার সম্মুখে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। ভারী বৃষ্টিপাত এবং নদীর গভীরতা হ্রাসের কারণে গঙ্গা, ফুলোহার এবং কোশি নদীর জলস্তর বিপদসীমা প্রতি বছর অতিক্রম করে চলেছে, যার ফলে ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমার লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা বিলাইমালি গ্রাম পঞ্চায়েত, খাসমহল, নাসরুদ্দিন টোলা, গঙ্গারাম টোলা, কান্তুটোলা, শ্রীকান্ত টোলা, মনিরাম টোলা, আমির চারটোলা, জিতুটোলা ইত্যাদি গ্রামের নদী তীরবর্তী জনবসতিগুলিতে বিধ্বংসী প্রভাবে 800টি পরিবারেরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর 2 ব্লকের উত্তর এবং দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর গ্রামের 235টি পরিবারেরও অধিক ফুলোহার নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং দুর্ভাগ্যবশত গ্রামবাসীগণ তাদের বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং 3টি নদীর তীব্র ভাঙনে সরকারি রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। মহোদয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যথাযথ ত্রাণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी, एक सेकेंड। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি অবিলম্বে গঙ্গা, ফুলোহার এবং কোশি নদীর তীরবর্তী বন্যা কবলিত এলাকার বিষয়টি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী মাননীয় সিআর পাটিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে আলোচনা করে বন্যা ও নদী ভাঙনের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন এবং স্থায়ীভাবে। धन्यवाद। माइक आया नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं आज आपके माध्यम से सदन को करोड़ों जो सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, मैडम, बहुत सारे गरीब लोग जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने छोटे छोटे रकम अपने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए ताकि उनका जो है बचत के रूप में वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। उनका शादी ब्याह, पढ़ना लिखना, घर द्वार बनाना सारा इससे जुड़ा हुआ था मैडम। लेकिन हम सब जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है वो रुक गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम सहारा इंडिया के पैसे को जब्त किया और लोगों को ये आशा है कि उनको ये पैसा मिलेगा। मैडम, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं और जो उनके एजेंट्स हैं, लाखों में एजेंट्स हैं सहारा के, जो अब भी लोगों को आसरा दे रहे हैं कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे और लोग उसमें जो है उनके एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो लौटाने की प्रक्रिया सरकार लौटा रही है, लेकिन लौटाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करे और लोगों को राहत दे। मैडम, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। है नहीं क्या बेनी बहनन जी? माननीय सदस्य श्री जनार्दन सीगरीवाल जी, ये भी नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने की इजाज़त दिया है। मेरे लोकसभा महाराजगंज बिहार अंतर्गत सारण जिला के मांझी प्रखंड में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल मांझी गढ़ है, जो सरजू घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। यह गढ़ बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, क्योंकि यहाँ 13वीं सदी के प्रतापी राजा वीर मक्कर मांझी के किले का अवशेष देखने के लिए आज भी देश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की सीमा से भी लगता है। महोदय, ऐसे ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने की अति आवश्यकता है। इसलिए मांझी गढ़ से अटल राम घाट मांझी तक, अटल राम घाट मांझी महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अटल जी के अस्थि अवशेष के कुछ अंश उस राम घाट पर भी विसर्जित हुए थे, या इसलिए और भी वह घाट अति प्रसिद्ध हो गया है। राम घाट मांझी पर सरजू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर बिहार का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल विकसित किया जा सकता है। अतः मेरा जल शक्ति मंत्री से, धन्यवाद, पर्यटक मंत्री से यह अनुरोध है कि मेरे संसद लास्ट वन। धन्यवाद स्पीकर मॅडम। मी आपलं लक्ष प्राईम मिनिस्टर आवास योजना जी महाराष्ट्रात लागू आहे त्याकडे
करू इच्छित आहे. माझ्याच मतदारसंघात नाही पण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या मोठ्या याद्या येतात आणि त्याच्यामध्ये लोकांना घरकुल मिळालं आहे अशी मंजुरी त्या ठिकाणी मिळत असते. पण अस्तित्वात बघितलं तर त्या गावाकडे किंवा त्या ग्रामपंचायतकडे किंवा त्या गावात गावठाण जमीन नसल्यामुळे त्यांना घरं मिळू शकत नाहीत. पण यादीमध्ये असं येतं की तुम्हाला प्राईम मिनिस्टर आवास योजना घरकुल मंजूर झालंय. मे 30च्या आधी सगळ्या कलेक्टर्सना आदेश दिला होता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून की तुम्ही त्या गावातली जमीन अक्वायर करा आणि ह्या लोकांना तुम्ही जमिनी द्या. जरी गावठाण जमिनी नसल्या तरी गायरान जमिनीवर तुम्ही त्यांना घर बांधून द्यायची परवानगी द्या. अजूनही ती प्रक्रिया पूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झाली नाही आहे. अनेक लोक ज्यांची यादी घरकुलमध्ये ज्यांची नावं घरकुल यादीत मंजूर होऊन आली आहेत ते घरांपासून वंचित आहे. प्राईम मिनिस्टर आवास योजना ही फक्त कागदावर आहे, ही अस्तित्वात नहीं है. आणि अध्यक्ष महोदय, मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि माननीय कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो भी घर गांव की ऐसी जमीन पे है जो गायरान भी नहीं है, गावठान भी नहीं है, वो निकालने चाहिए. इसका मतलब क्या ये है कि 50 सालों से जो लोग वहाँ पे रह रहे, क्या आप उनको अतिक्रमण में घोषित करके क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे स्टे लाने वाली है? Thank you, madam. Giving me permission, I would like to draw the attention of this House of an unfortunate crash of Air India 171 and claim the lives of over 240 persons. I had a very much emotions with this incident because I lost my daughter-in-law, niece, Aparna Mhadik, who was the head of this cabin crew. The purpose to highlight the safety and the compliance measures that are needed, and the compensation is to be provided to the families of the victims. Only 90 families have been given the compensation, yet another families are yet left. India has had a strong safety record by international standards, ranking 55 out of 187 in the ranking by the International Civil Aviation Organization. However, safety concerns still remain. At the international level, the aircraft manufactured Boeing faces scrutiny, specifically for its 737 MAX and 787 Dreamliner aircraft. 787 Dreamliner was involved in the said crash. Domestically, there are high levels of vacancies in the Director General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation, Airport Authority of India, and also air traffic controls. There is also need to be infrastructure and institution for technical training and aviation professional. Thank you very much. मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में बटेश्वर गांव है, जो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है. सभापति महोदय, बटेश्वर गांव में ब्रह्मलाल महाराज जी का मंदिर है, जो तीर्थों के भांजे कहलाते हैं. 108 मंदिरों की श्रृंखला है. बटेश्वर को पर्यटन नगरी के रूप में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विकसित भी कर रही है. बटेश्वर में एक हॉल्ट है रेलवे का, लेकिन अभी तक वो हॉल्ट रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया है. संयोग से आज रेल मंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं. मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थान बटेश्वर में रेलवे हॉल्ट के स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए, जिससे पूर्ण सुविधाएं रेलवे स्टेशन को मिले और देश भर के पर्यटक बटेश्वर में आए. वहाँ यमुना नदी भी है, ब्रह्मलाल महाराज जी भी है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव भी है. तो ये मेरा आपसे, आपके द्वारा, अश्विनी वैष्णव साहब भी यहाँ संयोग से बैठे हैं, मेरी बात को शायद गौर से उन्होंने आज देखा भी है. तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका. मैडम, ये देश और दुनिया के इतिहास में एकलौता एक ऐसा साका होगा जहां किसी एक धर्म के गुरु ने किसी और धर्म की रक्षा करने के लिए अपना शीस बलिदान किया. धन धन गुरु तेग बहादुर साहब, सिखों के 9वें गुरु ने कश्मीरी पंडितों के, जब उनके ऊपर मुगल के साथ उनके धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबर दिया जा रहा था, तो इधर लाल किले से हुक्म हुआ और गुरु साहब चल के दिल्ली आए और लाल किले के सामने शीश गंज साहब ने उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया तिलक जंजू के राखा के वास्ते, जिस करके उनको हिंद की चादर का खिताब दिया गया है. मैडम, आज मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगी
कि जिन्होंने आपके तिल जज्जू की रक्षा करके आपके धर्म को जिंदा रखा। 24 नवंबर को हमारे सिखों ने मांग रखी है, एसजीपीसी ने, कि 24 नवंबर को मार्टरडम डे के नाम से सम्मानित किया जाए, कि गुरु तेग बहादुर की महान शहादत को सम्मानित किया जाए और इसको नेशनली मार्टरडम डे का एक छुट्टी दी जाए। मैं सरकार से ये मांग रखती हूँ कि क्या इसको आप स्वीकार करेंगे? और मैडम, 550 साल गुरु नानक देव जी के अवतार दिहाड़े में आपने हमारे बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जो आज तक 2019 से पूरा नहीं हुआ है। क्या वो वादा भी माननीय सदस्य अरविंद सावंत जी? धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद चेयरमैन मैडम। दिस इज रिगार्डिंग BSNL प्लाइट। आज प्रश्न के काल में 149 नंबर के प्रश्न पर BSNL की हालत के बारे में पूछा था, तो जो 4G टावर के बारे में पूछा था उन्होंने लिखित में दिया है कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के खास करके लिए एक भी जिले में BSNL के और MTNL के टावर नहीं है। कुछ जिलों में BSNL के टावर है, बाकी कहीं टावर नहीं है। आज ये बताने की जरूरत ये है मैडम कि हमने बार बार कहा कि MTNL BSNL के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, बार बार बताते रहे हम इतना काम कर रहे हैं। पिछले सालों में जो बजट एलोकेशन हुआ वो है, कैबिनेट जो एलोकेशन हुआ तो वो था 3,29,364 करोड़ 2019 में। बाद में 1,62,147 करोड़, फिर आ गया 72,028 करोड़ इज प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर 24-25। इतना प्रोविजन होने के बावजूद ये जवाब देते हैं कि सब जगह 99% पे 4G सर्विस शुरू हुई है। धन्यवाद मैडम। पूरी तो कर, मांग ही नहीं पूरी हुई ना। 5 मिनट तक अनुराग ठाकुर बोलता रहा और इतना ये सब इतने प्रोविजन होने के बाद एक मिनट ये इतना प्रोविजन करने के बाद में आज भी टावर्स नहीं है, आज भी MTNL BSNL की सर्विस नहीं है। अब आगे CAG का रिपोर्ट बताता हूँ, उसमें 4 सेंटेंस मुझे पढ़ने दीजिएगा। What CAG report says, 3 sentences are there, madam. They should come on record. CAG says that it has given a report number 1 of 2025 has given the following observation: these non-adherence to the contractual terms and conditions, lack of due diligence, non-billing and deficient planning on part of BSNL and ITI, PSU under DOT, which resulted in loss of 1,944.92 crores, non-billing to Messrs. Reliance Jio Infogram Limited. This is very serious observation of the CAG, and that is why I demand that the government must take... मैडम भाई से क्या कर रही हो आप? BSNL MTNL बर्बाद हो रहा है, आप तो हमें सर्विस देती हो BSNL की, तो चलता है क्या मुंबई दिल्ली में? वो share has gone from 12 to 3% now. The share in the market has gone to 3%, and we would like to request to the government. One is CAC inquiry, second is the improvement of... माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सर अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ जो एक अत्यंत लोक महत्व के विषय को, जो महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी छठ का पर्व मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग आज भी भोजपुरी भाषा भारत में बोलते हैं, और सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गुयाना, मॉरिशस, कहीं पे सेकंड लैंग्वेज है, मॉरिशस में, नेपाल में चलती है वो। तो आज राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी भाषा बोलने वालों, और आज भी संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। इस सदन में कई बार आश्वासन भी आ चुका है। तो आज जो करोड़ों भारत में और भारत के बाहर रहने वाले जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि इस पर निश्चित तौर से उन करोड़ों भावनाओं को पूरा करने के लिए भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बेनी बेहनन जी। Thank you, Chairperson. I wish to bring the attention of the August House a matter of urgent public interest regarding the need of extending the Kochi Metro Rail network to Cochin International Airport via to Angamali. Currently, Kochi Metro operates with the city limits and does not provide direct connectivity to International Airport.
Cochin International Airport is one of the busiest airports in India, serving millions of passengers annually, including a large number of international travelers and NRI from Kerala. Yes. The proposed metro extension from Alway to Angamali via Sial will not only enhance last-mile connectivity for the air travelers, but also decongest existing roads and reduce traffic bottlenecks on the NH 554 corridor. Angamali is a strategic junction on the railway network, and linking it with the metro system would provide multi-modal international integration benefiting both children. Recently, the railway minister and the railway board in principle agreed to start a railway station in the Nedumasheri airport, and the work will start soon. Thank you, Mr. Honorable Minister. I urge the Government of India, the Ministry of Housing and Urban Affairs to take immediate steps to conduct a feasibility study and initiate the process of extending Kochi Metro to Cochin International Airport by Angamali. Thank you. माननीय सदस्य श्री काथिर आनंद जी. Vanakkam, Chairperson. With a voice that echoes the pride of Tamil Nadu and the conscience of this nation, I rise humbly to urge the government to declare Tirukkural, authored by State Thiruvalluvar, as India's national treasure book, madam. This is not a regional demand, it is a national call for moral recognition. Tirukkural is not a religious scripture, but a timeless ethical masterpiece, 1,330 couplets that teach virtue of Aram, Porul and Inbam. Its verses speak non-violence, justice, compassion, equality and duty, madam. Madam, in the same house, Prime Minister has quoted from Tirukkural, Finance Minister has quoted from Tirukkural, and many others have also displayed the verses in this parliament. Madam, this is not a new demand. Tamil Nadu House has already passed resolutions to announce Tirukkural as a national treasure book, madam. Madam, why is this delay? In these challenging times when the public life earns for ethical grounding, what better beacon can Tirukkural? It transcends religion and language. It unites where the politics divides. By declaring Tirukkural as a national treasure book, we honor not just Tamil heritage, but India's commitment to dharma, dignity and moral clarity. I appeal to the Honorable Minister and this government to declare Tirukkural as a national treasure book. Thank you, Madam. जी सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महोदया, हमारा जो शिक्षा का अधिनियम है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत देश के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक 1 किलोमीटर पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए विद्यालय खोले गए। केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के सहयोग से विद्यालय खोले गए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा के इस महत्व को समझते हुए संविधान में उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था 45 में, अनुच्छेद 45 में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाखों लाख विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई कमजोर होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ साथ जो वहाँ पर कार्यरत रसोइया हैं उनका भी रोजगार छिनेगा, शिक्षा मित्र का रोजगार छिनेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ, माननीय श्री नरेश उत्तम जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं ये मांग करता हूं कि उन प्रदेश केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में वो विद्यालय बंद न किए जाए। धन्यवाद। Madam, whenever an MSME seeks a loan to buy a machinery, they are compelled to buy a machinery breakdown insurance policy. But when the machinery breaks down and they want to repair the machinery, the insurance company denies and delays the claim, saying that they must pay for the repair and only then come and claim it. This actually impedes business, and the bank will not finance the repairing, and the insurance company will also not give the money to repair the machinery. The small entrepreneur is hamstrung because of a broken machinery which we can't repair. There is nothing in the insurance policy which tells that they must pay for the repair and then claim it.
This is a breach of contract, and it makes doing business very difficult. While this government talks about Make in India, they must remove these little niggles which are there in practically in day-to-day life, so that businesses can. की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 19 के बाद पहली बार पटना जलमग्न हो गया, डूब गया। राजेंद्र नगर से लेकर के पूरा का पूरा पटना के हर घर में पानी है। नेता कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं। बिहार में लगातार अभी आरा के शाहपुर के जमनिया गांव 5 गांव कट गए। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बीन, मलाह, केवट, नुनिया, एबीसी, एसटी, एससी का पूरा गांव टूट गया। वहां एक ठेकेदारों ने गंगा के कटो गलत बालू माफियाओं की मिली भगत से अभी 9-9 करोड़ रुपया दिए, उसको भी लूट लिए। इस तरीके से नगर निगम में, मैडम, नगर निगम के जो पदाधिकारी है, एक बड़ा माफिया रिशु सिंह को यहाँ से दुबई भगा दिया, जिसने लूटा। और पटना को लूटने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार के मंत्री और इसकी है। मैं माननीय चेयरमैन पर्सन से आग्रह करूंगा कि आप इसको देखें। नौगछिया, कुर्सेला, रुपौली, बायसी, अमोर। मैडम देखिए, अभी मैं एक मिनट हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। आप सभी सहयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल पाएंगे। माननीय सदस्य सभापति जी, मैं देश का एक बहुत ही सीरियस इशू सदन के सामने और सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूँ। सभापति जी, इस देश के जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के जो 35 इयर्स के बिलो पॉपुलेशन है वो 65% है महोदया जी। लेकिन इस 65% पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन के सामने बड़ा एक समस्या है। वो समस्या है ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। इस अल्कोहल ड्रग्स एडिक्शन में पूरे देश में जो हमारे यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उनका मुताबिक पूरे देश में 1.48 करोड़ हमारे यूथ है जो अभी इस ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन का शिकार है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, इमीडिएटली ड्रग्स एंड एडिक्शंस इसको जो इसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म। धन्यवाद मैडम। पंजाब की पप्पू जी, पंजाब की राज्य सरकार पंजाब के किसानों की जमीन छीनना चाहती है। पंजाब के अंदर लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत 50,000 एकड़ को किसानों से छीना जा रहा है। आज पूरे पंजाब में पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो 3 काले कानून आए और अब राज्य सरकार ने यह कह दिया, किसानों को डराया गया है कि आप अगर जमीन नहीं दोगे तो इसके बाद आपकी जमीन का कभी CLU नहीं होगा। 1 एकड़ लेकर उनको 1000 गज का रहायशी प्लॉट दिया जा रहा है और 200 गज का कमर्शियल। किसान जमीन देना नहीं चाहता। किसान चाहता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारी जमीन छीनी ना जाए। भूमि अधिग्रहण कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार इंटरफेरेंस करे और किसान की जमीन छीन देना। सुश्री मिताली बाग जी है नहीं क्या? ये मिताली बाग जी नहीं है? मिताली बाग जी वो सामने है। माननीय सदस्य श्रीमती सुश्री मिताली बाग जी, माइक नहीं है। নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। পশ্চিমবাংলার মানুষকে বারবার আক্রমণ ও বঞ্চনা
আলোচনা করা হয়েছে। এবার শুরু হয়েছে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ। তাই বলবো সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় নজরুল, অর্থাৎ এই বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এই বাংলা কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা, এ বাংলা মাতঙ্গিনীর বাংলা, এ বাংলা বিদ্যাসাগরের রাজা রামমোহনের বাংলা। যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার চলছে এবং বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা বলি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলনমোহন। সর্বধর্মের মানুষ একসাথে বাস করবে, এটা নামই ভারতবর্ষ। তাহলে কেন এই দ্বিচারিতা, কেন বাঙালিদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ? আজকে হঠাৎ করে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে, এরকম চিৎকার করা হচ্ছে। তাহলে তো বলতে হয় যিনি ভারতবর্ষে চৌকিদারি করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি কি কিছুই জানেন না? 2012 সালে 25শে মে মুম্বাই হামলা হয়েছিল, তখন মোদিজি তৎকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বলেছিলেন যে বর্ডার আপনার, সীমান্ত আপনার, বিএসএফ আপনার, পোস্টাল সিকিউরিটি আপনার, সব কিছু আপনার। তাহলে কিভাবে অনুপ্রবেশকারীদের আগমন ঘটলো? আর আজ এই প্রশ্ন কেন মোদিজির জন্য প্রযোজ্য হবে না জানতে চাই বাংলা, জানতে চাই ভারতবর্ষ। বিজেপি একটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে খোঁচা মারছে। ओम प्रकाश निंबालकर जी। धन्यवाद सभापती महोदय. मी आपलं लक्ष देशातील अतिशय गंभीर गोष्टीकडे आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. सभापती महोदय, ऑनलाईन गेमिंगचा विळखा हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सामान्य कुटुंबांना गिळंकृत करतोय. सभापती महोदय, मला एक उदाहरण द्यायचं आहे. माझ्या धाराशिव तालुक्यातलं बावी गाव, लक्ष्मण जाधव नावाचा एक JCB चालक ज्यानं स्वतःच्या 2 वर्षाच्या मुलाला आणि पत्नीला विष देऊन त्या ठिकाणी त्याची हत्या केली आणि स्वतः आत्महत्या करून हा ग्रस्त त्या ठिकाणी मेला. सभापती महोदय, हे कारण मरण्याचं केवळ ते ऑनलाईन जी जंगली रम्य ॲप आहे ते आहे. मला वाटतंय ह्या ऑनलाईन गेमिंग ॲपमुळं ग्रामीण भागातले खूप मोठ्या प्रमाणात तरुण त्या ठिकाणी ह्या जंगली ॲप, ह्या ऑनलाईन गेमिंग ॲपला त्या ठिकाणी बळी पडतायत. माझी विनंती सभापती महोदय, मला फक्त एकच मिनिट माझा मुद्दा मांडू द्या. सभापती महोदय, केंद्र मला फक्त एकच विनंती करायची आहे की राज्य सरकार म्हणते हा केंद्राचा विषय आणि केंद्र सरकार म्हणते राज्याचा विषय आहे. माझी विनंती एवढीच आहे की केंद्र सरकारने याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून या ठिकाणी. माननीय सदस्य मलिक जी. माननीय सभापति, धन्यवाद. देरी सही आपने मौका तो दिया. मान्यवर, पूरे देश में किसानों का खाद के नाम पर शोषण किया जा रहा है. सरकार कान में तेल गेर करके बैठी है. किसान जो अपनी फसल के लिए डाई का खाद लेता है, डाई की शॉर्टेज है, उसके साथ हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, IPL, क्रबको, इफ्को अधो मानक पोटास दे रही है, जिसमें मात्र 14.5% पोटास है. किसान को 1500 रुपये में 60% पोटास का बैग मिलता था 50 किलो का, अब उसे 750 रुपये में 14.5% का बैग मिलता है. इस प्रकार 60% का पोटास लेने के लिए किसान को 3000 रुपये देने पड़ते हैं, डबल पैसा देना पड़ता है. और दुख इस बात का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों से वो खाद खरीद करके, जो कारखाने की राख लेकर के, राख में प्राकृतिक रूप से पोटास होता है, उस राख को बैग में बंद करके, मेरे जिले में 5 कारखाने हैं और वो बेच रहे हैं कोऑपरेटिव के, इफ्को के, क्रबको के, IPL के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया कमा किसान लूट रहा है. अकेले राजस्थान में 20,000 टन की बजाय 60,000 टन पोटास बेच दिया गया. मानवर, किसानों का बेहद शोषण है. मेरा अनुरोध आपसे कि अधोमानक पोटास बेच करके पैसा कमाने वालों के खिलाफ विधिक माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठा रहा हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र में देवरोड कैंटोन बोर्ड है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई. केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड वहाँ के महानगर पालिका में शामिल कर रहे हैं. वैसे कि पूना जिले में पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड और खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड
उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किए। देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अलग करे। मेरी मांग है कि देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड ये पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन बोर्ड में शामिल किया जाए और केंद्र सरकार उसको वित्तीय सहायता समय पर नहीं देती, इसलिए बहुत सारी समस्याएं। तो मैं फिर से मांग करता हूं कि देवरोड कैंटोनमेंट बोर्ड पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन में शामिल किया श्री जाए। वर्षा गायकवाड़ जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और यहाँ पे रेल मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगी कि मुंबई शहर में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अगर कोई इस्तेमाल होता है तो रेल का इस्तेमाल होता है। मुंबई में लगभग 70 लाख लोग हैं वो रेल से ट्रैवल करते हैं। और मैं उनको मालूमात देना चाहती हूँ, जनवरी 2015 से लेकर मई 2025 तक में 10 सालों में रेलवे की दुर्घटना में जो है लगभग सम्मानीय अध्यक्ष महोदया 26,547 लोगों की उसमें मौत हो गई है, जिसमें से 14,175 लोग की मौत ये सिर्फ ट्रैक को पार करते हुए हुई है। मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपके माध्यम से उन्हें कि उसमें से सिर्फ 1,408 लोगों को, मृतक फैमिली को जो है वो 103 करोड़ रुपयों की जो है वो मदद मिली है और जो इंजर्ड हुए हैं उन लोगों को 14 करोड़ की मौत जो है 14 करोड़ रुपयों की जो है वो आर्थिक मदद मिली है। मुझे आपके माध्यम से ये भी बताना है कि मुंब्रा के अपघात में जो दुर्घटना में जो है वो 10 लोग घायल हो गए, उसमें से 5 लोगों की मौत हुई है। धन्यवाद। तो हम ये आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो कवच की बात कर रहे हैं। प्रिया सरोज जी। और कुछ धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर के अंतर्गत बरसेट्टी रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ से बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर, प्रयागराज और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन स्टेशन पर बैठने की सुविधा, पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यदि यहाँ आवश्यक सुविधा विकसित किया जाए तो यात्री को राहत मिलेगी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा। और साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूँ और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों, कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज टिंगा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल में जो चाय उद्योग है उसका दिन प्रतिदिन अवस्था खराब होता जा रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर में जो चाय बागान है वह वामफ्रंट के 34 साल तथा टीएमसी के 14 साल के शासनकाल में उदासीनता के कारण एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और वहाँ के जो श्रमिक हैं वो पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि चाय उद्योग में ज़्यादातर आदिवासी और गोरखा वहाँ पर हैं और चाय बागान बंद होने के कारण पलायन कर रहे हैं और काम करने के बावजूद समय पर उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनका पीएफ का पैसा काटा जाता है, लेकिन मालिक पक्ष पीएफ का पैसा जमा नहीं करते हैं और वे गबन कर जाते हैं। और वहाँ पर शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, आवास, जमीन का मालिकाना अधिकार जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। और वहाँ पर यहाँ तक कि बागान बंद होने के कारण, समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण वहाँ पर मानव तस्करी जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैडम इस पवित्र सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर चाय बागान का अवस्था सुधारने के लिए मैं आपके माध्यम से आवेदन करता हूँ। धन्यवाद मैडम। माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारदी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने क्षेत्र मलाजखंड परियोजना SCL के एक विशेष मुद्दा सभा में रखना चाहती हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड ताम्र परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत जो छिंदी टोला, सूजी और बोरखेड़ा और उसके आसपास के गांव में गंभीर और चिंताजनक समस्या का ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ।
SCL से निकलने वाली परियोजना से निकलने वाला जहरीला रासायनिक तत्व के कारण क्षेत्र की उपजाऊ जमीन जो है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। जल स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं, विषैला हो चुका है। प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य जीवन पर, पशुधन पर पड़ रहा है। कृषि गतिविधियां भी वहां पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है, जिसका स्थानीय जनता का जनजीवन अत्यंत कठिन हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर बोरवेल तथा पानी की अत्यधिक असुविधाएं हैं और जहरीला पानी निकल रहा है। इसके अलावा भी कंपनी जो कॉपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, CSR की योजनाओं से प्रभावित जो भी काम हो रहा है वो बड़ा ही प्रभावहीन है, जिसके विकास कार्य की राहत राशि केवल कागजों पर है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वर्षों से किए गए रोजगार और मुआवजे के वादा पूरी तरह से निभाया नहीं गया है, जिससे प्रभावित जनता को गहरा असंतोष रहता है। मैं आपके माध्यम से संबंधित विभागीय मंत्री से अनुरोध करती। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। आपके माध्यम से केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर पॉलिसी के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा कई हजार विद्यालयों के अंधाधुंध बंदी की जा रही है, जिससे प्रदेश के करीब छोटे छोटे बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ हजारों परिवारों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इससे करीब 3.5 लाख बच्चियां प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के लाखों गरीब मजदूर, किसान और ग्रामीण के बच्चियां का भविष्य अंधेरे में डालने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 5000 विद्यालय बंद हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का सवाल है, जिससे पूरे प्रदेश में विरोध और जन आक्रोश है। यह नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यह नीति शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विष्णुपद राय बोलिए। माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी। नमस्कार। मैंने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। लाक्षाद्वीप रिमोट एरिया में 2021 साल में अंडर आर्टिकल 16(4) में डोमिसाइल लॉ बनाया, 40 इयर्स एज का रिलैक्सेशन दिया है। मैं सेम मांग करूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक कानून को लागू करे। तक अंडमान निकोबार रिमोट बैकवर्ड एरिया में आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को संविधान माध्यम से आर्टिकल 14 के माध्यम से लक्षद्वीप का तरह 40 साल उम्र में और यूनियन टेरिटरी का नाते अंडमान निकोबार को डोमिसाइल लॉ में लागू करे। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। मैडम वेरी इंपॉर्टेंट मैडम धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान औरंगाबाद जिला के एक महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। महोदया, औरंगाबाद जिले में कई को पर्यटक स्थल देव सूर्य मंदिर, जहां लाखों छठ व्रतिया प्रतिवर्ष आते हैं, उमगा पहाड़, देवकुंड और गजना धाम जैसे अनेकों पर्यटक स्थल है महोदया, जहां लाखों श्रद्धालु औरंगाबाद जिले में आते हैं। अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन वहां है महोदया। हम माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वंदे भारत का ठहराव, एक भी ट्रेन का ठहराव उस अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर नहीं है। पर्यटक को ध्यान में रखते हुए हमारी आग्रह है कि अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अति आवश्यक किया जाए महोदय, और रफीगंज स्टेशन पर पुरुषोत्तम का ठहराव वहां पर किया जाए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश लंके जी। माइक 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 माइक। अध्यक्ष महोदय, मी एक महत्त्वाच्या विषयावर आपले लक्ष वेधत आहे। अखंड हिंदुस्थानाचे आदर्श राजे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज 6 जून 1674 रोजी किल्ले रायगडावर राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला। महाराज अधिकृत छत्रपती झाले। त्यानंतर महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली। जसे आपले मंत्रिमंडळ आहे तसे महाराजांनी हे अष्टप्रधान मंडळ होते। त्यानंतर रायगडावरून स्वराज्याचा राज्यकारभार सुरू झाला। विविध खात्यांचे स्वतंत्र प्रधान किंवा मंत्री नेमले गेले। जगात कुठेही लोकशाहीचा मागमुसई किंवा अस्तित्व नसताना
शिवराज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या लोकशाही जीवनमूल्याचा पाया घातला. पुढे हाच महाराजांचा वैचारिक वारसा महात्मा ज्योतिराव फुले असतील, राजश्री शाहू महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, या असं अनेक महापुरुषांनी हा विचारांचा वारसा समर्थपणे महाराष्ट्र आणि देशभर चालवला. अशा या शिवदुर्ग दुर्गराज रायगड किल्ल्यावर आपले एक दिवस Ma'am, on 25th July, ma'am, on 25th July, two nuns from Kerala, Sister Preeti Mary and Sister Vandana Francis, were wrongfully arrested in Chhattisgarh Durg railway station. Ma'am, these nuns have been doing exemplary work in terms of education, in terms of healthcare, but the Bajrang Dal workers have made pressure on the government and jailed them for the last 6 days. These nuns have been since false accusations have been made, cases have made wrongfully on the basis of human trafficking and also anti-conversion. Sir, madam, you should understand this is your political case. The BJP. जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में हैं, उनको सभी सदस्यों को कल मौका दिया जाएगा. नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष महोदय जी द्वारा माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामलों को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं. आइटम नंबर 17. अब हम मणिपुर से संबंधित सांविधिक संकल्प को पारित करेंगे. जैसा कि माननीय सदस्यों को कुछ माननीय सदस्यगण शून्यकाल में बोलने की इच्छा रखते हैं. कुछ सदस्यों को और मैं मौका देती हूँ. ये संजना जाटव. माननीय कुछ सदस्यों को और अवसर दे रही हूँ. माननीय सदस्य श्रीमती संजना जाटव. ये बोलो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर की जो मेन समस्या है पानी के की ओर आकर्षित करना चाहूँगी. अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पानी की टंकियाँ तो बन चुकी हैं किंतु उसमें जल आपूर्ति नहीं है. इस योजनाओं के अंतर्गत जो अधिकारी ठेकेदार की मिली भगत से कई स्थानों पर केवल कागजों में ही कार्य पूर्ण दिखाई दे रहे हैं. हकीकत में ना तो जल आमजन को मिल रहा है, ना ही उसकी गुणवत्ता युक्त निर्माण किए जा रहे हैं. और पानी की जो पाइपलाइन है वो भी घटिया क्वालिटी की बिछाई गई है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही. पानी की जो पाइपलाइन बिछाने के जो सड़कों को खोदा गया है, ना तो उनको रिपेयर किया गया और ना उनको जैसे आमजन को आने में भी बहुत सामना करना पड़ता है. कुछ स्थानों पर तो बिना किसी कार्य के फील्ड इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों को कई करोड़ रुपयों का भुगतान भी कर दिया गया है. इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं दिशा की मीटिंग में भी अधिकारियों को जवाब मांगा गया, पर मुझे आज तक कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला गया है और उनके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई की गई है. मेरी सरकार से मांग है अध्यक्ष महोदय कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. इस प्रकार की लापरवाही द्वारा भविष्य में मनोज कुमार जी. बस ठीक है. माइक दिया जाए मैडम. माइक. महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अति महत्व जो प्रश्न है उसको आपके माध्यम से सरकार
से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, ये जो सवाल है प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 2,45,000 रसोइयाँ जो बिहार में काम कर रही हैं उनका रिलेटेड है। महोदया, आपको बताना चाहता हूं कि 6 से 7 घंटा सभी रसोइयों से स्कूल में काम करवाया जाता है। इवन रविवार को भी, संडे को भी छुट्टी में भी बुला करके काम कराया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी जो है केंद्र सरकार से 1,000 मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वो 650, सब मिलाकर के 1,650 रुपया दिया जाता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 मिलना चाहिए। 65 साल का इनका नौकरी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 12 महीना 10 ही महीने का इनका सैलरी मिलता है 1,650 रुपया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज दैनिक वास्तविकता ये है कि जो जिंदगियां छीनी जा रही हैं, प्रतिष्ठा नष्ट करी जा रही है और सार्वजनिक संवाद में जहर घोल दिया जा रहा है। हमारे बीच जो सबसे कमज़ोर है, अक्सर सबसे पहले शिकार वो होते हैं। युवा और महिलाएं लगातार साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, महिलाओं को सार्वजनिक और ऑनलाइन जीवन में भाग लेने से रोकता है। परिवारों को की अखंडता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में एक क्लिक से चकनाचूर हो रही है। मैडम, ये उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के बारे में नहीं है, ये जवाबदेही का एक ढांचा स्थापित करने के बारे में है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानहानि, उत्पीड़न और हिंसा के लिए उकसाने का लाइसेंस नहीं बना सकते। हमारे कानूनी ढांचे को मजबूत करें। हमें वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से परे जाकर उचित और सही सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। इन नियमों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी चाहिए। मैडम, सेंसरशिप खतरनाक और अवैध सामग्री पे एक आवश्यक नियंत्रण है और विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच जिम्मेदारी सोशल मीडिया का उपयोग के बारे में सिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानों में निवेश करना की आवश्यकता है। अंत में मेरा निवेदन है, इस सदन के माध्यम से हमारा डिजिटल भविष्य एक चौराहे पे खड़ा है। हम या तो अपने समाज में गलत सूचना, नफरत और भय को इरोड होने दे सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं, एक साहसिक निर्णायक कदम उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छे उपकरण के रूप में काम करे। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं, राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित, अधिक जिम्मेदारी और अधिक न्यायपूर्ण डिजिटल भारत के निर्माण में हम साथ आए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद जी। माननीय सदस्य श्री प्रभा मल्लिकार्जुन जी, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। Thank you, Speaker Madam. I wish to raise concern about the need to revise the wage ceiling under the ESI scheme. Currently, workers earning above rupees 21,000 per month are excluded from ESI coverage. This limit has not been revised since 2017, despite rising wages and inflation resulting in the exclusion of lakhs of vulnerable workers from vital social protection. States like Karnataka have proposed scientific revisions to minimum wages with a draft notification suggesting monthly wages from rupees 19,000 to over rupees 34,000. I urge the government to expedite this process, raise the ESI ceiling to rupees 30,000 per month, institutionalize periodic revisions and safeguard existing beneficiaries through statutory amendments and stakeholder consultations. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी। Speaker Madam, thank you for this opportunity. Bengaluru is India's economic engine. It is one of the most important cities today and for the next 20 years for India's growth. However, the city is suffering from a big infrastructure deficit, and the only way that traffic congestion in the city can be addressed is through expedited metro expansion. Madam, through you, I want to request the Honorable Minister of Mahua to kindly expedite the opening of the already delayed Yellow Line operations. This connects the residential part of Bengaluru to the electronic city, and once opened,
more than 8 lakh people will travel in it every day. So my request is to kindly open it as soon as possible. The second request I have is, 4 months ago, the BMRCL hiked the metro fare prices by 130%. Public transport, especially services like metro, must be affordable to the common man. This hike in metro fare has resulted in a deep and steep reduction in the ridership. In the last 4 months, despite multiple requests, BMRCL has not made public the Fare Fixation Committee report. Madam, this is a democracy. Public, especially riders who travel in metro, deserve the right to know on what basis BMRCL increased the metro fare by 130%. My request to the minister is to kindly instruct authorities of BMRCL to immediately publish the Fare Fixation Committee report. The third and final request I have is, from the last few months, the approval for the Red Line Metro, which connects the most important critical corridor of Bengaluru, is pending before the ministry. I request through you, the minister, to kindly expedite the approval for Red Line Metro to ease the traffic congestion in Bengaluru. Thank you so much, madam. माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जाट जी. Matter, I am again raising this matter of arrest of nuns in Chhattisgarh, madam. The matter is, the facts of the matter is very well known to the House. It was raised early in the morning. Madam, the bail application, when it was moved in the Sessions Court, the court has committed it to the NIA court now. The issue is getting more serious now. So, madam, this is an absolutely, concocted case which has been taken up by an outfit, which is very unfortunate. The state government has to act. We had requested the Chief Minister to immediately intervene in this matter. Now that it has gone out of the hands of the state government, we would request the central government of India, central government Home Ministry, to intervene in this matter and get justice for those two hapless women who has been jailed for no fault of theirs. Actually, seeking employment is not a crime, madam. We have 2.5 million migrant workers in Kerala. They come through various sources. Likewise, these ladies, they sought employment with these nuns, and they had come to take them to their place. And the Bajrang Dal, they alleged, human trafficking and forced religious conversion, and the police have registered a false case. It's very unfortunate. This cuts at the very root of freedom of faith and movement, freedom of movement, which are constitutional values guaranteed in this country. This is a democracy. This is a secular nation. This case, sir, if it is not solved immediately, there will be widespread consequences in our country. I request the central government to immediately intervene and get justice for these two hapless nuns who have done nothing wrong, nothing against the law. I would request the central government to intervene in this matter. Thank you. माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी. Important issue of my area. मैं पंजाब से आता हूँ. पटियाला में एक बरसाती नदी है जो पिछले दशकों से हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. जनधन का नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, फसलें तबाह होती हैं, आर्थिकता तबाह होती है. शहर और गांव दोनों जगह पे लाखों लाख लोग प्रभावित होते हैं. परंतु पिछले कई दशकों से इस नदी का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया गया. मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये नदी जो हिमाचल से बनती है और हमारे मोहाली, पटियाला, संगरूर और बठिंडा जिले में 4 जिलों में ये नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा तबाही लाती है, तो इसका कटिबद्ध किया जाए. यहाँ चेक डैम बनाए जाएं और चेक डैम के दोनों तरफ वहाँ पे जो है कोई तालाब बनाए जाएं जहाँ मछली पालन से लेकर एक तो किसानों की आय में जाती बढ़ोतरी होगी और दूसरा सिंचाई में ये पानी काम आएगा और तबाही से भी हमारा प्रदेश बच जाएगा. सो घग्गर नदी के बारे में मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा उठाना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया. थैंक यू वेरी मच. माननीय सदस्य श्री सुरेश महात्रे जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जे काही दिवसातच चालू होणार आहे आणि या विमानतळासाठी स्वर्गीय
दिवा पाटील साहेबांचं नाव द्यावं असं स्थानिक भूमिपुत्रांची मागणी होती आणि त्या मागणीला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारच्या विधिमंडळात आणि विधान परिषदेत देखील दोन्ही ठिकाणी एकमताने ठराव मंजूर होऊन तो ठराव केंद्र सरकारकडे आलेला आहे. मी दिवा पाटील साहेबांविषयी एवढंच बोलेन मॅडम की 2 वेळा खासदार, 5 वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि खास करून त्यांच्या प्रयत्नामुळे 1989 मध्ये महाराष्ट्रात जी महिला भ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायदा लागू झाला त्याचं समर्थन केंद्र सरकारने देखील केलं आणि 1994 मध्ये केंद्र सरकारने देखील त्या कायद्याला मान्यता दिली. 1984 मध्ये जो झाशी गावचं आंदोलन झाला सिडकोच्या विरोधात मॅडम, त्या आंदोलन देखील दिवा पाटील साहेब स्वतः जखमी होते, 5 लोक हुतात्मे झाले आणि त्यानंतर भूमीच्या बदल्यात भूमी असं 12.5% पुनर्वसन धोरण लागू करण्याची मोलाची भूमिका त्यांच्यामार्फत बजावली गेली. 2013 मध्ये जो कायदा लागू झाला भूमी अधिग्रहण कायदा त्याच तत्वावर तो लागू होता आणि म्हणूनच या ऐतिहासिक आणि सामाजिक योगदानाला उचित सन्मान देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणूनच मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की त्या निर्णयाची लवकरात लवकर पूर्तता करावी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दिवा पाटील साहेबांचं नाव द्यावं जेणेकरून आत्तापर्यंत त्यांनी जे काम केलेलं आहे, समाजकार्य केलेलं आहे त्या समाजकार्याला देखील एक मानवंदना होईल आणि त्यांच्या स्मृतीस देखील अभिवादन होईल अशा प्रकारची मी विनंती करतो. धन्यवाद मॅडम. माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी. माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी. Thank you, Madam. Goods and Services Tax has been in effect nationwide since 1st July 2017, encompassing handloom products as well as essential raw materials such as yarn. In Odisha alone, weavers collectively procure approximately 152 crore rupees worth of yarn annually, attracting a GST liability of 7.6 crore rupees at the prevailing rate of 5%. The imposition of GST on these inputs directly escalates the production cost and by extension the scale price of handloom products. This burden hampers market competitiveness, leading to a decline in marketing turnover and adversely affecting the livelihoods of the weavers dependent on this traditional profession. I urge upon the government to consider exempting handloom products and their raw materials from GST, thereby promoting the sector and safeguarding the economic well-being of weavers across the country. माननीय सदस्य श्री सप्तागिरी उलाका जी. Thank you, Chairman Madam, for giving me this opportunity to speak on a very important issue. Ma'am, I would like to raise the important issue of a tragic and deeply disturbing incident of self-immolation and death of a young student in Balasore, Odisha. She has been facing mental harassment, victimization, and failure of institutional and administrative mechanisms to respond to her repeated claims. She had escalated to her local MLA, local MP, the Chief Minister, Education Minister, even the Union Education Minister. But it fell into deaf ears. वो बेचारी बार-बार लड़ाई करती रही, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुना. मजबूरन वो अपने आप को जला के she died. And this is a very, very sad incident. सब मैम ऐसे ही घटना उड़ीसा में बार-बार होती आ रहे. एक माइनर महिलाओं को 3 सदस्यों ने उनको जला के वो एम्स से भर्ती हुई है. हर दिन रेप्स होते रहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की केस होती है. एंड उड़ीसा में अब 1 साल में देखोगे 40,000 के ऊपर महिलाएं निखोज है, बहुत सारी महिलाएं 15,000 के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की केस है. हर दिन 8 रेप होता है. उड़ीसा का लॉ एंड सिचुएशन पूरा ही तहस नहस हो गया है सर. एंड मैं आपसे चाहता हूं इस पर्टिकुलर जो बालेश्वर का घटना है इसके लिए मेरे को सुझाव है. देयर शुड बी ए टाइम बाउंड supervised investigation, suspension of negligent officials, mandatory campus safety audits, ICC constitution, posh compliance, surveillance, 24/7 confidential digital complaint and tracking platform, a rapid harassment response protocol with 72 hours protective mandate, trauma counseling, witness and victim family protection and fast track trial. ये घटना फ्यूचर में जैसा ना हो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए. यही बोल के अपनी बात को यहीं रखता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. श्री अनिल फिरोजिया जी. सभापति जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय में बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं
माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग रखता हूँ कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल का जो मंदिर है वो बड़ा प्राचीन है और विश्व में प्रसिद्ध है। महालोक के लोकार्पण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसका लोकार्पण करा, उसके बाद वहाँ पे तीर्थयात्री दर्शनार्थियों की संख्या लगभग एक साल में 7 करोड़ लोग वहाँ प्रतिवर्ष आने लगे हैं और 2028 में वहाँ सिंहस्थ होने वाला है। वहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी मांग रखी थी और आज भी रख रहा हूँ कि CISF या सेंट्रल रिजर्व फोर्स वहाँ पे दिया जाए, क्योंकि पहले भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश का दुबे जो है वो वहाँ पे पकड़ाया है और एक अभी कोई जासूस भी पकड़ाई है और वो सीमी का गढ़ रहा है, PIF का गढ़ है, इसलिए उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CISF और सेंट्रल रिजर्व फोर्स में से कुछ भी एक वहाँ दिया जाए। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जितेंद्र दोहरे जी। जितेंद्र दोहरे जी। हाँ, हो गया नहीं हुआ तो ये हो गया। आगे आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कैमरा नहीं चल रहा। ये देश संविधान से चलता है माननीय जी, लेकिन संविधान के द्वारा हम लोगों को प्राइमरी के बच्चों को जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। मानवर उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा हजारों विद्यालयों को पेरेंट के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय, 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी एक ही परिसर में स्थित लगभग 20,000 विद्यालयों को संविलीन करके प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में चल रही मर्जर प्रक्रिया से जहां छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वही हजारों रसोइयों की सेवा समाप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापकों को एवं ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति पर दबाव बनाकर विद्यालय बंद करने के समर्थन में प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। लोकतंत्र में इस प्रकार विद्यालय बंद करके नौ न्यायालयों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। हजारों प्रधानाध्यापकों के पद एवं रसोइयों की सेवा। गौतम नागेश जी। అధ్యక్ష, నా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఆదిలాబాదు తెలంగాణ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మా రాష్ట్రంలో మా జిల్లాలో కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ట్రైబల్ టైగర్ కారిడార్ అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా 339 గ్రామాలని 1,49,000 హెక్టార్ల భూమిని కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ చేయడం కోసం జియోని కూడా రిలీజ్ చేసింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తన ప్రతిపాదన తయారు చేసుకొని జియో ఇచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిందని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన నెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ మధ్యనే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అందరూ కూడా ప్రజలు వ్యతిరేకించిన తర్వాత దానిని నిలుపుదల చేసింది. నేను ఈ సందర్భాన మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అటవీ శాఖ మంత్రుల వారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నిలుపుదల చేసినటువంటి ఆ జియోని రద్దు చేసుకోవడానికి ఇక్కడి నుంచి కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిందిగా ఈ సందర్భాన కోరుతూ మీకు ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను అధ్యక్ష. थैंक यू. माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह मीर जी. गुरमीत सिंह जी. कुलदीप इंदौरा। अध्यक्ष जी, सभापति जी धन्यवाद आपका। गुरमीत सिंह जी आप ही नहीं, कुलदीप इंदौरा। गुरदीप सिंह जी। यस,
धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं जिस मुद्दे से देश के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं उस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति जी, डीपीसीओ 2013 के एक्ट के अंदर कुछ इसेंशियल मेडिसिन हैं जिनका रेट कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती हैं वो बीपी की, डायबिटीज़ की, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। सेम कंपोजिशन की मेडिसिन 10 अलग कंपनीज बना रही हैं और दसों का अलग रेट है। 300 से लेकर 1000 तक प्रॉफिट जो कमा रहे हैं। आप देखिए 3 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग है और एक कंपनी दे रही है 10 रुपए की और एक कंपनी दे रही है 50 रुपए की। सो मेरा सरकार से आग्रह है कि कम से कम सेम कंपोजिशन की जो मेडिसिन है उसकी कोई रेट की कैपिंग की जाए ताकि लूट जो देश के लोगों की हो रही है वो बंद हो सके। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य रामवीर सिंह बिदुरी जी। आदरणीय सभापति महोदय, 1960 में कांग्रेस की सरकार ने मेरे लोकसभा क्षेत्र बदरपुर गांव में एनटीपीसी का पावर हाउस बनाने के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के दामों पर खरीदी गई। अब क्योंकि एनटीपीसी पावर हाउस बंद हो गया है, क्षेत्रवासियों की यह इच्छा है कि उस खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन पर क्षेत्रवासियों के लिए एक कॉलेज बनाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हॉस्पिटल, स्टेडियम और कॉलेज बनाने के लिए इस एनटीपीसी की खाली जमीन में से जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हॉस्पिटल, कॉलेज और स्टेडियम बनाया जा सके। और एनटीपीसी की जमीन पर जो केंद्रीय विद्यालय चल रहा है उसको बंद करने पर विचार किया जा रहा है। छात्रों के हित में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने बदरपुर गांव में जो एक बड़ा स्टेडियम था उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो उसके स्थान पर नया स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगड जी। महोदय, माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये देशातील धन्यवाद सभापती महोदय, माझ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 10% कांदा उत्पादन होतं। मागच्या काळामध्ये कांद्याचं उत्पादन सरासरीपेक्षा जास्त झालं, परंतु मे महिन्यामध्ये अवकाळी पाऊस सुरू झाला आणि अवकाळी पावसामुळे कांदा असेल, द्राक्ष असेल, इतर पिकांचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालं। मी या संदर्भामध्ये आदरणीय कृषी मंत्र्यांना देखील पत्र दिलेले की प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे म्हणजे आजपर्यंत पाऊस थांबला नाही आणि त्यामुळे कांदा, द्राक्ष या शेतांचं, या पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे। तो ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने केली। विशेषतः कांद्या पिकाच्या बाबतीमध्ये आज एका बाजूला आसमानी संकटामुळे कांद्याचं नुकसान झालं, दुसऱ्या बाजूला मार्केटमध्ये कांदा आल्यानंतर त्याला आज कुठल्याही प्रकारचा भाव 700 आणि 800 रुपयांनी कांदा हा मार्केटमध्ये विकला जातो। शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च देखील त्या ठिकाणी निघत नाही आणि म्हणून माझी आपणाला या निमित्ताने विनंती सरकारकडे करतोय की आपण शेतकऱ्याला कांद्याला हमी भाव द्यावा, त्याचप्रमाणे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून होणारी खरेदी ही बाजार समितीमध्ये करावी आणि माझ्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये कांद्यावरती आधारित प्रक्रिया उद्योग स्थापन करावे, तरच खऱ्या अर्थानं शेतकरी वाचू शकेल। ही मागणी मी या निमित्ताने आपल्याकडे करतो। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार रावत जी। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत बिलग्राम, मनलावा, उन्नाव स्टेट हाईवे 38 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह राजमार्ग हरदोई, एक तरफ हरदोई उन्नाव को जोड़ता है, दूसरी तरफ शाहजहांपुर को नेशनल हाईवे 730 से जोड़ता है। हरदोई में यह सकरा होने के कारण यहाँ आए दिन घटनाएं, भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मल्लामा की यहाँ पर डेथ हो गई और इसके साथ साथ 15 लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान करी। मेरी माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि इस नेशनल स्टेट हाईवे 38 को और स्टेट हाईवे 137 को नेशनल हाईवे की स्वीकृति दी जाए और इसे 4 लेन बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव जी।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज शून्यकाल में लोक महत्व के प्रश्न पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय का ध्यान प्रतापगढ़ की, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, में उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या 32 लाख से अधिक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 85% से ज़्यादा है। जिले के अधिकतर परिवार कृषि पर निर्भर है और उनकी आर्थिक स्थिति निम्न वर्गीय है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है तो उनका परिवार अतिरिक्त बोझ सहन नहीं कर पाता है। उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को प्रयागराज, सुल्तानपुर, रायबरेली या लखनऊ जैसे शहरों को जाना पड़ता है। ये स्थिति विशेष रूप से छात्राओं के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। सामाजिक परिवेश, दूरी और सुरक्षा के कारण माता पिता अपनी बेटियों को अन्य जिलों में भेजने से हिचकते हैं। परिणाम स्वरूप प्रतिभाशाली छात्राओं को भी उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता और वे ग्रेजुएट, स्नातक की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती है। जिले में कोई महाविद्यालय नहीं है जो उन्हें सुरक्षित और सुलभ शिक्षा दे सके। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्रतापगढ़ जिले में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए। इसकी स्थापना है सर्वे कराकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोज जी। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की मूल भावना थी कि आदि अनादिकाल से वन भूमि पर निवास रहने वाले आदिवासी समुदाय को अपना मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदाय ने अपने दावा पेश किया। इसमें से 25 लाख आदिवासियों को मिला और आज भी 26 लाख आदिवासी परिवार वन अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है। मतलब 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पे रह रहा है, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अधिकारियों ने कहा कि 4 लाख आदिवासियों को बाघ विस्थापन के लिए, मतलब बाघों के स्थापित करने के लिए उनको विस्थापित किया जाए। अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो 1-2 जो अधिकारी हैं या जो मंत्री जी हैं उनके वहां टाइगर छोड़ दिया जाए। टाइगर को मार रखने के लिए आदिवासियों को विस्थापित क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश देवास में भरी बारिश में आदिवासी समुदाय के घरों को वन विभाग से विस्थापित किया जा रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समुदाय अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेके वो आते थे तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे, लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है। कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। मेरी मांग ये है कि वर्तमान में 26 लाख आदिवासी परिवार के जो दावे जो पेंडिंग है और जो निरस्त कर दिए हैं, सरकार पुनः उनको वापस रिव्यू करके इन आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री विजय बघेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इधर हूँ सर। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई हो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए।
और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो 2 नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई, वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है। और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है, जो रवि निगम कर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या है आपसे? आप उन ट्रेन को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई, तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के, जिनके क्षेत्र से वो लड़कियां लाई गई। धन्यवाद, धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर श्री सेलेंग सांगमा जी, सेलेंग सांगमा जी, वो गलत रिकॉर्ड पे जा रहा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सेलेंग सांगमा जी, सेलेंग सांगमा जी, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। सेलेंग सांगमा जी, प्लीज स्टार्ट। माइक प्लीज। Thank you, Mr. Chairman, sir. I rise to speak on Meghalaya's spiraling drugs crisis and epidemic in Meghalaya. I rise to expose the catastrophic failure threatening in Northeast, especially Meghalaya, which faces an unprecedented drugs with 10% of our population. That is 3 lakh people trapped in the addiction, horrifying increase from 2 lakhs just last year. Among youth aged 15 to 29, the prevalence rate reaches a devastating 30% of our populations in Meghalaya. The Meghalaya proximity to the Golden Triangle and Manipur's unrest have worsened trafficking. However, this hasn't been reflected in the custom inspection. Custom inspection, Mr. Speaker, sir, the Chairman, sir. Only 10% of anything that is entering India, only 10% is checked. Rest of the illegal trucks inside coming to the Meghalaya is not checked. That's why I would like to urge upon this government to kindly see that whatever is coming through the international border should be checked. Therefore, Mr. Speaker, sir, I urge the Union Ministry, Home Affairs, to immediately establish the National Drug Eradication Command to the Northeast, provided funding and government-run rehabilitation center to onslaught the drugs menace in Meghalaya. One more, Speaker, sir. Instead of catching hold of the drugs cartel and mafia, the government of Chhattisgarh is holding the innocent 2 Christian nuns. 2 Christian nuns, which they were innocent, instead of catching all the drugs menace. Okay, thank you. Therefore, Mr. Speaker, sir, thank you. Without any proper Shri just Hanuman Beniwal ji, Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार और उससे पहले के समय के अंदर पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, एसआई भर्ती जिसमें 859 नए थानेदार बनाने थे, 103 से ज्यादा ट्रेनी और अन्य लोग जेल के अंदर एसओजी जांच कर रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हमने बड़ी रैलियां 1-1.5 लाख की रैली जयपुर के अंदर की, राजधानी के अंदर जेल भरो आंदोलन चलाया। आज भी 100 दिन से प्रदेश का युवा एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जयपुर में धरने पे, मैं स्वयं लगातार 70 दिन से ज्यादा धरने पे था। लोकसभा चल रही है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आरपीएससी को भंग करके, एसआई भर्ती को रद्द करके, पेपर लीक की तमाम घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, जिन्होंने राजस्थान को बदनाम कर दिया, हम चाहते हैं कि इन मामलों की सीबीआई जांच हो। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपील कर चुके हैं, टाइम भी मांगा है कि एसआई भर्ती रद्द करें और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए नया कानून राजस्थान के अंदर बनाए। ये हमारी मांग है। श्री जदुबीर वदियर जी। Mysore is a city known for its heritage, its education, its culture, and indeed as the cultural capital of Karnataka. It's a matter of great surprise then
that the city is now in the news for the uncovering of a synthetic drugs MDMA manufacturing center. The worth of the drugs was reported to be around 390 crores. Sir, this drug manufacturing unit was in plain sight of the authorities, and yet no action was taken by the Karnataka police. It is extremely shocking that it was the Maharashtra police who came into Mysore and uncovered this drug manufacturing unit. When asked about this, the Home Minister of Karnataka simply said, "We failed." It's this lax attitude that is creating and indeed weakening our law and order institutions in Karnataka. Recently in Udaigiri as well, when the police station was attacked, no action was taken on the perpetrators of the attack. In the stampede in Bangalore, the police were simply scapegoated as being the perpetrators. The synthetic narcotics points towards a very operation that is extremely crucially hampering lives in Mysore, especially the youth. It is also a matter of concern that in a recent raid in Gulbarga, the aide of the Minister for IT in our state was also caught in that same drug bust. Sir, through you, I would ask the Home Minister, or the Home Ministry rather, to launch an interstate investigation into this matter and to also ask the NCB task force to be situated in Mysore until such activities are put to a standstill. Thank you. Sri Anil Desai ji. Good Deputy Speaker ji, I'm raising this issue regarding long pending wages. I would say it's a charter of demand which is pending since more than 5 years regarding general insurance employees. General insurance companies like GIC and New India and Oriental, United India, National, these are the public companies, public sector companies, and they have been performing extremely well. Usually banks, public sector banks charter takes place first. After that, insurance industry is addressed. LIC is done. This time around, more than 5 years have gone, that LIC was paid, they were given their dues. But general insurance company employees, unions, they demonstrated in different ways. They had talks with the management. They represented through their memorandums. I represented through memorandums there. I represented to the Finance Ministry, DFS, but nothing has been done. And since the performance was also good, government expected that 2 or 3 companies out of them perform well. Government had infused capital also. The results were good, and for no reason, the reasons best known to the government, why the employees' rights have been withheld. By this, I'm drawing the attention of the government. At the same time, this August House would also agree with me that whatever is due to the employees, their right should be given. I hope the government takes cognizance of this and expedites the wage revision of the employees. Thank you. Honourable members, N.K. Premchandran. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I would like to draw the attention of the Home Ministry as well as the External Affairs Ministry regarding an issue of illegal recruitment of youth personnel from India to foreign countries. Mr. Chairman, sir, the human trafficking of Indian citizens, particularly Kerala to the Myanmar cybercrime becomes a major issue. There is a network system of cybercrime cell personnel and their agents to offer good jobs in USA and taken job aspirants to Bangkok airport on tourist visa. Then they were trapped and taken to unknown places of Mayawadi. Youth from Kollam, Sri Vishnu Prida Srinarayanan, he is one of the victims of this trap. He belongs to my constituency. The cyber criminals at Mayawadi is having a network in India for human trafficking. The traffickers confiscated their documents and demanding huge amount for their release. The underworld criminals at Myanmar tortured the victims physically and mentally. They killed those who opposed their illegal acts. More than 144 people are there. 74 people have already been caught. Most of the people are in the detention center of the Bangkok. So I would like to urge upon the government to initiate immediate diplomatic action to prevent human traffic to Mayawadi
in Myanmar and legal action against the agents of cyber cell criminals in India. And also I would like to urge the government and the Foreign Affairs Minister, do the needful so as to bring back all the persons who are trapped in the detention center. They are now under the custody of the Thailand Bangkok government. That is to be done at the earliest. With these words I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. श्रीमती रुचि बिराजी। सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद है और मुरादाबाद के अधिकांश लोगों का रोजगार और व्यवसाय के जरिए के लिए महाराष्ट्र में और मुंबई में जाना आना पड़ता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी रेल मंत्री जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह पर मुरादाबाद के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन, मुरादाबाद से मुंबई के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई जो कि सप्ताह में एक दिन चलती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि ये ट्रेन जो कि मुरादाबाद से मुंबई जाती है डायरेक्ट, वो सप्ताह में एक दिन न जाके प्रतिदिन अगर जाए तो मेरे क्षेत्रवासियों को मुरादाबाद आने जाने में, अपना रोजगार और व्यवसाय करने में सुविधा होगी। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तापिर गाव जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन। आज मैं इस सदन में एक ऐसा ऐतिहासिक इशू को मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा इज इन क्वेश्चन टुडे। आज हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा इज 90 years old। उसके बाद द नालंदा तिबेटियन बुद्धिज्म हैज गॉट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इनकारनेशंस। आज 90 years का बाद री होगा, लेकिन आज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इंटरफेयर किया है कि द 15 दलाई लामा विल बी अप्रूव एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आज दलाई लामा हिज होलीनेस दलाई लामा 90 years होने के बाद ये एक क्वेश्चन मार्क है ऑनरेबल चेयरमैन सर। इसलिए मैं इस नालंदा बुद्धिज्म के लिए, तिबेटियन बुद्धिज्म के लिए दलाई लामा नहीं है, आज दुनिया का बुद्धिज्म के लिए हिज होलीनेस 14 दलाई लामा एक सिंबल है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि हिज होलीनेस दलाई लामा इज द मैसेंजर ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड compassion। इंडिया द लैंड ऑफ नॉन वायलेंस शुड रिकॉग्नाइज हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा by awarding Bharat Ratna for his service to non-violence, compassion and the peace to the world. Thank you. Thank you. Honorable member Shri Malvinder Singh Kang ji. सभापति जी, स्पीकर ऑन कर दो जी प्लीज। स्पीकर माइक। थैंक यू सर। सर, दुनिया में जब धार्मिक आज़ादी और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होगी या उसमें सबसे बड़ी शहादत की बात होगी, तो दुनिया में कोई इतनी बड़ी शहादत नहीं है जितनी गुरु तेग बहादुर साहब, जो 9वें गुरु थे। आज से 350 साल पहले उन्होंने धार्मिक आज़ादी और ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं सर जिस लोकसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ, श्री अनंतपुर साहिब, उन गुरु साहब का जो शहादत का सफ़र था सर, आज से 350 साल पहले श्री अनंतपुर साहब से शुरू हुआ था, जहां कश्मीर के लोगों ने उनसे आकर आग्रह किया था कि हमारे धर्म पे बहुत बड़ा संकट है, ह्यूमन वैल्यूज पे बड़ा संकट है। तो गुरु साहब ने वो सफर श्री अनंतपुर साहब से शुरू किया और आज जहां हम लोग खड़े हैं सर, दिल्ली के चांदनी चौक पर उनकी शहादत हुई थी। सर, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, हालांकि 350 साल की जो शहादत के समागम है उसको लेकर पंजाब सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बहुत बड़े समागम की तैयारियां सरकार कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भी उनकी शहादत को समर्पित बहुत बड़े कार्यक्रम करेगी। लेकिन मेरा आग्रह, एक छोटा सा आग्रह है भारत सरकार से कि जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो चांदनी चौक से बिल्कुल लगा हुआ है, उस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम 350 साल गुरु तेग बहादुर की शहादत के अवसर पर उनके नामकरण किया जाना चाहिए कि सारे देश में जो लोग
सफर करते हैं, गुरु साहब की शहादत के इतिहास को वो जाने और उनसे प्रेरणा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संतोष पांडे जी। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव अंतर्गत खेलो इंडिया के अंतर्गत पूर्व में हॉकी की एकेडमी, बास्केटबॉल एकेडमी, कबड्डी, ये सब प्राप्त हुआ है। हाल ही में राजनांदगांव जिले में एथलेटिक्स की तैयारी हेतु सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी को। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में कवर्धा जिला है, कबीरधाम। कवर्धा में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खेल के लिए जहां एक बहुउद्देशीय भवन के माध्यम से एक ही स्थान पर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जूडो, हैंडबॉल, तीरंदाजी, अन्य खेलों की सुविधा प्राप्त हो सके। महोदय, कबीरधाम जिले में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बैगा बस्तियों की भी बसाहट है। महोदय, रुचि के अनुसार तीरंदाजी खेल में उनकी अधिक है। क्षेत्र के युवाओं की एथलेटिक्स खेल के प्रति रुचि है। एथलेटिक ट्रैक की स्थापना किया जाना भी बहुत आवश्यक है। महोदय, बहुउद्देशीय भवन हेतु लगभग मैंने 20 करोड़ का प्रस्ताव, एथलेटिक ट्रैक हेतु 7 करोड़ का प्रस्ताव एस्टीमेट मैंने पहले ही मई में दे चुका हूं। मेरा आग्रह है कि खेल के विकास हेतु खेलों की अधोसंरचना की व्यवस्था के आधार पर ही ये सब संभव है। कवर्धा में खेल के विकास हेतु बहुउद्देशीय भवन और स्वीकृति प्रदान कर राशि आवंटित करने की कृपा करें, जिससे खेल में कवर्धा हमारा आगे बढ़ सके। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हमीदुल्लाह सईद जी। हमीदुल्लाह सईद जी। Thank you, Chairman sir, for giving me an opportunity. I take this opportunity to inform this August House through you, sir, that I represent Lakshadweep constituency, which is a scheduled tribe area. It's socially and economically backward, and now there is a notification which has been issued by the Revenue Department of Lakshadweep, which talks about acquiring Bitra Island, which is the smallest island in Lakshadweep, which is not more than a kilometer and not having more than 500 people living there. But it is having the largest economic zone because the lagoon of Bitra Island is the largest in terms of area. It's bigger than any island in Lakshadweep. Fishermen from all the islands, they go camp there, fish, and it's a big economic opportunity for them. The pretext on which the Revenue Department is acquiring this land is national security. For the last so many decades, after independence, we have never had any issue of national security, sir. For national security, already Bitra Island is having a Coast Guard unit and a Navy unit. My humble suggestion through you, sir, to the government is that immediately this notification should be withdrawn, which is an ill-conceived plan, which does not have any compensation, rehabilitation for those who are already existing माननीय there. सदस्य श्री रमाशंकर राजभर जी। रमाशंकर राजभर जी। आभारी हूँ महोदय। बहुत भारी मन से एक विषय उठा रहा हूँ जो पूरे देश का है और हम सभी सांसदों का है। महोदय, नृत्यांगना मंच पर परफॉर्मेंस कर रही है, वहीं गिरी मर गई। क्रिकेटर एक छक्का मारा, वहीं गिरा मर गया। मामा भांजे की शादी में नाच रहा है, गिरा मर गया। बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, गिरी मर गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। इसमें किसी भी आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में कम से कम दर्जनों ऐसे लोग अचानक मरे। मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये अचानक घटनाएं हैं, न ये हॉस्पिटल में होती, न उनका पीएम होता, न कोई सर्वे होता। उनके पालियों को हम भाग भरोसे छोड़ देंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार कोई ऐसा विकल्प तराजे, ऐसा कोई रास्ता निकाले कि अचानक किसी भी आयु वर्ग में हो रही इन मौतों का कोई उपाय निकाले। जो मर गए हैं उनका रिकॉर्ड रखे भारत सरकार,
और जो मर गए हैं उनको उनके पालियों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 10-10 लाख मुआवजा भारत सरकार उनको देने का काम करे। श्रीमती शोभा बचाव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला 0 आवरमध्ये बोलण्याची संधी प्राप्त करून दिली। अध्यक्ष महोदय, माझ्या धुळे लोकसभा मतदारसंघामध्ये कसमादे आणि खान्देश भागामध्ये कांदा उत्पादक आणि कपाशी उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलेला आहे, अतिशय हवालदिल झालेला आहे। याचं कारण म्हणजे कांद्याला भाव नाही आहे। कांद्याचा उत्पादन खर्च जो आहे तो 1500 ते 1800 रुपयापर्यंत होतो, परंतु तेवढे देखील त्याला 700-800 रुपये भाव सध्या चालू आहे। माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे की स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार MSP प्रमाणे कांद्याला कमीत कमी 3000 रुपये हमी भाव हा उपलब्ध करून द्यावा। त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला शेती करण्यासाठी बी बियाणं, खतं, पेस्टिसाइड्स, शेतीची अवजारं लागतात, त्याला 18 ते 25% GST भरावा लागतो, तो शासनाने या ठिकाणी रद्द करावा। वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अध्यक्ष महोदय संपूर्ण कर्जमाफी ही शासनाने द्यावी, कारण शेतकरी हा खऱ्या अर्थाने आपण म्हणतो की भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, पण त्या शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने प्रदान करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न हा शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाला पाहिजे अध्यक्ष महोदय। त्याचप्रमाणे आयात निर्यात धोरण जे आहे ते देखील अस्थिर झालेलं आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून सरकारला मी विनंती करते की एक कमिटी स्थापन करून आयात निर्यात धोरण जे आहे ते स्थिर करावं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, मी आज 0 आवरमध्ये आपण वेळ दिला याच्याबद्दल आभारी मानते, पण मी खूप जड अंतःकरणाने आज एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा मांडणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे बीड जिल्हा, अतिशय सुसंस्कृत जिल्हा, आणि महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत फार मोठं योगदान बीड जिल्ह्याचं राहिलेलं आहे। माननीय भारतीय जनता पक्षाचे महत्त्वाचे नेते राहिलेले गोपीनाथ मुंडे साहेब पण बीड जिल्ह्यातूनच येतात, पण दुर्दैवाने गेल्या 1-2 वर्षामध्ये अनेक अशा घटना बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत ज्या महाराष्ट्राला नाही माणुसकीला न शोभणार आहेत। आणि संतोष देशमुख आणि महादेव मुंडे यांच्या अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या झाल्या। सगळ्याच पक्षाच्या लोकांनी त्याची निंदा केली आणि ही अयोग्य घटना झाली मान्य करतात, पण दुर्दैवाने महाराष्ट्राचं गृह मंत्रालय अजून त्याच्यावर काही ॲक्शन घेत नाही। माझी विनम्र विनंती आहे देशाच्या गृह मंत्र्याला की संतोष देशमुख आणि महादेव मुंडे या दोघांची आणि अनेक अशा केसेस आहेत त्या संपूर्ण भागामध्ये ज्या क्रूर हत्या झालेल्या आहेत, पण त्या कुटुंबांना न्याय मिळत नाही आहे। आज संतोष भाऊंची आमच्या वहिनी भगिनी असतील, त्यांच्या कुटुंबातले लोक असतील किंवा महादेव मुंडेंच्या कुटुंबातले लोक असतील, हे सगळी लोक न्याय मागण्यासाठी सगळीकडे फिरत आहेत, आमदार खासदारांना भेटत आहेत। मीही त्यांची भेट दोन्ही कुटुंबाची घेतलेली आहे आणि ताकदीने माणुसकीच्या नात्याने आम्ही सगळे त्यांच्याबरोबर उभे आहोत। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार त्यांना न्याय देत नाही आहे, तर या दोन्ही देशमुख आणि मुंडे कुटुंबाला न्याय मिळावा एवढीच विनम्र आणि त्याची CBI इन्क्वायरी व्हावी अशी माझी गृह मंत्रालयाला विनम्र विनंती। धन्यवाद जी। श्री SS जमीर जी। Thank you, sir. I just wanted to bring to this August House about the environmental and pollutions, climate problems, the vegetations, and water conservations in the river treatments. Our country is facing all these problems, and we cannot only rely on the modern technologies. Why not? I wanted to know whether we have the policy to preserve the Himalayan mountain range, along with the Himachal, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and all the northeast states, to preserve the mountain and have a proper treatment, so that if we can bring a policy to have a policy or create a cell or a department, it will save our environments. And to have that, to develop
in the 15th Finance Commission, we always goes as per the populations. As per the populations, we used to give the developmental. But in the hilly areas, the populations are always less. So if in the 16th Finance Commission, if it can be considered, and more development can be bring in the mountain range. Thank you. Thank you. माननीय सदस्य श्री डॉक्टर संबित पत्र जी. माइक. थैंक यू. धन्यवाद सभापति महोदय. आपण मते आज शून्य आवर रे कहिबा पे आमंत्रित करिसेंती, मौका देइसेंती. मुख्यतः एवं मुझे शुणुली कि समय पूर्व माननीय सांसद कांग्रेस पार्टी श्री सप्तगिरी उलाका ओडिशा को लेकिन किसी टिप्पणी करिसेंती. आ विशेषकर ओडिशार बालेश्वर एफएम कॉलेज रो जो बड़ी गोटे जघन्य घटना होता आम समस्ते दुखित तापाई चिंतित मध्य आउ से आमर भौणीर जार निधन घटी तार आत्मा पे प्रार्थना मध्य करुचु. किंतु एटा संवेदनशील विषय जहाँ भ्रामक आंकड़ा एवं से प्रस्तुत कले से संपूर्ण रूप से भ्रामक. मु संपूर्ण रूप से कहीदेवाई चाहे कि ओडिशा सरकार एक संवेदनशील सरकार. आमर मुख्यमंत्री होचंती लोकंक मुख्यमंत्री. आ मुख्यमंत्री बालेश्वर केस से निजे मॉनिटर करुथिले. आ मॉनिटर करिकी दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाहेची जहाँ को गिरफ करने कथा तांको गिरफ कराहेची. मोर केवल आज सरकार टू निवेदन कि अन्य सरकारी लोक माने अन्य दलर कांग्रेस एनएसयूआई जो सरकारी दलर पिला माने इन्स्टिगेट करिसंती सोशल मीडिया माध्यम रे आमर भौणी को ए पदक्षेप नवा पई तांको विरुद्ध रे मध्य दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाऊ. संसार देखुची सबू डॉक्यूमेंट उपस्थित अच्छी. ए डॉक्यूमेंट को भी देखिकी तांको विरुद्ध रे कार्यवाही हो. धन्यवाद. 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 माननीय सदस्य श्री रवि किसान जी. रवि किसान जी. धन्यवाद महोदय. आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के इस मामले को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय. यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं. इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है. कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है. 5 स्टार में जाओ उसका अलग है. कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग. हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है. किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है. कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है. ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया. इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है. अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके. किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400. बस. धन्यवाद महोदय. बड़ा समोसा दिलवाइएगा. धन्यवाद. उम्मेदराम बेनीवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपका ध्यान जोधपुर पाली बालोतरा जिले में संचालित हो रही अवैध और नियमों के विरुद्ध उल्लंघन कर रही फैक्ट्रियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो प्रदूषण युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट किए जोजरी नदी के अंदर, लूणी नदी के अंदर डाल देते हैं और वहां लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट वो उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं. खंडर हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं और उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों के अंदर गंदा पॉल्यूशन युक्त, रासायनिक युक्त पानी भर गया है. और कल्याणपुर के आसपास के गांव, डोली, अराबा के गांव, उसमें
पॉल्यूशन युक्त पानी गाँव के अंदर, तालाबों के अंदर, शमशान घाट के अंदर, स्कूलों के अंदर भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके समाधान के लिए कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पॉल्यूशन विभाग को सख्त किया जाए और वहाँ टीम भेजकर उनकी जो अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है उनका निरीक्षण करके अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाएं और जो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं उन ट्रीटमेंट प्लांटों को चलाएं और नए ट्रीटमेंट प्लांटों की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य के अंदर इस समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले मानसून सत्र में भी मैंने माननीय सदस्य श्री शंकर लालवानी की पॉल्यूशन टीम वहाँ आई और खाना पूर्ति करके चली गई और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ये समस्या साल दर साल चली आ रही है, इसके समाधान निकालने के लिए कोई नीति। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को देश के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े आउटर रिंग रोड की सौगात दी। इसमें जिनकी जमीन जा रही है उन किसानों का कुछ मुद्दा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सरकार उस पर विचार करे। पहला किसानों का मुद्दा है कि उनको बाजार मूल्य पर मुआवजा मिलना चाहिए, जो वर्तमान बाजार मूल्य है उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा, जहाँ सरकारी जमीन है जो काकड़ है उस पर अलाइनमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि सरकारी जमीन ज़्यादा जाए, किसानों की जमीन कम जाए ताकि उपजाऊ किसान खेती कर सकें। और तीसरा है आउटर रिंग रोड इस प्रकार से बनाया जाए कि 25-30 साल को ध्यान में रखकर बाईपास से इतना दूर बनाया जाए ताकि आने वाले 25-30 साल को ध्यान में रखकर वो बनाया जाए ताकि ये सुविधा भी रहेगी। मैं सरकार से चाहता हूँ इस पर गौर विचार करें। धन्यवाद जी। श्री नारायण दास अहिरवार जी। नारायण दास अहिरवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा लोकसभा क्षेत्र जालौन गरोठा भोगनीपुर है जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक कोई हमारा जनपद जो मुख्यालय उरई है उससे दिल्ली के लिए कोई रेलवे सेवा नहीं है। और ये जो श्रम शक्ति है जो दिल्ली से चल कर के कानपुर में खड़ी हो लगभग 18 घंटे खड़ी रहती है। और ग्वालियर बरौनी जो लगभग ग्वालियर बरौनी से चलकर ग्वालियर में लगभग 12 घंटे खड़ी रहती। गतिमान जो दिल्ली से चलकर झांसी में लगभग 2.5 घंटा से ज़्यादा समय खड़ी रहती है। अगर इन ट्रेनों में किसी भी ट्रेन को अगर उरई तक चला दिया जाए तो उरई जो हमारा मुख्यालय है जालौन का, तो हमीरपुर, कानपुर देहात और जालौन के जो यात्री हैं परेशान होते हैं वो दिल्ली से जुड़ जाएंगे। दूसरा, नई दिल्ली रेलवे लाइन का जो कोच से सर्वे हो गया है माननीय अध्यक्ष जी, और ये जो कोच से जालौन, भिंड, इटावा होते हुए ग्वालियर से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो भी जो पिछड़ा क्षेत्र है तो ये पिछड़े क्षेत्र के लोग सीधे ग्वालियर होते हुए दिल्ली से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती मालविका देव जी। हमने मालविका Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak today in the Zero Hour. Through you, sir, I would like to request the Honourable Minister of Health and Family Welfare to please grant us a medical college for Nuapara district in my Kalahandi constituency. It is firstly an aspirational district and does not have any higher education college. It would be a big development for the area if our minister would grant this, as not only would people be able to pursue their career from their own constituency, but also the opening of a medical college would help the people in a big way by offering different kinds of treatment to the people of the constituency. Also, students from different areas would come to Nuapara for higher education, which would in every way benefit Nuapara. Hoping and praying that this Nuapara Medical College is sanctioned soon and work starts soon. Thank you so much, sir. थैंक यू। माननीय सदस्य श्री परिमल शुक्लवैद्य जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने आज हमको एक जरूरी मुद्दा उठाने का मौका दिया। आपका जानकारी है कि आप आज ये सभा का भी अध्यक्ष है, मेरा पार्टी का भी अध्यक्ष है असम का, इसलिए आपका बड़ा घाटी का बारे में, सिलचर का बारे में इंच इंच जानकारी है। भले भांति आप जानता है सर कि हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो
लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवे तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए हम दिल्ली आना या अलग सा कोई जगह पे जाना। इसमें क्या है सर, पहले हमारा सिलचर से त्रिपुरा का फ्लाइट चलता था, सिलचर से मेघालय का फ्लाइट चलता था, अभी तो नहीं है। फिर एक हमारा ये एयर इंडिया का भाया कलकत्ता एंड गुवाहाटी एक फ्लाइट था आने जाने का दिल्ली तक, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मांग है आपका माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम एक फ्लाइट तो आने जाने के लिए सिलचर टू दिल्ली देने का कृपा करें। नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपका माध्यम से ये मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को अर्जी पेश करता हूं। पहले भी लिख के दिया हूं हम लोग, तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। काम होने के लिए आपका माध्यम से विनती करता हूं। ऑनरेबल मेंबर श्री कंगना रनावत जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविज़न पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहाँ पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं। और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हज़ारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेस आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियाँ सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश पटेल जी। सर माइक। माननीय महोदय जी, हमारे प्रदेश के प्रशासक द्वारा महाभयानक परंपरा शुरू कराई जा रही है। सारे सर्किट हाउस प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जा रहे हैं। पहले सरकारी फंडों से करोड़ों करोड़ रुपए के अति लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं, जैसे ही सरकारी पैसे पे वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं वैसे ही वो निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित एक मात्र सरकारी भवन भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। महोदय, अब हमारे प्रदेश में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जानते हैं वो किस पर? हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान पर। हमारे प्रदेश के लोगों को इस प्रशासक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिंदा लोगों का तो सुख चैन छीन ही लिया था, अब मरे हुए लोगों का भी चैन से कब्र में और शमशान में भी चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सरकार ने क्यों हमारे प्रशासक को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे? कम से कम शमशान और कब्रिस्तान को तो छोड़ दिया जाए। और जब हमारे प्रशासक को सरकारी प्रोजेक्ट बनाकर निजी हाथ में सौंपकर एक प्रकार से बेच ही देना है, तो प्रशासन शमशान और कब्रिस्तान में कन्वेंशन सेंटर बनाकर यूं कहे कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान को भी बेच देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान ले और हमारे प्रदेश के लोगों का और हक और अधिकार की रक्षा करे, कब्रिस्तान और शमशान भूमि की रक्षा करे और सरकारी निवासों को भी सरकारी रहने दिया जाए। क्योंकि आज सरकारी निवास के लिए हमारा दमन और दीव में 700 किलोमीटर की दूरी है महोदय जी, और जब एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आवास के लिए वो तरसते हैं। 500 रुपया का रूम आज 8,000 से 12,000 हो गया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सर्किट हाउसों को हमारे लोगों के लिए रखा जाए और हमारे शमशान भूमि और कब्रिस्तान की रक्षा की जाए। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से देश के शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो भारत देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT, अभी राज्यों में इनको खोला जाना है, लेकिन
इसके साथ एक पॉलिसी बना दी कि दूसरा एक राज्य में दूसरा नहीं खुल सकता, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरा भी खुला हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर में IIT है, लेकिन वहाँ से 700 किलोमीटर दूर मेरा क्षेत्र है, बिंद का क्षेत्र है, जो सतना औद्योगिक जिला है, वहाँ पर भी IIT एक संस्थान खोला जाए। अगर IIT संस्थान नहीं खुल सकता तो कम से कम कैंपस तो खोला जा सकता है, ऐसा मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ। थैंक यू। श्री सुरेश कुमार सेठकर जी। सुरेश कुमार जी, नहीं आप सुरेश कुमार जी सेठकर। अच्छा उधर। Honorable Speaker, sir, thanking giving me the opportunity. The Dhobi caste is also called Rajaka. Chakali is in the scheduled caste list in 70 states. Who are obtaining the reservation facilities. On the other side, 11 states, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Goa. These states, Dhobi's caste in OBC list, deprived of the SC reservation facilities. All these people, social status is similar. Equal, people get equal facilities. They are representing the matter before the state and union government, but nothing is materialized. Every time the social justice minister replied to initiate the issue from the state government concerned, if any report they send that, also return to the same name of modalities, etc. I request the government of India take up the issue directly and do justice for the uniform SC status to Dhobi people in entire India. It also brought to your notice that the profession itself amount to untouchability. They are extending services to the society from birth to death. Thank you. Thank you. श्रीमती शताब्दी राय जी। আমি আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির কিছু পোস্ট অফিস নিয়ে কথা বলতে চাই, মারগ্রাম এবং আরও কিছু। আমি জানি যে আজকে এই ইমেল এবং ফ্যাক্স এবং হোয়াটসঅ্যাপের যুগে চিঠির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু চিঠি ছাড়াও পোস্ট অফিসের অনেক কাজ আছে যা আমাদের সমষ্টিগত মানুষের প্রয়োজনে হয়। আমার ওখানে কিছু পোস্ট অফিস আছে যেগুলো ভগ্নদশা অবস্থা, ভূতের মতন অবস্থা, যেখানে রেনোভেশনের জন্য বললে মিনিস্ট্রি থেকে বলা হচ্ছে এমপি ল্যাড থেকে করে দেওয়ার জন্য। আপনি ভালো করে জানেন যে এমপি ল্যাড মাত্র 5 কোটি টাকা, যাতে বাংলায় বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কিছুই করা যায় না। তারপরে যদি পোস্ট অফিস যা যা রেকমেন্ডেশন আমাদের তরফ থেকে এমপিদের তরফ থেকে মিনিস্টারের কাছে যায়, সেগুলো যদি আমাদেরকে উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাই আমার অনুরোধ যে মন্ত্রিত্ব, যে দপ্তরে যে কাজগুলো আছে তারা যদি সঠিকভাবে পালন করে তাহলে আমাদের এই 5 কোটি টাকা দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি, কিংবা এমপি ল্যাড বাড়িয়ে দেওয়া হোক, আমরা সব কাজ করে দেবো। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। श्री राजकुमार सांगवान जी। 15-20 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। माइक ये माइक MP LED के बारे में होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र बागपत से गुजरने वाली जो हिंडन नदी और कृष्णा नदी और साथ में ही मेरठ से काली नदी, उनका इतना दूषित पानी है कि जो उसके आसपास के गांव हैं उनके जहरीले पानी से आसपास के गांवों का जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया है, और दूषित पानी के कारण वहाँ के निवासियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। उन नदियों का मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है। पहले उन नदियों का पानी इतना स्वच्छ रहता था जल कि लोग बाग अपना जिस समय पर्व होते थे उसके किनारे अपने मेले लगाते थे, उसमें स्नान करते थे, और अगर कोई सिक्का उसमें गिर गया तो वो पानी में साफ नजर आता था, उसको निकाल लेते थे। लेकिन आज बहुत दूषित पानी है, ना उनकी सफाई का इंतजाम है, ना कोई दूसरा उसमें काम है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि जो नदियों के किनारे, जो नदियों के जल को दूषित करने वाले शुगर मिल या इंडस्ट्री जैसी जो उद्योग हैं, जो पानी को दूषित कर रहे हैं, जिस कारण लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन फैक्ट्रियों पर, उन उद्योगों पर
उनको दंडित किया जाए। और सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि परियोजना बनाकर उन नदियों के दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए नदियों का सफाई का अभियान शुरू किया जाए ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। धन्यवाद महोदय। ई तुकाराम जी। Thank you for giving me the opportunity to raise the important matter during 0 hours. Subject regarding due to the state under Manara scheme. I wish to draw the attention of the House to the total outstanding of due owned by the central government to various states under the Mahatma Narendra scheme. As per the response of the provided by the Ministry of Rural Development in the Lok Sabha, Adhyakshiji, total 14,603.94 crores is remain. Pending dues as on 22nd July 2025. Under the both wage and material components, Karnataka state alone has outstanding amount of 374.80 crores. Mananarega is a flagship welfare scheme of the Government of India aimed at ensuring employment and livelihood of security to the rural village people. The delay of a dispense of these funds severely hamper of effective implementation of the schemes and asset increase the development of works. I am requesting the ministry to clarify and when the spending dues to be released to the states. I request you to immediately step taken into the clear the all the disbursement of Narega scheme program dues. Thank you very much. Srimati Lata Wankhade ji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। आज इस प्रतिष्ठित सदन में मैं अपने क्षेत्र के एक ऐतिहासिक लोक महत्व के मुद्दे को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूं। मैं सभापति जी महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विमानन मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि सागर में एक आधुनिक हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल की स्थापना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। सागर मध्य भारत का हृदय, एक संभागीय मुख्यालय और स्मार्ट सिटी है जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मध्य भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो लॉजिस्टिक हब बनने की अपार संभावनाएं रखता है। सागर में बीना रिफाइनरी में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं, जिन्होंने 50,000 करोड़ की हमारी बीना रिफाइनरी को विस्तार देने का सराहनीय कार्य किया है और जिसका शुभारंभ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, जो क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ला रहा है। इससे न केवल उद्योगों का विकास हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, सागर में सैन्य इकाइयां और कंटोनमेंट बोर्ड की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और अन्य विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सागर को पर्यटन का चमकता सितारा बनाते हैं। यहाँ का केंद्रीय स्थान देश के हर कोने को जोड़ने में सक्षम है। हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल न केवल सागर बल्कि पूरे मध्य भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनेगा। एक सेकंड माननीय सभापति महोदय जी, इस परियोजना से लॉजिस्टिक क्षेत्र में हजारों रोजगार, पर्यटन में वृद्धि और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मैं माननीय किंजरापू राम मोहन नायडू जी से निवेदन करती हूं कि इस मांग को प्राथमिकता देते हुए सागर के सुनहरे भविष्य को साकार करें। सागर की जनता की आकांक्षाएं और मध्य भारत का गौरव आप इस पहल से नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 13 करोड़ में लगभग 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए अलग अलग राज्यों में खट रहे हैं सर। मेरे इलाके का चूंकि बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ की बोली बंगाली से मिलती है। आज हरियाणा में, उत्तर बिहार में, उत्तर हिंदुस्तान में उन लोग को तंग किया जा रहा है। Bengali speaking people from Bengal, Assam and Kishanganj, Simachal and Bihar are being harassed and वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड देने पे भी उनको बोला जाता है ये फ्रॉड कार्ड है। मेरी आपसे, आपके माध्यम से गुजारिश है कि
हरियाणा सरकार खास करके उनको चिताया जाए कि इस तरह का हरकत ना करें ताकि हमारे लोगों को तकलीफ हो। दूसरा, ये सरकार जब से आई है सर, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान माइनॉरिटीज को, और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा जिसके बारे में चर्चा हुई उसको भी टारगेट किया जा रहा है। मेरी आपसे आग्रह है कि ये रुकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। माननीय सदस्य कमलजीत शेरावत जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकपत के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहती हूं। दिल्ली के रोज के अखबारों में एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। 6 साल की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। डीडीए के पार्क में कुत्ते ने काट लिया, बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अगर मैं सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल के कुत्ते के काटने के केसेस का जिक्र करूं तो 2021 में 63,600 केस थे पूरे एक साल में, लेकिन 2025 में 1 जनवरी से अभी जुलाई तक यानी 7 महीने में 90,000 से अधिक केस हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे भारत के जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और निगम है, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए कि कुत्तों के लिए आश्रय घर बनाए जाए और इसकी डेडलाइन भी केंद्र सरकार की तरफ से तय की जाए। ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत गंभीर विषय है। आपका समय देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। श्री देवेश सक्या जी। देवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर। यह मुद्दा मजदूरों और छोटे व्यापारियों तक जुड़ा हुआ है। मेरी लोकसभा एटा कासगंज के जनपद एटा में जवाहर तापी परियोजना की स्वीकृति 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा की गई थी, जिसकी लागत 10,566 करोड़ थी, जिसको अप्रैल 2021 तक पूर्ण होना था, परंतु इसका समय बढ़ते बढ़ते 23/6/25 तक हो गया, जिसके चलते इसकी लागत 4,000 करोड़ रुपया बढ़कर 14,628 करोड़ हो गई। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मैसर्स दुसान कंपनी, जिसके पास इस प्लांट को बनाने का टेंडर हुआ था, इस कंपनी पर कार्य में देरी के लिए क्या अर्थदंड दिया गया। मेरे पूछे जाने पर कंपनी का भुगतान रोके जाने का आग्रह इस आशय के साथ किया गया कि कार्य पूर्ण होने के समय पूर्ण हो गया है और अभी दुसान कंपनी पर 100 करोड़ लगभग का रुपया लोकल के मजदूरों और छोटे ठेकेदारों का बकाया है। कहीं ऐसा ना हो कि कानपुर में मेट्रो बनाने वाली कंपनी जो कि टर्की की थी, जो 80 करोड़ रुपए मजदूरों और गरीबों का पैसा मारकर भाग गई है, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जवाहर तापी परियोजना बनाने वाली कंपनी मैसर्स दुसान का भुगतान तब तक पूर्ण न किया जाए जब तक वह सारी आर्थिक अहर्ताएं पूर्ण न कर दे। श्री रविंद्र समय वृद्धि का सर प्लीज सर कंक्लूड आने दिए। रविंद्र समय वृद्धि का 5% आर्थिक दंड दिया जाए। इस परियोजना के प्रबंधक अजय कुमार को मुझे सही और संतोषजनक उत्तर न देने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी आज अत्यंत महत्त्वाचा माझ्या नांदेड जिल्ह्यातला प्रश्न या ठिकाणी मांडत आहे। माहे 2024चा जो पीक विमा आहे तो अद्याप बऱ्याच शेतकऱ्यांना नांदेड जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध झालेला नाहीये। सरकारकडे मी मागणी करतो की तो पीक विमा त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावा। मागच्या 1.5 महिन्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यामध्ये केळी पिकाचं बरंच नुकसान झालेलं आहे। आमचा केळी उत्पादक शेतकरी त्या ठिकाणी बरंच त्यांचं नुकसान झाल्यामुळं आणि कंपनीनं केळी पीक विमा मंजूर केला नाही। त्यामुळे मी आपल्या सरकारच्या माध्यमातून मागणी करतो की नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन त्या ठिकाणी उभारावं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 7 ऑगस्टला हरित क्रांतीचे जनक म्हणून डॉक्टर स्वामीनाथन यांची जयंती आहे। त्यांच्या जयंतीच्या मुहूर्तावर पूर्ण भारतभर त्या ठिकाणी ॲग्रिकॉस डे जे कृषी विद्यार्थी दिवस म्हणून या ठिकाणी सरकारने साजरा करावा अशी सरकारकडे मी मागणी करतो। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष वर्मा जी।
उत्कर्ष वर्मा जी। आदरणीय सभासद महोदय, मैं आपका ध्यान खीरी लोकसभा क्षेत्र के विकासखंड पलिया, निघासन, बिजुआ, रमियाबेड़, फूलबेड़ और नकहा में आ रही भयंकर बाढ़ की समस्या पर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाढ़ का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। लगातार कई गांव जैसे करसौर, करंड नंबर 12 आदि गांवों में कटान जारी है और लोगों के मकान और खेती कट रही है। सरकार डूब क्षेत्र के नाम पर बाढ़ से बचाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही और लगभग 1 लाख की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अतः मेरी मांग है डूब क्षेत्र की बंदिश को हटाया जाए और सैकड़ों गांवों को नदी कटान से बचाया जाए, नदी को चैनलाइज किया जाए का कार्य किया जाए और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री बलभद्र माझी जी। निकल गए? नहीं है बलभद्र माझी जी। श्री कुलदीप इंदुरा जी। कुलदीप इधर माइक सर। आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संकट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती जिलों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आदरणीय ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी लगातार हो रही है। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ व पंजाब के साथ साथ राजस्थान के नशे और हथियारों की तस्करी का नया केंद्र बनता जा रहा है। तस्करी के कारण अपराध, नशाखोरी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे निपटने के लिए सरकार से मांग करता हूं कि सीमा पर अत्याधुनिक ड्रोन रोधी तकनीकी, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल कैमरों की तैनाती की जाए। बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाकर इसमें पहल की जाए। सीमावर्ती गांवों में पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएं और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता और उपचार योजनाएं लागू की जाए। धन्यवाद। बीएसएफ और संबंधित विभाग के अधिकारी को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में अपराध और नशा जो बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लग सके। आदरणीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरारा के जनपद लखीमपुर सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र महोली, हरगांव, मोहम्मदी, मितौली सहित तमाम जगह खाद की भारी किल्लत है। लंबी लंबी लाइनें समितियों पर लगी हैं। किसानों को खाद नहीं दी जा रही सभापति महोदय, महिलाओं को, किसानों को पुलिस की लाठियां मिल रही हैं। इसी सदन में माननीय उर्वरक मंत्री जी ने सदन को पिछले सत्र में आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन सभापति जी इस लोकतंत्र के मंदिर में कही हुई बात भी असत्य साबित हो रही है। नेपाल पड़ोसी देश है, उत्तर प्रदेश से सीमाएं लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर दलाल कालाबाजारी करके यूरिया और डीएपी को नेपाल देश भेजने का काम कर रहे हैं। हमारी आपसे मांग है सभापति महोदय कि केंद्र की सरकार, उर्वरक मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दें कि तत्काल खाद का संकट समाप्त किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, शुरू कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 1000 वर्ष पूर्व राजा भोज ने कोलांस नदी सहित 365 जल स्रोतों को मिलाकर भोपाल का बड़ा तालाब बनाया था। माननीय सभापति महोदय, भोपाल में ये बड़ा तालाब 3869 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसका फुल टैंक लेवल 86.176 किलोमीटर है। 361 वर्ग किलोमीटर में इसका विशाल कैचमेंट एरिया है। बड़े तालाब के चारों तरफ 223 किस्म के जली आयुर्वेदिक पौधे लगे हुए हैं, जिनमें से 103 पौधे जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने दुर्लभ घोषित किया है। माननीय सभापति महोदय, सैकड़ों प्रजाति के पूरी दुनिया के हमारे यहाँ जली जीव
अनेक प्रजाति के पक्षियों का घर भोपाल का बड़े तालाब का कैचमेंट है। इस कारण बड़े तालाब को रामसर साइट में डाला गया है, उसको दर्जा मिला है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भोपाल का जो बड़ा तालाब चारों तरफ से अतिक्रमण और प्रदूषण की चपेट में है। मेरा आपके माध्यम से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से आग्रह है, इस विशाल जल धरोहर को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराएं और इसे संरक्षित और सुरक्षित करने की पर्यावरण जलवायु विभाग द्वारा भविष्य में कोई योजना है बना रहे हैं तो कृपया उसको अवगत कराने की कृपा करें। सुरेश कश्यप जी, सुरेश कश्यप जी कहाँ गया? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र का पट्टा साहिब कालाम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को 2003 में औद्योगिक पैकेज दिया था और उस समय बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ इस क्षेत्र में स्थापित हुई। फार्मास्यूटिकल के मामले में ये क्षेत्र आज एशिया में नंबर 1 पर आता है, लेकिन ये एरिया अभी भी रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। मैं इस विषय को पहले भी माननीय रेलवे मंत्री जी के ध्यान में लाया हूं और लिखित में भी दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेलवे मंत्री जी का। इस रेलवे लाइन का जो प्रारंभिक सर्वे 2022 में पूर्ण कर लिया गया है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। मेरा माननीय रेलवे मंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि इस क्षेत्र को शीघ्र अतिशीघ्र रेलवे लाइन से जोड़ा जाए ताकि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वह कच्चा माल पहुंचाने की बात हो या जो तैयार उत्पाद है उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजेंद्र ओला जी। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू में एक ट्रेन चलती है अरावली एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14701 और डाउन का है 14702। मैं ये रामगढ़ शेखावटी होते हुए श्री गंगानगर से बांद्रा मुंबई के बीच चलती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी नहीं होने से यहाँ के सैनिकों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और रेलवे मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रेन संख्या 14701 और 14702 अरावली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावटी स्टेशन पर करने की कृपा करें, जिससे ट्रेन का फायदा लोगों को मिल सके। धन्यवाद जी। श्री हेमंत चबरा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और रेल मंत्रालय का ध्यान विरार डाहनू लोकल सेवा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। विरार से चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, विशेषकर पीक आवर्स में जो 6 बजे विरार से दाहनू और दाहनू से विरार ये एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाए। विरार से दाहनू के बीच एसी लोकल ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू की जाए। इस रूट पर नॉन एसी लोकल ट्रेनों की संख्या एवं फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि जरूरी है। ट्रेनों में डिब्बों की संख्या 12 से बढ़कर 15 की जानी चाहिए ताकि भीड़ को नियंत्रित की जा सके। इस सभी स्टेशनों पर दोनों छोर पर स्वच्छ शौचालय, डिजिटल साइन बोर्ड और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करने की व्यवस्था करें और सुबह 4 बजे दाहनू से चर्चगेट की ओर लोकल सेवा जो बहुत ज़रूरी है वो शुरू की जाए। शाम 6 बजे विरार डाहनू की एक्स्ट्रा सेवा की जाए और लोकल सेवा जो दाहनू तक सीमित है वो उंबरगांव तक एक्सटेंड किए जाए, ऐसे मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री संजय देशमुख जी। मधील एक मोठा असलेला रेमंड उद्योग सध्या अडचणीत सापडलेला आहे। या कंपनीतील 1000 पेक्षा अधिक कामगारांनी 21 जुलैपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। कंपनीसोबत 31 मार्च 2020 रोजी झालेल्या कराराची मुदत संपली आहे। नियमानुसार 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन करारामध्ये वेतनवाढ होणे आवश्यक होते, पण ती अद्याप झालेली नाही। आधीच रोजगार नाही, त्यात हे काही कामगार आहेत त्यांना अतिशय कमी वेतनात कसे जगायचे असा
गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे। या कामगार कंपनी युनियनला बाजूला ठेवून मान्यता प्राप्त युनियनच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे। 16 महिन्यापासून वेतनवाढ न करता नवा करार सुद्धा केला नाही। एवढेच नाही तर युनियन कुणालाही विश्वासात न घेता 5 महिन्याआधी कोर्टात केस दाखल करते। न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ लागतो, पण कामगारांचे जीवनमार्ग थांबलेले आहेत। ते रोजच्या गरजा भागवायला असमर्थ झाले आहेत। अध्यक्ष महोदय, कंपनीने कराराचा कालावधी नियमानुसार 3 वर्षात न ठेवता 4 वर्षाचा ठेवला आहे। तो अन्यायकारक आहे। शिवाय या कामगारांना वेगवेगळ्या कारणावरून कारवाई करत आहेत। गेल्या 2 महिन्यात ते 3 वर्षात हजारो कामगारांना सस्पेंड केले आहे। बरेच कामगार घरी बसलेले गेले आहेत, त्यांचा संसार धोक्यात आलेला आहे। ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे। यवतमाळ सारख्या मागासवर्गीय जिल्ह्यात कामगारावर अन्याय होतो आणि सरकार गप्प आहे। मी सरकारकडे आणि कामगार मंत्रालयाकडे नम्र विनंती करतो, यवतमाळातील या आंदोलनाकडे तातडीने लक्ष द्यावे। कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडवणूक करावी। रेमंड कंपनीला नवीन करण्यासाठी सक्त सूचना द्याव्यात आणि या जिल्ह्यात नवीन उद्योगाची स्थापना करून बेरोजगार तरुणांना न्याय द्यावा। फजनलाल जाटव जी। सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां पर सरकार डूंगरी बांध बनाने का काम करने जा रही है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर तकरीबन 76 गांव में है और 76 गांव में पूर्वजों की संस्कृति, हमारे पूर्वजों के मकान, मंदिर प्राचीन बने हुए हैं और सरकार ने बगैर सहमति लिए हुए वहां पर डूंगरी बांध बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरी बांध को निरस्त कर वहां की आम जनता को लाभ देने का प्रदान करें। धन्यवाद। श्रीमती बिजुली कोलिता मेढी। Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to draw the attention of the alarming situation concerning Deepor Bill, the only Ramsar wetland site in Assam and a vital ecological treasure of Guwahati city. It plays a crucial role in groundwater research, flood mitigation and livelihood support for numerous local communities. However, today this critical ecosystem is under grave threat due to encroachment and illegal landfilling in and around the bill, continuous pollution from municipal solid waste, degradation of bird habitat threatening over 150 bird species. Through you, sir, I urge the central government to direct the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to take immediate steps to restore and conserve Deepor Bill and declare it as a protected ecotourism zone. Thank you, sir. थैंक यू। आदरणीय श्री किशोरी लाल जी। किशोरी लाल जी। हाँ जी सर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हो गया भैया, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 2014 में एक FM स्टेशन स्थापित हुआ था, लेकिन अभी 2025 होने के बाद भी अभी तक उसमें स्टूडियो नहीं बना और ना ही उसके अंदर स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि ये एक रिले केंद्र बन के रह गया है खाली। और मेरा निवेदन है कि यहाँ पे एक स्टूडियो स्थापित किया जाए, जिससे यहाँ के किसानों को, यहाँ के कलाकारों को अपनी परफॉर्म वहाँ पे करना पड़े और किसानों को मौसम का जानकारी प्रॉपर मिले। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती संगीता सिंह देव जी। So many government schools across the country in rural areas. Many government schools across the country in rural areas continue to lack basic facilities like sufficient classrooms, boundary walls, kitchen sheds, dining halls, toilets, approach roads, etc., which are excluded from the current guidelines of Manrega. These deficiencies impact not only the safety and hygiene of students, but also their ability to learn in a conducive environment. So there are also many complaints about delayed payments
especially the labor component in the Manrega work. And even after completion of work, people have to wait for months to receive payment. As Manrega is a social security scheme with the objective of generating employment to arrest migration of labor, if this payment gets delayed, then the entire purpose of this scheme gets defeated, sir. Therefore, I urge the Honourable Minister of Rural Development to take immediate steps to streamline the fund release process, ensure timely wage payments, and promote convergence of Manrega with school infrastructure development on priority by amending the current guidelines. Thank you, sir. Honourable Member Robert Bruce ji. Robert Bruce. Mike. Mike. No mic. No mic, sir. மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே வணக்கம். என்னுடைய தொகுதி மக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயத்தை நம்பி வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள். அவர்களது விவசாய பயிர்கள் கடும் மழையாலும் பெரும் புயலாலும் பல்வேறுபட்ட இயற்கை சூழ்நிலைகளாலும் வனவிலங்குகளாலும் பாதிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றார்கள். அவர்களுக்கு மிக குறைந்த இழப்பீடைத்தான் அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்த அரசு விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவேன் என்று உறுதியளித்த அரசு. எனவே நான் தங்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் இந்த விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த இழப்பீடை தொகையை கொடுக்க வேண்டும், அதை உரிய நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டும். மேலும் இந்த பயிர்களை அழிக்கின்ற காட்டு பன்றிகள் நம்முடைய மத்திய வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்திலிருந்து நீக்கி விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தங்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். वणक्कम. श्री दिलेश्वर कामत जी. भारत और नेपाल के बीच 1954 में समझौता के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल जिला अंतर्गत बीरपुर में कोसी नदी पर 1963 में बैरेज बनाया गया था, जो क्षतिग्रस्त हो गया है। फलस्वरूप गत वर्ष भी बैरेज के ऊपर होकर पानी बह रहा था। अतः सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कोसी नदी पर पुनः नए बैरेज का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी. धन्यवाद सभापति महोदय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, जिसमें साफ कहा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा पाने के अधिकार का व्यवहारिक लाभ मिल सके। यह संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों का भी उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह शैक्षिक और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा और प्रोत्साहन करेगा और सामाजिक अन्याय व शोषण के रूपों में उनकी रक्षा करेगा। साथ ही शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों में इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि राज्य की कोई नीति या कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो केंद्र के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अतः राज्यों को के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। आप अपना विषय बताइए, मांग बताइए। सर विषय बता रहा हूँ। यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को 1 किलोमीटर से या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है क्या? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। गरीबों को बचाएं, उनके बच्चों को बचाएं। और आपके माध्यम से सभापति जी, सभापति लास्ट लाइन, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पे मुकाबला करने के लिए सरकार का। धन्यवाद सभापति। मोहिया मुट्रे जी. Honorable Chairperson, sir, আমি প্রথমেই আমি বাংলা
বাংলা ভাষার ওপর যে এবং বাংলা ভাষীদের ওপর সারা ভারতবর্ষে যে আক্রমণ চলছে তার প্রতিবাদে আজকে বাংলা ভাষায় আমি বলতে চাই। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র কৃষ্ণনগর করিমপুর রেল লাইন, যেটা বহুদিনের দাবি মানুষের। মমতা ব্যানার্জি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন এটি রেল বাজেটে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সেই কৃষ্ণনগর করিমপুর রেল লাইন 12 লক্ষ মানুষের দাবি। আমি যখন 2019-এ প্রথম এমপি হই, আমি এটা রেলমন্ত্রীর কাছে বলি যে এটা খুবই আবশ্যক, এটা আপনারা করুন। অশ্বিনী বৈষ্ণবজি মানে মাননীয় রেলমন্ত্রী, তিনি 2 কোটি টাকা স্যাংশন করেছিলেন একটা ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য এই রেল লাইনের। সেই ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিসেম্বর 2023-এ শেষ হয়, তারপরে আমরা কোনো খবর পাইনি। এখন 2 মাস আগে আমাকে রেল মন্ত্রক থেকে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছে যে আমরা ডিসাইড করেছি এখনের মতো এই প্রজেক্টটাকে আমরা শেলফ করে দিচ্ছি। শেলফ মানে আমরা এটা পার্ক করে দিচ্ছি, এটা এখন আর সম্ভব হবে না। তো আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রেল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কোনায় মানুষ থাকে, যেখানে রেল নেই সেই কৃষ্ণনগর করিমপুর যে রেল লাইন, এটা 3টে বিধানসভার ওপর দিয়ে যাবে, 12 লক্ষ মানুষ। তা আপনাদের একটা ইউনিভার্সাল সার্ভিস অব্লিগেশন আছে। রেলের ম্যান্ডেট কিন্তু শুধুই প্রফিট নয়, আপনারা এখানে প্রফিট নাই বা করলেন, কিন্তু ইউনিভার্সাল সার্ভিস অব্লিগেশনে এই রেল লাইনটা আপনারা ইমিডিয়েট যদি চালু করেন, সেটা শেলফ করে আবার আপনারা এটা ইউজ করবেন। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। माननीय सदस्य श्री लाभू श्री कृष्ण। Sir, this is about National Livestock Mission. Even in your constituency also, there must have been a lot of applications. A lot of people got benefited with this. It has helped in developing poultry, helped in developing goat and sheep farms, and also with regards to fodder making units also. It has empowered youth, women HSGs, and FPOs. And most of the beneficiaries are either SCs or STs, sir, with this scheme. But there are 2 issues that we are facing with the National Livestock Mission. Of course, it's given a lot of benefits to a lot of people, but 2 issues. The first one is with regards to the time for sanction. If someone applies it today, it's almost taking 1.5 to 2 years by the time that loan is getting sanctioned. So it's such a long time, and they have to put the asset in place so that they get the loan, and they have to wait for 1.5 or 2 years. And second most important issue is it is related to everyone in this house, sir. The website of a National Livestock Mission has been closed 10 days back. 8 months is there for the next budget, and before 8 months itself, the website is closed down, and no new applications are being accepted, sir. Every day, even to you, for me and everyone, there are number of applications coming to us, say, asking for NLM loans, sir. So I request the ministry to look into this issue. One, reduce the time for the sanction. Second, open the website and accept the new applications, sir. Thank you very much. माननीय सदस्य दामोदर अग्रवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के कारण भूगर्भीय असंतुलन होकर जनधन की हानि हो रही है। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में सैकड़ों मकानों में अवैध ब्लास्टिंग के कारण दरारें आकर जान माल की अति गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा न तो अनुबंध के अनुसार निवेश किया गया और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया। जालिया गांव में 300 मीटर की परिधि में 15 मीटर का घेरा बनाकर 45 केजी का बारूद भर के अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। इसी प्रकार से खसरा संख्या 2006 में चरागा भूमि में भी अवैध खनन हो रहा है। खसरा संख्या 21/44 में गैर मुमकिन नाले को भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार की अनेक अवैध गतिविधियों के कारण आम जन में भारी असंतोष होकर आए दिन धरना प्रदर्शन, यहां तक कि किसान आत्महत्या की भी चुनौती दे रहे हैं। अभी राज्यपाल के आगमन के समय भी उनके सम्मुख लोगों ने उपस्थित होकर आत्महत्या के लिए विवश होने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को अविलंब बंद कराया जाए। धन्यवाद जी। श्री जयप्रकाश जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी में
पिछले 3.5 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने लगभग 350 करोड़ रुपए में गड़बड़ की हुई है। तो एक तो उनकी तरफ जल्दी से जल्दी भारत सरकार बीच में बैठ करके लोगों का 350 करोड़ रुपया दिला जाए, और साथ में सभापति महोदय के बाढ़ के कारण मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में, चाहे वो बुआनी खेड़ाल का हो, चाहे नारनौंद हो, चाहे हांसी हो, बहुत से इलाके में तनाना, तालू, जताई से लेकर के कुंगड़ तक और आस पास के गांव में बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ में लोगों की फसल खराब होगी। तो माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिस तरीके से आपने गांव को इकाई माना है, गांव की बजाय एकड़ को इकाई माना जाए, क्योंकि खेत को आधे में बाढ़ आ जाती है, आधे में सूखा पड़ जाता है, दोनों जगह नुकसान हो जाते हैं। तो उन लोगों का जिनकी फसल बाढ़ से डूब गई है, बर्बाद हो गई है, जल्दी से जल्दी उनका भी फसल बीमा योजना के तहत आदरणीय सदस्य आपका बहुत मंजू शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं युवाओं के बारे में बात करने के लिए इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मैं जयपुर शहर से आती हूँ और वहाँ पर कोचिंग क्लासेस के लिए बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस में कम जगहों में ज़्यादा बच्चों को प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। मुझे लगता है जयपुर में नहीं, पूरे देश में ऐसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं और वहाँ सुविधाओं के अभाव के कारण कभी तो आग लगने पर बच्चों को ऊपर से कूद करके अपनी जान को बचाना पड़ता है, और कहीं कहीं गैस रिसाव के कारण बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी जान को बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए अनेक जहाँ भी ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन सुविधाओं को वहाँ पे मुहैया कराई जाए। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे माननीय सदस्य को बोलना है, 2 सेंटेंस में अपना डिमांड्स जो है वो रख दीजिएगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे सब लोग। तो इसलिए मैं अभी आह्वान करता हूँ एम श्री भरत जी को। नहीं श्री राजेश मिश्रा जी को। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, जो देशव्यापी समस्या है। अत्यंत दुख होता है जब हम राजमार्गों पर चलते हैं तो बेसहारा गोवंश भटकते हुए या सड़क पर कटे हुए मिलते हैं, बहुत पीड़ा होती है। मेरा आमजनों से निवेदन है कि गोवंश को बेसहारा नहीं होने दें, और सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि कम से कम हर जिले में लगभग 500 एकड़ जमीन ऐसी किया जाए जिसमें हम गो संरक्षण, गो संवर्धन केंद्र स्थापित करें, और वहाँ पर जो रहने वाले कर्मी हैं उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो, और हमको जैविक खाद भी उपलब्ध होगी। ये हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और इसमें जन धन और किसानों के और पशुधन भी इसमें हमको लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री राजमोहन उन्नीथम जी। Thank you very much, Speaker sir. I would like to draw the attention of this August House a pressing issue of severe sea erosion in my parliament constituency, Kasaragod. According to a study by Indian National Centre for Ocean Information Services, INCOIS, Kasaragod is one of the districts in Kerala that is highly vulnerable to coastal erosion. The coastal areas of Kasaragod, particularly Chutad, Pamturuthi in Kannur, as well as Madakkara, Kidur, Ajanur, the Chitari River region, Vinirak, and Kannotirtha, Manjeshwaram, Chembarika, and Trikkanad in Kasaragod are living examples. So the Kerala government cites a lack of funds, while the central government withholds timely assistance. So the existing seawalls or protective structures have proven insufficient to mitigate erosion. So I urge upon the government to immediately release central funds to prevent sea erosion in Kerala as well as in Kasaragod. Time-bound compensation and rehabilitation for affected families. Thank you very much. श्री कल्याण काले जी। कल्याण काले जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आगे धन्यवाद सभापति महोदय। शून्यकाल के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जालना में
जालना से नांदेड़ तक द्रुतगति मार्ग समृद्धि मार्ग जा रहा है, उसके निर्माण करने के लिए किसान की कृषि भूमि, फलो बाग, कुएं, गाय गोठा आदि मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन मूल्यांकन 2017-18 के पुराने रेडी रेकनर के दरों से हो रहा है, तय किया जा रहा है, जबकि अभी जो अधिसूचना निकली है वो 2021 में निकली है। इस कार्य का अवार्ड 2024-25 में जारी किया गया है, जिसके कारण किसानों को उनकी संपत्ति का उचित मूल्य मुआवजा नहीं मिल रहा है, पुरानी दरों से मुआवजा मिल रहा है। इसके कारण किसान असंतुष्ट है। मेरे सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रेडी रेकनर दरों में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी करके अनुसंधान संशोधित दरों पर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। घर कुएं सिंचाई संसद अध्यक्ष महोदय एक ही लाइन संसाधन फलों पेड़ों के लिए मुंबई समृद्धि मार्ग, मुंबई नागपुर समृद्धि मार्ग के दौरान जो दर है वो निर्धारित किया जाए और मौजूदा लागत सदस्य विप्लव मुआवजा मिले और भविष्य की आय माननीय के प्रभाव के लिए समुचित मूल्यांकन हो। साथ ही साथ जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनको सरकारी नौकरी का प्रदान भी रखे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। क्या हुआ? नहीं बोले विप्लव कुमार देव। माननीय सदस्य श्री एन अन्नादुराई जी। சார் மைக். மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ஆண்டிற்கு 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த 5 கோடி நிதியில் 4 கோடி மட்டுமே வளர்ச்சி பணிகளை தேர்வு செய்ய முடிகிறது. 1 கோடி மீதம் இருக்கின்ற 1 கோடியில் 10 லட்சம் நிர்வாக செலவிற்காகவும் 90 லட்சம் ஜிஎஸ்டியாகவும் மீண்டும் ஒன்றிய அரசே திரும்ப பெற்றுக்கொள்கிறது. 6 சட்டமன்ற தொகுதிகள் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்ற ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 4 கோடியில் எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை தெரியவில்லை. தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய நிதி உயர்த்தப்படும். ஆனால் இந்த 11 ஆண்டு காலமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி உயர்த்தப்படவில்லை. அது மட்டுமல்ல, நிதியை உயர்த்தி கூடுதலாக ஜிஎஸ்டி தொகையையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. धन्यवाद जी। श्री दिनेश चंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। देश में बड़े पैमाने पर रेल दोहरीकरण का काम हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो इलाका है कोसी का इलाका, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है, बगल में सुपौल लोकसभा है, बगल में पूर्णिया लोकसभा है, उसमें 1 इंच भी दोहरीकरण का काम नहीं हुआ। जबकि वहाँ से रेल यात्री बड़े पैमाने से बाहर जाते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है और दोहरीकरण नहीं रहने से भारी दिक्कत होती है। कई के स्टेशन पर गाड़ी को रोकना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी बड़े पैमाने पर रेल का विकास कर रहे हैं, तो हमारा भी निवेदन है कि हम लोग का जो इलाका है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत जो मानसी से सहरसा पूर्णिया तक और फिर सहरसा से सुपौल तक दोहरीकरण काम कराया जाए, जनहित में है और हम लोग का परेशानी दूर हो। माननीय रेल मंत्री जी इस पर ध्यान जरूर देंगे। दर्शन सिंह चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदन को अत्यंत श्रद्धा और कर्तव्य भाव से अवगत कराने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति में देशी गौ माता को जो स्थान है वो अद्वितीय अनमोल है। प्राचीन समय से ही गाय को भारतीय समाज में माता के रूप में पूजा जाता है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और औषधीय महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजने की बात करते हैं तो यह अत्यावश्यक है कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर उन्हें उनके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करें।
गाय न केवल हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाती है, बल्कि कृषि, दूध उत्पादन और औषधीय लाभों के माध्यम से आर्थिक विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। माननीय सदन से निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सशक्त कार्य करते हुए आने वाली पीढ़ियों के संदेश दें कि संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता जो सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, तो इसे गौशालाओं, अभ्यारण्यों और आर्थिक सहयोग देते हुए अपने अपने राज्यों में निर्देशित करें और प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के संरक्षण जो मोदी जी का संकल्प है, उसके लिए गौ माता का संरक्षण और संवर्धन बहुत अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। राजीव प्रताप रूडी जी। महोदय, हम लोगों ने शेक्सपियर की बात कही, लेकिन बिहार में भी एक शेक्सपियर थे और वो भोजपुरी के शेक्सपियर थे। और शायद भारत के बहुत कम लोगों को पता होगा कि भोजपुरी के एक शेक्सपियर थे जिनका नाम था भिखारी ठाकुर, और वो नाई समाज के थे। आज़ादी, उनका जन्म हुआ था 1887 में, और वहाँ से निकल के छपरा के एक दूरगामी गांव से निकल करके वो कलकत्ता गए जहाँ नाई का काम करते थे। लेकिन पता नहीं उनको उस काम में पसंद नहीं आया और लौट करके वापस बिहार छपरा में आ गए। और उसके बाद उनके बारे में जो कहा जाता है भोजपुरी में, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को हुआ और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा में पैदा हुए भिखारी ठाकुर एक चर्चित गीतकार, गायक, नाटककार, नृतक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन एक जाने माने कलाकार के रूप में उन्होंने बेटी बचाओ का आंदोलन उस समय शुरू किया, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई उस समय लड़ी, और एक बड़ी भूमिका आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने अपने लेख और गीत से किया। और उनको औपचारिक शिक्षा नहीं था। अपने फन के जरिए लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने वाले भिखारी ठाकुर ने करीब 84 वर्ष में उनकी मौत हो गई। भिखारी ठाकुर अपने बात समाज को सामने रखने में कभी डरते नहीं थे। हालांकि वो पिछड़ी समाज से थे, नाई जाति से थे, और आज भी गांव-गांव तक उनकी तूती बोलती है, उनके लेखनी का, उनके कलाकार का, उनके गीत का। उनके नाटक इतने शानदार होते थे कि उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती थी, आज नहीं आज़ादी के पहले। और वो उन्होंने देश के सामंतवादी संस्कृति व गवई लोगों पर चढ़े हुए जातीय समुदाय व रंग के खिलाफ गीत गाते थे और लोगों को जगाते थे। तो ये थे हमारे भिखारी ठाकुर। शायद ऐसे लोगों को हम स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन मुझे सौभाग्य है और आप वहां बैठे हैं कि देश को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का शेक्सपियर, देश का शेक्सपियर, भोजपुरी आवाज से बोलने वाला शेक्सपियर हमारे धरती का था, जिस माटी से मैं जीत के आता हूं। मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी इतिहास है, जो शेक्सपियर हमारे भाषा का, उन्हें सम्मानित किया जाए। सरकार जो भी उचित समझती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, लेकिन निश्चित रूप से मरणोपरांत उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी मांग है। लक्ष्मीकांत निषाद जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति, मैं संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। खलीलाबाद जो संत कबीर नगर से बहराइच नई रेल लाइन बन रही है, मिट्टी का काम हो रहा है, आसपास दोनों तरफ पानी का इतना जल जमा हो जा रहा है, किसान परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेतों में जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि पटरी के साथ साथ पानी भी निकालने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे, जिससे किसानों और वहां के आम जनमानस का लाभ हो। धन्यवाद। श्री सुदामा प्रसाद जी। सभापति महोदय, भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के जवैनिया, गंगापुर, दामोदरपुर, छोटकी बहरवनपुर, सारंगपुर, सुरेमनपुर, लच्छू टोला, लालू डेरा, आराम फसिल प्रखंड के मनीराय का टोला, चरज राय का टोला, बढ़ारा प्रखंड के मझौली, खवासपुर, नकनाम टोला, नथमलपुर, कोइलवर प्रखंड के ज्ञानपुर सहित दर्जनों गांवों में
भयानक बाढ़ आई हुई है महोदय गंगा नदी के पानी से। 4 लोगों की डूब करके मौत हो गई है। मांग बताइए, मांग बताइए। मांग बताते हैं सर। ये 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। जवैनिया गांव के सामने आरा मोहनिया जब 4 लेन बन रहा था उस समय 22 और 23 में ठेकेदारों ने और सड़क बनाने वाली कंपनी ने भारी खुदाई किया, मिट्टी और बालू ले गए वहां से, जिसके वजह से पूरा जवैनिया गांव का 300 घर इस साल, पिछले साल 69 घर माने कहा जाए कि गंगा में विलीन हो गए। 300 घर सर, पूरा गांव जो है नक्शा से मिट रहा है। मांग बताइए। मैं मांग करता हूं कि सड़क निर्माण कंपनी पर जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, उनको दंडित किया जाए और जिन लोगों का घर गंगा नदी में गया। महोदय 5 सेकेंड। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आवंटन की अत्यावश्यक आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यातायात को संभालने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और संचालनशील है, किंतु आवश्यक अधोसंरचना एवं अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के बावजूद इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। वडोदरा हवाई अड्डा केवल वडोदरा शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि गुजरात के मध्य एवं दक्षिणी मार्गों के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे आणंद, खेड़ा, छोटा उदयपुर, पंचमहाल, दाहोद और भरूच को भी सेवाएं प्रदान करता है। ये क्षेत्र औद्योगिक, शैक्षणिक और आदिवासी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लीज मेंशन योर डिमांड्स प्लीज। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि डोमेस्टिक फ्लाइट भी वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बढ़ाई जाए। माननीय सभापति महोदय, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के जमाने में यह देश का सबसे पहले हवाई अड्डों में से एक था। हमें वडोदरा की वो स्वर्णिम काल को फिर से वापस लाना है। धन्यवाद। श्री रविंद्र वाइकर जी। विप्लव को भी बुला देना इनके बाद। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं इस सदन और सरकार का ध्यान इस देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुए आशा कार्यक्रम को पूरे 20 साल हो गए। 2005 से इस कार्यक्रम को गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बढ़ाई और महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार लाने के महान उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि 20 साल के निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और भविष्य के लिए कोई आर्थिक गारंटी भी नहीं है। देश के अलग राज्यों में उन्हें अलग मानदेय मिलता है। मेरी 4 मांगे इनके बारे में खाली मेरी ये मांगे है कि पूरे देश में आशा कार्यरत के लिए सेम रूल सेम पेमेंट का सिद्धांत लागू किया जाए और उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। ठीक है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था किया जाए। सभी आशा कार्यरत और उनके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान की दिया जाए। उन्हें केवल माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से। त्रिपुरा में ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में ऊनकोटी नाम से एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसमें 1 करोड़ देव देवते का जो धरोहर बना हुआ है ये 8वीं और 9वीं शताब्दी की है। इसका रखरखाव एएसआई के पास है और एएसआई इसको रखरखाव में सही ढंग से काम नहीं करता। त्रिपुरा सरकार ने इसका डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया, काम करने की कोशिश किया, तो स्वाभाविक तौर पे एएसआई इसमें बाधक बनता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है जो उस धरोहर को बचाने के लिए, कि हिंदुओं का सनातन का बड़ा धरोहर है पुराने, उसको बचाने के लिए 100 करोड़ के आसपास एक पैकेज बना के वहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट, वहाँ के 4 लेन रोड बनाना 1 किलोमीटर की, वहाँ कैफेटेरिया और बाकी सब सुविधा देके जो लाखों जो टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं उसका व्यवस्था करें। और त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार के साथ मिल के एएसआई का जो
ऑफिस है वहाँ नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में रखा हुआ है। 90% ऐतिहासिक धरोहर त्रिपुरा में है, ऑफिस रखा हुआ है मिजोरम में। मिजोरम से जाके वहाँ देखभाल करता नहीं। मैंने बहुत बार उठाया जो मिजोरम से परिवर्तित करके इसको त्रिपुरा में कर दिया जाए, जैसे हमारे ये धरोहर को देखभाल कर सकता है और उसका डेवलपमेंट कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर श्री के गोपीनाथ जी। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல்ல இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்றி. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரமாக கை தூக்கி கடைசியில் கொடுத்துட்டீங்க. முதல்ல நன்றிங்க. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே, என்னோட தொகுதியானது கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்றம். இந்தியாவிலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கான்ஸ்டியூஷன் என்னோட கான்ஸ்டியூஷன். ஒரு பக்கம் கர்நாடகா, ஒரு பக்கம் ஆந்திரா, நாங்கள் தமிழ்நாடு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட என்னோட தொகுதியில் மட்டும் 2000 தொழிற்சாலைகள் மேல் உட்பட்டு தொழிற்சாலை இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 500 to 600 crores ஃப்ளவர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி தொகுதி. ஆனால் அவல நிலை என்றால் ஹோசூர் டு ஜோலார்பேட், பெங்களூர் ஜோலார்பேட் வயா கிருஷ்ணகிரி என்பது காலங்காலமாக இந்த அவையிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரை அதோட பணிகள் எந்த அளவுக்கு சொன்னாலும் யாரும் கரெக்டாக பதில் சொல்லவில்லை. மாண்புமிகு மந்திரி அவர்களுக்கும் நேரில் தன்று பத்திரிகை கொடுத்தோம். நிச்சயமாக வரும் பட்ஜெட்டிலாவது ஓசூர் டு கிருஷ்ணகிரி டு ஜோலார்பேட்டுக்கு இந்த ரயில் பாதம் அமைத்து கொடுக்குமான்னு கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू. ऑनरेबल मेंबर सौमित्र खान जी। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান স্যার। আমরা প্রতিদিন দেখছি যেখানে একটা নাটক চলছে, নাটকটা কারা করছে? না তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা নাটক করছে। কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে, আক্রমণ করে, খুন করে বাঙালিদেরকে, সেই বাঙালিদের মর্যাদা রাখে না। আমি চাইছি যে প্রত্যেক ভোট এলেই আমাদের বিপদ হয়, কিন্তু আজকে যে ভোট এলে আমাদের বিপদ হয় তৃণমূলের এই নাটকবাজি না, নাটক করে চলে। আমি চাইছি যে এবারে ভোটে যদি কেউ মারা যায়, সেই মারা গেলে সেই পরিবারকে চাকরি দেওয়া হোক, এবং এই নাটকবাজ যারা করছে তাদেরকে বলি এই নাটকটা বন্ধ করতে। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক করে গিয়েছিল, পুরোটাই নাটকের একটা পার্টি, একটা নাট্যকর্মী নিয়ে আসছে, আর কিচ্ছু নেই। বাঙালি ভালো আছে, এই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাঙালি আমরা এগিয়ে চলবো। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন খুন করে চলেছে, প্রতিদিন ভারতীয় জনতা পার্টি খুন করে চলেছে, আর এখানে নাটক করছে। আমাদের হরিয়ানা রাজ্যপাল তিনি পশ্চিমবাংলা রয়েছেন মিস্টার অসীম কুমার ঘোষ। আমরা বলতে চাই এখানে নাটক করে আর বাংলার হত্যা করে, এই হত্যা যেন না হয় সেটা আপনাদের অনুরোধ করছি। যারা হত্যা হবে রাজনৈতিক হত্যা হবে, তারা যেন চাকরি দেওয়া হয়। धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्लीज बी सीटेड। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। प्लीज। ऑनरेबल मेंबर श्री महिबुल्लाह जी। थैंक यू अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सर, मेरे ज़िले में कई लोगों की मौतें इसलिए हो चुकी हैं कि उनकी दुकानों को जो 50-50 साल से थीं और बाज़ के पास में नक्शे भी मौजूद थे 60-70 साल पुराने, तब भी उन दुकानों को तोड़ दिया गया। रामपुर म्यूनिसिपैलिटी, नरपत नगर और इसी तरह पूरे देश में अतिक्रमण को हटाने के नाम से जिस तरह से खास तौर पर मुसलमानों की दुकानों को, उनकी इबादत गाहों, मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मैं आपके तवज्जुह से जिन सरकारों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं देश में, ये अपील करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। इससे देश की एकता और अखंडता को सख्त नुकसान पहुंचता है। देश की सरकारों का काम रोजगारों को देना है, ना कि गरीबों को मिटाना और उनके कारोबार को उजाड़ना है। इसलिए अगर कहीं सड़कें चौड़ी भी की जा रही हैं तो पहले उनको बसाया जाए, इसलिए कि अगर उनको बसाया न जाएगा तो उनके बच्चे और हमारे शहरी भूखे मरने लगेंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार दुबे जी।
के अध्यक्ष जी, हाँ बोलो। कुशीनगर के बड़े गंभीर मुद्दा को आज आपने रखने का मुझे अवसर दिया। वर्तमान के समय में हमारे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा RDSS परियोजना अंतर्गत लोकसभा के इलाके, गांव, टोले, मजरे के छूटे वंचित विद्युतीकरण की सुविधा को पूर्ण करने के लिए आज संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ भी बड़े जोर शोर से हम लोगों ने, मैंने कुशीनगर में किया था। लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ा, हम लोगों को संज्ञान में आया कि जितना भी RDSS योजना से कार्य अभी लिए गए हैं सर्वे के द्वारा, अभी 250 ऐसे गांव टोले के इलाके हैं जो विद्युतीकरण की सुविधा से अभी भी वंचित हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि RDSS योजना के लिए एक बार पुनः सर्वे करा के वंचित इलाकों में भी विद्युतीकरण की सुविधा दिया जाए। श्री बलवन वानखेड़े जी, बलवन जी। नापिकी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नापिकी आणि कर्जामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जो आत्महत्येचा आकडा आहे तो दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि तो फार चिंताजनक आहे. आणि अशा पद्धतीनं जर राहिलं तर निश्चितच महाराष्ट्राचा शेतकरी हा पुन्हा पुन्हा आत्महत्येकडे वळेल. महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वी त्यांना कर्जमाफीचं त्यांच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिलं होतं, परंतु आजपर्यंत या महाराष्ट्र सरकारनं आमच्या देवाभाऊनं कर्ज अजून माफ करण्याचं कुठलाही विषय घेतला नाही, कुठली तारीख दिली नाही. फक्त माफ करू एवढंच बोलतात. मी या निमित्तानं विनंती करेल आपल्या माननीय पंतप्रधानांना की आपल्या पंतप्रधानांच्या मतानं महाराष्ट्र सरकार पूर्णतः ऐकते, आमचे देवाभाऊ ऐकतात, त्यांच्याशिवाय त्यांचं पान सुद्धा हलत नाही. म्हणून पंतप्रधान महोदयांनी त्यांना सक्त आदेश द्यावे की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे असं ठामपणानं पंतप्रधानांनी सांगितलं पाहिजे अशी तुमच्या माध्यमातून मी विनंती करतो. मोरसोले जी, एस मोरसोले जी. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. உங்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சரிடம் தொடர்ந்து எங்களுடைய தஞ்சை தொகுதியினுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக தொடர்ந்து ரயில்வே அமைச்சர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கோம். 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ், நியூ ட்ரெயின் கேட்டுட்டு இருக்கோம். எங்களுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய முக்கிய கோரிக்கையாக 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். தாம்பரம் டு செங்கோட்டை, தாம்பரம் டு प्लीज वेट. आप बोलते தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. மாண்புமிகு அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து ஒன்றிய ரயில்வே துறை அமைச்சரிடம் என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட முக்கியமான கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ், நியூ ட்ரெயினை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த கோரிக்கை வைத்தாலும் நீங்கள் இதுவரையில் செவி சாய்க்கவில்லை. உங்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சருக்கு மீண்டும் ஒரு கோரிக்கையாக 1 மினிட் ஸ்டாப்பேஜ், தாம்பரம் டு செங்கோட்டை, தாம்பரம் டு ராமேஸ்வரம் ரயிலை அதிராம்பட்டினம் பேராவூரணி ரயில் நிலையத்தில் 1 நிமிடம் நிறுத்தம் செல்வதற்கும், அதே போலவே மன்னார்குடி டு ஜோத்பூர் ரயிலை நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தம் செய்வதற்கும், அதே போல் நீங்கள் நம்முடைய ரயில்வே அமைச்சர் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை பெருமையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதே போல் எங்களுடைய தஞ்சாவூரிலிருந்து சென்னைக்கும் தஞ்சாவூரிலிருந்து பெங்களூருக்கும் ஒரு வந்தே பாரத் ட்ரெயினை இயக்குமாறு இந்த அரசை கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू. KS बंदरप्पा जी. KS बंदरप्पा जी. थैंक यू चेयरमैन सर. मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूं और लातूर में एक रेलवे बोगी फैक्ट्री लग चुकी है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5 साल पहले किया था, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है. इसका क्या कारण है और जल्द से जल्द ये प्रोडक्शन चालू किया जाए. दूसरा, लातूर के लिए एक वंदे भारत
पूना से और हैदराबाद से चालू की जाए, ये एक हमारी मांग है। और लातूर के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जल्द से जल्द एक आधा लॉन्ग रूट का ट्रेन नॉर्थ इंडिया के लिए चालू किया जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य विजय बसंत जी, ऑनरेबल मेंबर विजय बसंत जी। Thank you, Speaker, sir. I rise today to draw the attention of this esteemed House to a critical and urgent concerning the Kanyakumari constituency. So the Kanyakumari constituency. So due to the sea erosions, the infrastructure has been damaged vastly. So I request the central government to allocate adequate and immediate funds for comprehensive sea erosion control measures, including the construction of seawalls, groins, and other scientific interventions to safeguard the coastline, restoration and strengthening of damaged road networks to ensure uninterrupted connectivity for these fishing villages, rehabilitation support for affected families to protect their homes and belongings from further destruction, long-term sustainable development plans to support the fishing communities in adapting to the changing environmental condition. I appeal to the government to treat this issue, to construct seawalls on the war footing and ensure that the necessary funds and resources are allocated without delay. Thank you, sir. Thank you. Sri T. Uday Srinivas ji. Honorable Speaker, India today stands as undisputed leader in global IT exports. From about 23 billion in 2005, export has grown 200 billion in 2025. It directly employs 50 lakh Indians, support millions in ancillary services. A significant part of this success is rooted in special economic zones. Out of 351 economic zones, nearly 226 are IT and IT-enabled services. Cities like Bengaluru, Hyderabad, Gurgaon, Pune and Chennai owe much of their global statures through these thriving IT clusters. Yet we have built the world-class office spaces in IT SEZs. We have left behind the very poor people who power them. Across India's tech corridor, lakhs of young professionals, many of them first-generation white-collar workers, migrate in search of opportunity. But what they encounter is harsh reality, sky-high housing costs, long hours commute, and daily struggles to balance work and life. In Bengaluru example, near IT corridors, 40 to 60% of an average tech worker's salary. In Gurgaon and Pune, 1.5 to 2 hours daily commutes. For women professionals, these challenges are not just about convenience. They raise safety, equity, and workforce retention concerns. Sir, SEZ Acts permits residential and social infrastructure in non-processing areas, yet there is no additional clarity, consistency, or urgency in implementation. As a result, developers remain hesitant and state approvals are patchy. Sir, from China, Shenzhen, a small fishing village has transformed into 400 billion tech company, means tech economy through integrated SEZ plannings. A gift city in Gujarat demonstrates the integrated living and workspaces lead to higher productivity, better retention, and improved quality of life. I ask the Government of India and Ministry of Commerce to issue a clear national guidelines to enable residential housing within the adjacent IT SEZs. Uniform approval, timeline, sustainability standards, and affordability norms. This is not merely a weak policy tweak, it is a structural reform that will ease urban congestions and lower carbon emissions through walk-to-work models, improves retention and safety, especially for women, strengthens India's competitiveness in attracting global investment and talent. If SEZs are remain centers of economic excellence, they must become the centers of dignity, inclusivity, and livability. Let us not allow the people behind India's digital success to left behind in the very cities they are building. Thank you, sir. जिन माननीय सदस्यों का अतिरिक्त अविलंब लोकमत शून्यकाल के अंदर जिन्होंने आज नाम दिए हैं, उन्हीं को ही कल अवसर मिलेगा। जिन्होंने आज नाम दिए हैं, आसन के पीठ से सुन लो बात, जिन्होंने आज नाम दिए उनको ही कल अवसर मिलेगा, कल देने वालों को अवसर नहीं मिलेगा। लॉटरी वालों पे विचार करेंगे। लॉटरी वालों पे विचार करेंगे, देंगे नहीं देंगे। आइटम आज सबको अवसर दिया है, कल भी देंगे। आइटम नंबर 17
अब मणिपुर से संबंधित सामंदिक संकल्प को पारित करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इस सभा ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 अप्रैल 2025 को बैठक में किया था। अनुच्छेद 356(4) के अनुसार इस अनुमोदन की वैधता 6 माह तक होती है। अनुच्छेद 356(4) के परंतु के अनुसार राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने तक बढ़ाना हो तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में इस सामंदिक संकल्प को पारित किया जाना आवश्यक है। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय किया था कि मणिपुर बजट और मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक पर ये सभा 2-2 घंटे चर्चा करेगी। माननीय सदस्यों को मणिपुर के विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। फिर भी अगर सभा की सहमति हो तो संक्षिप्त चर्चा आज करा देते हैं। माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में बोलेंगे ताकि 6 बजे आज की कार्रवाई समाप्त की जा सके। आइटम नंबर 17, आइटम नंबर 17 सामंदिक संकल्प। माननीय मंत्री महोदय संक्षिप्त में रख दे बस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी दिनांक 13 फरवरी 2025 की उद्घोषणा को दिनांक 13 अगस्त 2025 से आगे 6 माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है। डॉक्टर A.B. अकोई जाम। डॉक्टर A.B. अकोई जाम। नेक्स्ट लेते हैं एंटोनी। आप केरल से मणिपुर जा रहे हो क्या? थैंक यू स्पीकर। केरल से मणिपुर शिफ्टिंग। I rise to speak on the discussion and voting on demands for grants for the year 2025-26 and introduction, consideration and passing return of the related appropriation bill and the resolution speaking approval of extension of President's rule imposed through proclamation issued by President on 13th February 2025 under Article 356(1) of the Constitution of India in relation to the state of Manipur with deep pain and anguish. Madam, my heart is very heavy and I speak not only as a member of parliament but as a human being watching the continued suffering of our brothers and sisters in Manipur. What was happened there and what is still happening is not just a law and order problem, it is a complete collapse of governance. And that collapse lies squarely on the inefficiency of the BJP-led government, both at the center and in the state. Manipur, literally meaning jeweled land, has been reduced to ashes. The state, once known for its green hills and harmony, now bleeds red. The sounds of nature have been replaced with the cries of mothers who watch their children killed, with the screams of women stripped of their dignity, and with the silence of a prime minister who chose not to speak when the people needed him most. Let us call this what it truly is, a man-made disaster caused by the inefficiency, apathy and failure of this government. Madam, the violence in Manipur began 2023. Instead of facing swiftly to de-escalate, the government allowed the situation to spiral
into uncontrolled violence, bloodshed and chaos. Madam, where was the central government when the state was burning? Where was the Union Home Ministry, which is constitutionally responsible for maintaining law and order in such situations? What we saw was not just a slow response, it was no response. In fact, the inaction of the government enabled the violence. It gave room for mobs to attack, for homes to be burned, and for over 60,000 people to be displaced. Over 200 lives lost and nearly 500 churches demolished, and yet this government waited months to even speak a word. The silence is not accidental, it is deliberate. It is a reflection of the BJP's lack of political will and absence of administrative efficiency, especially when it comes to northeastern part of India. Madam, this is the same government that never fails to chant Bharat Mata Ki Jai in this parliament. But what about the Bharat Mata's daughters in Manipur, who were stripped, paraded and assaulted by mobs? A former soldier whose wife was among the victims said with deep pain, "I served the country, but I couldn't protect my wife." What kind of country we are building where our soldiers feel helpless and our women are not safe? The Prime Minister, who often speaks for hours on less important matters, took months to say just a few words after shocking video from Manipur came out. And even then, all he said was it was shameful. When the union government controls the paramilitary forces, controls the intelligence machinery, and has the power to intervene in serious internal conflict, why did they do nothing? This wasn't just a delay, it was a complete failure to do their duty. It showed a serious lack of leadership. Madam, the Manipur government, instead of protecting its people, has worsened the situation through internet shutdowns, curfews, and brutal police actions. On June 12, 2023, the Rapid Action Force vandalized private vehicles. This act was caught on CCTV. Later, 3 RAF personnel were caught trying to burn down a store. Is this the government's definition of peacemaking? People have been cut off from the world with internet shutdowns lasting over 2 months. In a democracy, this is unacceptable. It hides what is really going on, stops victims from speaking out, and clearly shows that the government cares more about controlling the story than actually solving the problem. Let me remind the House, even the United Nations raised the alarm in September 2023. UN experts cited serious human rights violations, extrajudicial killings, sexual violence, forced displacement, and torture, and slammed the inadequate humanitarian response of the Indian government. Even when the international community sees and reacts, why does the Indian government turn away? The pattern of inaction is not limited in Manipur. Just recently, 2 nuns from Kerala were arrested in Chhattisgarh and on baseless charges of forced conversion. They were harassed at railway station and the state government remained mute. Again, it is the minorities and marginalized who suffer, and again, the BJP-led governments either took away or support the actions of right-wing groups. And now, let me bring the attention of the House deeply ignored truth. In our country, most educational institutions are run by the Christian community. It is through these schools that most of the people there learn their first alphabet. The Christian community has always upheld the values of love, service, and brotherhood. And yet today, they are being haunted, humiliated, and accused, while the current government offers protection to their attackers. Let me ask those sitting on the House, can any one of you honestly say that
the schools you studied in forced you to convert your faith. In Kerala, our education success is rooted in a simple concept. Palliyodopam Pallikudam. That is a school beside every church. This is how every village has given access to education beyond race, caste and belief. It was vision, not violence, that uplifted our state. When the government turns a blind eye on this truth, it cannot hide behind slogans. It becomes an act of betrayal of the constitution, of justice, of humanity. And that betrayal is what the people of Manipur and many others across this country are enduring right now. Thank you. श्री लालजी वर्मा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदया, जो ये संकल्प हमें लाना पड़ रहा है, 356 में आपात स्थिति में जब उस राज्य का प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट से न चल पावे, तब हम इसका प्रयोग करने का उपबंध है। निश्चित रूप से जो स्थितियां बनी हैं वहाँ पर, आज ये सरकार जब भाषण देने खड़े होते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो जिस तरह का शब्दों का चयन करते हैं और जिस तरह से अहंकार में भाषण देते हैं, निश्चित रूप से वही कारण है कि जिसके कारण मणिपुर में हम चुनाव नहीं करा पा रहे। हम एक तरफ कहते हैं एक देश एक चुनाव, और दूसरी तरफ एक छोटे राज्य में जहां केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हों, उस राज्य में 6 महीने व्यतीत हो जाने के बाद पहले तो काफ़ी दिनों तक वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह से महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और जो हम लोगों ने वीडियो देखा माननीय महोदया, निश्चित रूप से शर्मनाक वीडियो था और उसको देखकर आंखों में आंसू आने की स्थिति बनी है। एक सभ्य समाज में इस तरह का वातावरण देखने का निश्चित रूप से अवसर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा किया। काफ़ी दिनों तक मांग करने के बाद भी उस सरकार को भंग करने का काम नहीं किया गया। वहाँ उस सरकार को राष्ट्रपति शासन उस समय नहीं लागू करने का काम किया गया, और आज जब लागू किया गया है, 6 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी हम वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल नहीं करने पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। निश्चित रूप से आज ये सरकार केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने की दिशा में, ये देश रहे न रहे, इनका वोट बैंक बना रहे, केवल इस धारणा के साथ काम करने का काम करते हैं, इस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पर एक छोटे से राज्य में चुनाव कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से हमारी ये चाहत है कि वहाँ पर सरकार केवल वोट बैंक की दृष्टि से न काम करते हुए, वहाँ की भावनाओं को समझते हुए वहाँ शांति का वातावरण पैदा करने का प्रयास करे और जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करके वहाँ के लोगों को अवसर देने का काम करना चाहिए। हमें देश सर्वोपरि के सिद्धांत पर कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमें अपनी केवल कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे ज़्यादा अधिक वोट बढ़ेगा, केवल इस सोच से जब हम काम करते हैं, चाहे जहां पर भी इस सोच से जब हम काम करते हैं, तो देश के लिए घातक होता है। इसीलिए आज की जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की उसी नफरत के कारण आज जो परिस्थितियां हैं, अभी कल हम जब चर्चा कर रहे तो उस समय भी जो बात आई कि आज भारत का देश, जो देश चाहे वो 1965 की लड़ाई रही हो, 1971 की रही हो, 1999 की रही हो, हमारे देश के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े नजर आते रहे, लेकिन आज इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की नीति है, उसके कारण हमारा चाहे वो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल हुआ, और उसी के कारण मणिपुर आज भी इस तरह के समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे ये मांग है
कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करके वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल करने के लिए देश सर्वोपर है। इस नीति के तहत अगर हम काम करने का काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम वहाँ पर चुनाव कर पाएंगे और बार बार हमें ये संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विचार है और इस आधार पर हमें काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। काकोली घोष। माननीय सभापति महोदय, आमी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेसेर पक्ष थेके आजकेर जे এই সাংবিধানিক সংকল্প যে মণিপুরে ৩৫৬ ধারা যে প্রয়োগ হয়েছে তার পুনর্বহাল করা এবং আগামী 6 মাস সেটার মধ্যেই ওই রাজ্যের মানুষকে রাখাটার যে সংকল্প তার তীব্র বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়েছি। গত 2 বছরেরও বেশি সময় ধরে মণিপুর জ্বলছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের নেত্রী পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টিম করে। মণিপুরে আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি সেখানকার মানুষের দুরবস্থা, কিন্তু আজ অবধি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে একবারের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বা যাননি, বা সেখানে না গিয়েও সারা পৃথিবী তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমাদের আন্তর্জাতিক যে সীমান্ত সেখান দিয়ে যে বিভিন্ন আতঙ্কবাদীরা ঢুকছে, আমরা দেখেছি এই বছর এপ্রিল মাসে কিভাবে কাশ্মীরে আতঙ্কবাদী ঢুকে 26 জন মানুষকে হত্যা করেছে, এবং ঠিক সেইভাবে আমরা দেখেছি কিভাবে মণিপুরে মায়ানমার থেকে আতঙ্কবাদীরা ঢুকছে, অস্ত্র ঢুকছে এবং তার সঙ্গে নাশকতামূলক কাজের জড়িয়ে থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং মাদক দ্রব্য ঢুকছে। সুতরাং আমরা বলবো যে সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না, এবং আমরা বলতে চাই যে রাষ্ট্রপতি শাসন কোনো স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা নয়, এটি সংবিধানের একটি জরুরি ব্যবস্থা। অস্থায়ী স্বল্পস্থায়ী হওয়ার কথা, এর পুনরাবৃত্তি গণতন্ত্রের উপহাস, আইনের শাসনের অপমান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। জনগণের দ্বারা গণতন্ত্রে ওকে ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ওর মাথা ঠিক নেই। Please don't interrupt. Please sit down. Please sit down. Don't interrupt. Please do not interrupt. मुझे टाइम देना पड़ेगा। Please sit down. You can't interrupt like that. अरे वो पागल, ছেড়ে দে, এই শালি ওর মাথা খারাপ, ছেড়ে দে। গণতন্ত্রে Please do not interrupt like that. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে রাজ্য শাসন করা, রাষ্ট্র শাসন করাই উত্তম উপায়। কিন্তু সেখানে যদি আমরা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাখি, জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয় না। এই মণিপুর রাজ্যটা 1972 সালে রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল, তারপরে দুবার নির্বাচন হয়েছে এবং 2017, 2022-এ ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচিত সরকার ওখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের একটা রিপোর্ট যে ওখানে যে দুটি সম্প্রদায় আছে, মাইতেই এবং কুকি, মাইতেইরা 53% জনগোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও তাদের হাতে মাত্র 11% জমি, এবং কুকি বা নাগা যারা পাহাড়ে রয়েছে তারা আদিবাসী এবং জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, তাদের কাছে পাহাড়ের জমি আছে, কিন্তু সেখানে যে আফিং চাষ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2017 থেকে 2022-এ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের শাসনকালে সেখানে আছে ওখানে 1853 একরটা বেড়ে 6743 একর জমিতে আফিম চাষ হচ্ছে। সেখানকার সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, আফিম চাষ আটকাতে পারেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট এর দ্বারা বলা হচ্ছে যে এই যে মায়ানমার থেকে অস্ত্র আসছে, সন্ত্রাসবাদী আসছে,
আফিং আসছে, মাদকদ্রব্য আসছে, সেটা কেন সরকার বাধা সৃষ্টি করছে না? এবং আমি আমার সর্বতোভাবে বলতে চাই যে আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ ব্যর্থতা হয়েছে। এটা ভারতের লজ্জা যে রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, কিন্তু মণিপুরে আমরা দেখছি 200-র বেশি। One minute, just 1 minute. The real protection. I know. I think the whole house needs protection. Kindly, the minister will answer. The minister will answer. The minister will answer. You please sit down. Please sit down. The minister will answer. You can go and talk to the minister. Throw him out. Kakoli ji. এখানে 200-র বেশি মানুষ তারা মারা গেছে, মহিলাদের নগ্ন করে রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে, আমরা সেটা দেখেছি। এখানে 60,000-এর বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে তারা রিলিফ ক্যাম্পে রয়েছে। রিলিফ ক্যাম্পে আমি নিজে মণিপুরে গিয়ে দেখেছি সন্তানের আসন্ন প্রসবা সেখানে রয়েছেন, সন্তান সম্ভবারা প্রসব করছেন রিলিফ ক্যাম্পে, ওষুধ নেই, খাবার নেই, গ্রাম ভস্মীভূত, আগুনে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, চার্চ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর সাথে একে অপরে ভাইয়ে ভাইয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি করছে, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তার জন্য দায়ী। কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন উপায়। Please sit down. This cannot go on. One minute, Kakoli ji. 1 minute. Kakoli ji, 1 minute. Kakoli ji, 1 minute. Kakoli ji, wait a minute. Please listen to. Your mic is off. You can start again. Please tell her to stop. 1 minute. You can start again. Please wait. Honorable member, this cannot go on like this. Your mic is off. Your mic is off. Your mic is off. Your mic is off. Who are you speaking to? Who are you speaking to? Who are you speaking to? Your mic is off. It's not going on record. What are you trying to show? What are you trying? Please. उठा दी नहीं, वो कह रहे हैं आधे घंटे में हम करा लेंगे, मणिपुर आधे घंटे में हो जाए। अंदर से आपका मैसेज है, नहीं मत कराओ, तो लड़ाई होगी, आप शुरू करा देंगे प्लीज। The House, it's very regrettable. Very regrettable. One member. कब तक चलेगी? I will adjourn the House. You will start later. I will adjourn the House till 5:30.
है।